Hello. Hello. Hi guys. Hope the audio is coming fine. Refresh your video once. Yeah, it's I think working all fine. Thank you for joining the live stream. We have a lot to discuss today. Some interesting stuff have been happening with Ankit Shah. Let's see the comments. তোমার মতো consistent jihadi আর কেউ নেই আছে আছে পুরো বেঙ্গল জুড়ে আছে what a timing I just came home and there's a ready live stream right now lol home delivery live stream ka jai shri ram in the name of God Father Son and Holy Spirit started amen hola amigo amritan shujha hi so what we have basically 3 videos to look forward to but in bits and pieces only the third video we will look at it and listen to it in whole but all of them involve Ankit Shah. So the best part about Ankit Shah, not the best part, one of the most interesting parts about Ankit Shah is that he speaks very slow. So any podcast where he has appeared for about 1 hour or 1.5 hours is only about like 45 minutes or 30 minutes if we watch it in 1.5x easily today, because I think Gujaratis speak really slow or what. I listen to Narendra Modi always on 1.75x. Ankit Shah I always listen to on 1.5x, so it's going to be fun. So today also we joined in the Jaipur Dialogues live stream as well. I mean as audiences in the comment section. Some of us were there. Abhay Agarwal was there. Goddank XP was there. So we were having some fun over there as well. Let me turn the chat into live chat. So there also there one funny thing was happening. A lot of people were going on spamming the chat comment box chat box saying that Modi is a CIA agent, Ankit Shah is CIA agent. So now if for a moment we get into the real fun just conspiratorial mind, there are some juicy aspects to it, you know, because when in 2014 or even 13 when BJP was about to come to power, I knew a lot of far leftists in Bengal who used to say the same thing. Now the far right wingers are saying the same thing. So they used to say that there are about I think 4 years 5 years of Modi's life which is a life which is completely off the grid, at least according to their accusations, that no one knows where he was. So the mainstream narrative is that Modi was trying to become a sannyasi. He had gone to the Himalayas basically to live in peace or something. But the commies used to say that he is a CIA agent and he was trained by CIA. Those 4 years he was in some portions, and their allegation was that he was in a particular mutt in India, which I'm not going to name because that's going to be insanely too much of controversy. But apparently the CIA came to that mutt and to train Modi, okay, for 4 years. Now, why that conspiracy has some interesting juice, because imagine that USA was really that far-sighted, the amount of farsightedness which could have prevented them from printing so much bullshit dollar, but USA had so much farsightedness that it was inevitable that de-dollarization would happen. So they trained a person to be prime minister in India who would be their representative in the Indian subcontinent and who would ease them into a de-dollarized future. He was doing some RSS service in some remote area probably. Yeah, of course. Far right and far left agree on many things. Quite spooky, yes. Still not recovered from India's loss in World Cup. अरे World Cup में क्या दुख का क्या बात है भाई. हम finals तक पहुँचे हैं. उस दिन थोड़ा गांडू की तरह खेले हैं और उसमें थोड़ा जस्टिफिकेशन भी था क्योंकि हमारा टीम सब 100% दे रहा था उसके पिछले मैच तक. सबसे ज़्यादा घूमना पड़ा पूरा इंडिया घूम के, ठीक है. वो सेम प्लेयर्स मतलब रेस्ट वेस्ट सब रिकवरी सब गड्ढे में चला गया था. तो ठीक है, हम आफ्टर ऑल वी आर losing to a first world country. Their GDP per capita is $62,000. Okay, हमारा GDP per capita is $2,500. So that doesn't mean that therefore their sports will be better, but a lot of other things matter in terms of GDP because of GDP per capita, which is how many kids want to go to sports, how many kids will go on playing sports even though they have potential. They might not be able to continue in India who would have been able to continue in Australia because of their overall GDP per capita. Okay, and most important is child nutrition. Okay, हमारे जो गरीब घर के लड़के बच्चे क्रिकेटर बने हैं उनका क्या भोसरी का न्यूट्रिशन था बचपन में और ऑस्ट्रेलियंस का क्या है, ठीक है. तो ये सबका भोसरा बना के भी हम फाइनल्स में जा रहे हैं बार, तो उसमें ज़्यादा दुख करने की कुछ बात है नहीं. If we were losing to Afghanistan by 500 runs, then I would be sad. New World Order folks often talk about Modi being part of some group in America which bring in young leader, that YMCL or something, and make them Illuminati agent. Let me find the name of, I know that. That's what that guy wasn't saying in Jaipur Dialogues as well. Okay, now
Let me talk about what we are going to discuss today. So there is an order of things that happened basically in the Jaipur Dialogue Summit in the last event, which was purely about geopolitics. There the guests were Sushant Sareen, Abhijeet Iyer Mitra, Ankit Shah. Vijay Sardana was, I think, hosting the show, and someone else was also there. I don't remember who was there, but in that event, in that particular panel, Ankit Shah had said something in that very polite, soft-spoken manner. Abhijeet Mitra countered that very viciously and almost disrespectfully, without naming him, of course, and to which Ankit Shah did not react at all. Vijay Sardana kind of tried to control the situation, kind of laughed it away, saying that yes, there are many disagreements on this topic. Then Sushant Sareen came in. Even Sushant Sareen was pretty much opposing to what the entire narrative being presented by Ankit Shah, which is, of course, if you all know, have been following Ankit Shah, that if you are an sort of an Ankitian, okay, let's coin that term. If you are an Ankitian or Ankit Shahi, then basically we are looking at a great, brilliant future for India, and by 2047 we are going to be the biggest powerhouse in the country. Now that's great if that happens. But the problem is that we have to absolutely keep ourselves updated with both schools of thought, who are saying that either there are three schools of thought that we are about to get fucked forever. There's one school of thought saying that we have insanely urgent things to do, if we don't take care absolutely right now, we are fucked. And there's the Ankit Shah wing saying that things are in place, seeds are being put into place, which will sprout in the right time, and everything is coming. It's coming. Now, there may be legit arguments on all three sides, but a lot of Ankit Shah's predictions are going on coming true. So I'm taking him a little more seriously, but I'm not absolutely saying that now let's just have fun, chill, and Ankit Shah is going to be right. Chalo hum unki puja karte hain. But we have to know about both these groups, right? Because not me and many of our viewers are not at least as well read as people like Abhijeet Iyer Mitra, Sushant Sareen, Ankit Shah. None of them. Okay, all these are insanely qualified guys. So a new viewer had once commented on my channel saying that I'm kind of the new next, and people of my age who are doing YouTube now in the Hindutva space, they are kind of we could call them platformism. Okay, I really like that term. That seems right, that we are not an expert, that we are saying that no, this is right and this is wrong. We are learning from them and discussing it amongst ourselves, that yeah, this seems interesting. So because of that, we are going to listen to exactly what did Ankit Shah say, which was opposed vehemently by Abhijeet Iyer Mitra 1. Okay, then we are going to listen to an interesting development which happened like 5-6 days back. Let me know how many of you all watched it. Which is Ankit Shah came to Satyology's channel, and after all these days, after about 2-3 weeks that the Jaipur Dialogues Summit happened, there he trolled Abhijeet Iyer Mitra without naming him. I'm only claiming, okay, this is my claim, don't sue me, that he was talking about Abhijeet Iyer Mitra when he was making fun of his arguments and him. Okay, we will get into it. You will understand why I'm saying that he was probably talking about him. And I think he named Sushant Sareen once by mistake, and then he was hinting that all these arguments are bogus, and he was countering them in Satyology's show as well. That we will watch some portions, and the portion that someone was saying that he wants to join the live stream just to discuss what might be the actual intention of CAA according to Ankit Shah, which he's saying that I'll say some years later, but that will probably happen in 2030, because what we think CAA is the giving home to persecuted minorities in these Islamic countries, and Ankit Shah is saying that that is not the case. They will be given home in India this year only anyway, and according to him before 2024 elections. Okay, but what is then the real mysterious secret goal of CAA? And he is saying that he will say it much later, but that will, whatever that goal is, that's going to happen at around 2030. So we are going to speculate about that as well. After that, the only podcast today we are going to watch in full entirety is his appearance yesterday on Neeraj Atri's channel. Now, my respect for Neeraj Atri exponentially increased after watching this particular podcast, because he brought on Ankit Shah to discuss things, and knowing that Ankit Shah is 180 degrees opposed to the narrative Neeraj Atri is presenting. Okay, Neeraj Atri is basically that calling Maulana Modi, Maulana Modi, that he's that faction, right? That Modi is not doing enough, and he is not doing enough to such an extent that we need to oppose Modi right now, or to that extent. Okay, to that effect. Okay, not exactly maybe, but the tone is like that. And he's not aggressive in his counter like I am. He's very
well-spoken. He's a very well-mannered person. But his counters are very harsh. His criticisms are very harsh. So I was expecting him there to be some fireworks in the conversation, but he did not go to that route. He just listened to him, gave some counters. He was basically giving Ankit Shah a platform. Okay, so it was very respectful of a conversation. But even there, Ankit Shah said some pretty controversial things, and the only reason that video is not viral at the moment is because nobody maybe watched it, nobody maybe follows Neeraj Atri to that extent. It's a very underrated video, and it's a very controversial video if both sides do watch it. Okay, because if all of Neeraj Atri's viewers and fans of that narrative have watched that podcast, they are absolutely losing their fucking minds at the moment, and they are insanely pissed with Ankit Shah with the things he has said. Okay, so let's watch all those things right now. No name is saying he's nothing but a conspiracy theorist. Sorry to say, who, Neeraj Atri or Ankit Shah? I love how he explicitly says he will end trade with all communist leftist countries. Australia chose not to follow the script. I watched it after you talked about it in Israel-Palestine live stream. Quite sure he was talking about them. If Argentinian president does turn Argentinian economy around, it will be a big blow to the left. See, it will be a big blow to the left only in the short term, okay? Because after all, he is actually indirectly an agent of USA, because his career was basically going nowhere as an economist, as an academic economist. Then he was propped up because he had those libertarian views, but it was propped up, it was promoted. Think tanks were funding his presence, his online presence, his campaign, everything from USA. The organization that was doing it is called Atlas Foundation or Atlas Society, which is a pretty famous libertarian right-wing free market capitalism kind of think tank who fund people like Charlie Kirk as well. So there are some American shenanigans inside Argentina at the moment. So that's why he is in favor of dollarization for now. So that's not going to stick in the long term. If everything Ankit Shah is saying, that if all those things come true, then Argentina is fucked again in the long term, okay? And they'll blame free markets and capitalism and libertarianism when Argentina goes to hell again. Hell with CA, declare Bharat as natural home for all persecuted Buddhists. Yeah, that is what Ankit Shah is saying, that will happen anyway. Okay, then let's start, guys. Sorry, I couldn't read all the comments at the top, okay, because we have a lot to discuss today. If it's that important, just comment once more, okay? I'm stammering already because I'm so excited. And let me know how many of you all have watched yesterday's Neeraj Atri's podcast with Ankit Shah, okay? Then it will be a little more relevant to understand that where you all are coming from. Okay, we don't need to watch the entire thing. We'll just watch Ankit Shah's comments here, okay? In 1.5x. Oh, it's already in 1.5x. You know, for some reason, Ankit Shah seems to be right at times. That is the thing. At times, his podcast today with Jaipur Dialogues was for the sole reason that day before yesterday, another stark prediction of his has come true. He had said that Pakistan will join BRICS and it will be supported by India. People, I even checked out that tweet because he retweeted his tweet. Okay, so I checked out that tweet and everyone is saying that you are being sarcastic, right? You are joking, right? He's saying no, full stop, and that has come true now. And Sanjay Dixit was a little pissed off with this. That why are they joining BRICS? Oh, Niner, I'm calling the Neeraj Atri episode very interesting because the narrative is that Modi is Maulana Modi, right? Ankit Shah is completely presenting the opposite view, that he is not Maulana Modi, and you have to say some good things about Muslims. At the end of the day, they are going to live with us. You can't just have wet dreams of kicking them out of your country. That was the narrative being said by Ankit Shah. Let's see, we'll have to find the portions with हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं. इस बात को आगे लेते हुए अंकित जी, डॉक्टर अंकित शाह, ये जयपुर डायलॉग पे सब लोग बहुत बार आ चुके हैं. किया, टी पे आया, अब ई पे जा रहा हूं. तो जा रहा है. इसका एक असर ये है कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप बन रहे हैं, and we end up being dishonest with everybody. Your thoughts on that? So, this is not something new. I started seeing this about 10, 12 years back when the Americans would start flogging this on us. It was something called process dependency. Process dependency is the smart way of saying that we're basically corrupting you without you knowing about it. Now, I'll tell you what process dependency is.
Bilateral relationship traditionally is me and Sushant talking to each other. Okay? We will check So- in 1.5x just Ankit Shah's comments and Abhijeet and Mitra's comments. Okay, that's important. मंच पे हैं तो पिछले दो टॉक्स के दो प्रेडिक्शन आ चुके हैं तो हिजरी कैलेंडर के बारे में मैंने बात किया था कि इस्लामिक कंट्री से नॉन इस्लामिक कंट्री में ही जाते हैं और बात किया था कि सऊदी अरेबिया से ही डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो बिगिन होना है बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो आज आ चुका है सऊदी अरेबिया की कैबिनेट ने हिजरी कैलेंडर को ऑफिशियल यूजेज में से निकाल दिया है 3 वीक पहले जो प्रेडिक्शन दिया था कि वीकेंड में अब बैंक रैप अप होना शुरू होंगी वेस्ट में तो ये वीकेंड में एक बैंक रैप अप हो चुके हैं दिस इज द सेकंड वन नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स और क्योंकि जितने भी सेशंस हुए उसमें सिक्योरिटी और सोशल कॉजेस सभी में हमने कॉमन देखा कि रेडिकलिज्म को एक कॉमन फीचर के तौर पे देखा गया तो लास्ट सेशन में बात हुई कुरान इज सैक्रोसैंक्ट ये कमेंट आई तो मेरा मानना है कि हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता कस्टोडियन जो है दोनों हॉली मॉस्क के क्राउन प्रिंस एमबीएस है तो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए वेदर इट इज सैक्रोसैंक्ट और नॉट जहां तक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का क्या रोल है तो रेडिकलिज्म के ओरिजिन के ऊपर इकोनॉमिक्स का जो लिंकेज बनता है हमारा जो प्लैनेट है इट इज टिल्टेड ठीक है जहां पे डायरेक्ट सन रेज आता है वहां पे डेजर्ट रीजन बन जाता है नाउ दैट रेडिकलिज्म व्हिच हैपेंड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन सऊदी अरेबिया you don't have water you don't have plants you don't have anything to do production in terms of economic activity फिर किस प्रकार की प्रैक्टिसेस बनती है ऐसे रीजन में जहां पे पानी नहीं होता प्रोडक्शन नहीं होता आई एम टॉकिंग कि सऊदी अरेबिया में हुआ था क्या तो वहां से जो भी कारवां गुजरता है जितना बड़ा आपका मॉब होगा उतना ज्यादा आप लूट पाओगे बिकॉज देयर इज नो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जिस प्रकार का एक फॉर्मूला बना जहां पे मिडिल ईस्ट पूरा रेडिकलाइज हुआ 90 + 5 का फॉर्मूला मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो ज्योग्राफी पूरी इस्लामिक हुई इफ वी स्टडी दैट यू विल रियलाइज कि 5% जो टेररिस्ट हैं जो बॉम्ब फोड़ते हैं या राइट्स करते हैं मेरे हिसाब से आई रिस्पेक्ट देम द मैक्सिमम बिकॉज दे आर द मोस्ट ट्रूथफुल द मोस्ट ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी क्लियर मतलब आप उनको पूछते हो बताते हैं कि हमने इसके लिए किया एंड समवेयर डाउन द लाइन वी डोंट रियलाइज they are as much of a victim as the victim who gets killed because of the terror attack. This is the 5% I'm talking about what happened in the Middle East. The next 5%, which is the elite in the community, giving cover fire, this is not Islam. And then that 5% includes some celebrities who keep mum despite knowing what is what. And then there is the next 90 who buy the properties and land at minimum prices after panic selling which happens after the terror attack. So the most innocent ones are the terrorists. Now when you bifurcate this then you can realize what kind of de-radicalization process that needs to be. तो ये क्वेश्चन आता है क्या इकोनॉमिक्स बेटर हो जाने से टेररिज्म कंट्रोल हो पाएगा दूसरा क्वेश्चन आता है क्या एजुकेशन ज्यादा इंपार्ट कर देने से क्या टेररिज्म सॉल्व हो जाएगा आंसर कम्स नो व्हाई बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द बाइफर्केशन ऑफ 90 + 5 + 5 Remember guys, this is the classic communist socialist liberal academia argument that just थोड़ा educate कर लो उसके बाद ये terrorists नहीं रहेंगे okay and the other thing is he is basically setting an interesting narrative that we know some things about Islam based on reading a lot, listening to Sanjay Dikshit and etc. So we know that reform is basically out of question in Islam. He is saying that we don't have to even comment out on it. We are no one to basically claim reformation or push for reformation. He's saying, let's just leave it to Saudi Arabia. Saudi Arabia is sort of the holy land and homeland for Islam. And if whatever they do will end up being the Islamic narrative in the entire world. So if Saudi Arabia theoretically does reformation, then that will be reformation. और तीनों पोर्शन के लिए आपको सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे Now, when it comes to economics, the rest of the world derives the basis from one life concept. Whereas what Bharat talks is that you are not the body, you are the soul. Bharat says that you are the soul, body is just a vehicle. The rest of the world is saying you are the body, soul is just a vehicle. This is the difference between the economics of ancient Bharat and rest of the world. Because you are talking about life cycles. तो अगर आप बॉडी हो जो बाकी का वर्ल्ड मान रहा है तो आपके सारे इकोनॉमिक्स के टेम्पलेट बनेंगे वन लाइफ कॉन्सेप्ट के लिए मतलब आप फोकस करोगे फाइनाइट रिसोर्सेज के ऊपर व्हिच इज मॉब बनाना mob के objectives, conversion, land grabbing, something which is a ready wealth
क्योंकि आप फाइनाइट हाँ, और ये ना एक ज्यादा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एक एथीस्ट इसको फॉलो नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी लेजिट आर्ग्यूमेंट बिकॉज व्हेन द एंटायर सोसाइटी बिलीव्स इन दिस, द एंटायर डेस्परेशन की अभी चाहिए, किसी भी तरह अभी चाहिए, अभी कन्वर्ट करो, अभी मार दो भोसड़ी को, तो वो फीलिंग ही चला जाता है। इफ यू बिलीव इन लाइफ इज साइक्लिकल, योर एंटायर स्पिरिट इज साइक्लिकल, एनिमल क्रुएल्टी एटसेट्रा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल हार्म, वी अवॉइड ऑल ऑफ दैट बिकॉज पहली बात तो है सबके अंदर किसी ना किसी का आत्मा तो बसा है. It might be your own ancestor, and besides, it's all going to come back. We are going to come back. There's a basic way of thinking that comes from Hindu philosophy that will basically not make you very prone to unnecessary violence. को wealth मान के चल रहे हो. Ancient Bharat says that you are the soul, you are not the body. You are talking about life cycles. So you are focusing on the man factor of production. They are focusing on the material factor of production. This is the difference between the economics of what ancient Bharat and rest of the world is. So if you want to come back to that ancient Bharat intent, if not methods, because maybe you cannot cut, copy, paste the ancient Bharat methods, but you can certainly reach the intents. A Shubh Labh economy. This is the only civilization which celebrates ethical profits as a community festival on Dhanteras. This is the only civilization. This is the only civilization where in economics, when you talk about, there is not a single word for individual wealth. There is no concept of individual wealth in ancient Bharat. There are two words. One is Sampatti and second is Lakshmi. Sampatti means that which is built together. It is talking about family unit entrepreneurship model. Lakshmi means that which is put to a common objective. So usage में भी individual usage की बात नहीं हो रही. This is what the ancient Bharat life cycle economics talks about, focusing on the man factor of production. So if we reach those intent, and the next book which is coming is Sanatan economics model, where there are 5 ecosystems. The primary one is the Mandir ecosystem, which survives the entire life cycle of this planet. So if we want to go to that objectives, we need to revive all those ecosystems back. Thank you. Thank you. See, I often say that the very reason that Hinduism cannot really become a fascist, oppressive structure and kick out all Muslims anytime soon with a dictator at head or do mass genocides against people is because there's no community-based call for action in any text ever. But that does not mean there's no mention or no historical evidence of any community-based work. But that's very decentralized. Your communities is not your entire country or your entire kingdom or your entire state. Okay. तो जो करना है वो community में ही करना है. But your communities may be your grammar or maybe your family. In that way, everything is divided in community only, even in Hinduism. So, BV, I want to ask you one thing. He's a person who has been saying that he wants to come on the live stream and talk about this, that because he also has a prediction about CAA, that what might be then the mysterious CAA thing, okay? So, he is saying that CAA is that 2029 will be a landmark year for Hindu Rashtra and in 2030. Saudi Arabia will diversify its economy. Yeah, वो तो नियम से city बनने वाला है, wall वाला city. So after that, CA will be ghar wapsi because Pattharbaz will not get funding after that. Yeah, I don't think that's going to decrease immediately already, okay. But then ghar wapsi for whom? Ghar wapsi meaning just bringing the persecuted minorities or mass reconversion back to Hindu fold for all or for all Pasmandas. What's your specific prediction? One argument from the atheists. Okay, I'll not get into the comment section too much today. Okay, maybe later if we have time. राजनीति के मामले में तो बहुत उथल-पुथल हो रहे हैं और बहुत चर्चा हो रही Okay, है. now Abhijeet विजय जी, and Mitra's counters. Abhijeet and Mitra हम 2x में सुन नहीं पाएंगे शायद. Let's देखते हैं, try करते हैं. Something called process dependency. Okay. Process dependency is the smart way of saying that we're basically corrupting you without you knowing about it. Now I'll tell you what process dependency is. Bilateral relationship traditionally is me and Sushant talking to each other. Okay, we know what we want out of a relationship and things like that. But this then goes into multilateral, it's called mini-laterals, where we decide that in my relationship with Sushant, Sareen, there are many different things that have to be discussed, which is how do I train up his elder daughter, how do I train up his younger daughter, how do I train up his cook, how do I discuss architecture with his wife, how do I discuss treats with his dog, what treats I can give his dog, etc., etc., etc. You form 100 different committees to discuss this, where you have bureaucrats who go on paid holidays in business class to Paris, London, Geneva, Vienna, stay at the Bristol or the Plaza Athénée at 3,000 euros a night, have a fine Michelin 5-star meals, ये सब खाते रहो. तो आप देख लो, जब हम दोनों के रिश्ते में आपने 15 लोगों को इंसेंटिवाइज कर दिया, जिनका काम ही है हमारा रिश्ता को और गहरा करवाना, जिनको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, फॉरेन ट्रैवल मिल रहा है, वो भी बिजनेस क्लास में, और 5-स्टार होटल का स्टे मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, इसको कहते हैं प्रोसेस डिपेंडेंसी. आप बहुत सुनेंगे प्रोसेस डिपेंडेंसी करवाएंगे, और इसमें क्या होता है, पीपल लूज साइट ऑफ द बिगर गोल एंड दे कीप गेटिंग फोकस्ड डाउन. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ये कभी कभार काम करता है, ठीक है, कि जो माइक्रो डिटेल्स हैं इनका सुधार होता है, मे बी 20 से 30% काम करता है, बाकी का 70% ये आउटराइट करप्शन है.
आप देखेंगे हर चीज में ये यूनिलैटरल ग्रुप्स होंगे, शेरपा ग्रुप्स होंगे। आप सब तालियां बजा रहे थे ना जब G20 का बहुत अच्छा, अरे हमने 10,000 डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, वो 10,000 डॉक्यूमेंट्स पे कितना बिजनेस क्लास ट्रैवल, कितना 5 स्टार ट्रैवल खर्चा हुआ पता है आपको? नहीं ना? This is not a bad argument. This is a very fair argument, and it's fair to say that so much government tax money is wasted to just for these conferences and meetups, etc. And remember, even before 2014, okay, Arnab Goswami used to make this criticism of Congress. I was a journalism student, so we were all like fans of Arnab Goswami, like he's a god. So he used to say that what's this peace talks के नाम पे एक कॉटेज इंडस्ट्री हमेशा चलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. पीस टॉक्स भोस्ती का होता रहेगा इस देश में उस देश में, उस ओकेजन के लिए 5 स्टार होटल्स बुक होंगे, रेस्टोरेंट्स बुक होंगे, हम सबके मिनिस्टर्स जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे, उनके एड्स जाएंगे, इंटर्न्स जाएंगे और मजे करके पीस टॉक्स मरवा के फिर वापस आ जाएंगे और 2 दिन बाद पाकिस्तान फिर से बम मारेगा. ये पीस टॉक्स का चुतियापा ही तो जयशंकर ने पूरा बंद कर दिया है एकदम. क्या बात क्या है कश्मीर पे पीस टॉक्स? क्या कश्मीर तो हमारा है, इसमें बात क्या होगा? That's a great thing. So he's criticizing that part कि इतना ये जो उत्सव का माहौल हो जाता है इन समिट के वजह से, उसमें बहुत फालतू का खर्चा होता है और उस खर्चे के प्रोपोर्शन में रिजल्ट्स के हमको मिल रहा है, वो एक आई थिंक जस्टिफाइड क्वेश्चन है. यही होते रहता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम जो मेन मुद्दा है उसको सॉल्व नहीं करते. हम उसके बाहर सबको इंसेंटिवाइज करते हैं कि या तो वो मुद्दा को सॉल्व मत करो या उसके बारे में बात मत करो, बाकी सब चीज के बारे में बात करो. ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है. यूएन तो हमेशा से नालायक था सर. आप मेरे को ये बताओ कब यूएन काम करता था? ये यूएन की नालायकता कोई नई चीज तो नहीं है ना. जब चाहिए होता है काम करता है, जब कोई कत्ल करता है तो वो मास मर्डर हो जाता है, जब कोई और कत्ल करता है तो वो सेल्फ डिफेंस हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होते रहता है उस यूएन में. तो इसका प्रॉब्लम नहीं है. हमको समझना चाहिए कि इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसमें. आई वोंट कॉल इट अ टूल किट क्योंकि टूल किट का एक कॉनोटेशन है कि देयर आर सिस्टमैटिक एफर्ट्स, और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर है, जीरो के लगभग. जीरो भी तो इंडियन इन्वेंशन था, इसीलिए हम उसको ना अपनाते हैं बहुत इस टाइप से. सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. और इसमें और भी क्या होता है कि ये सब जो मिनीलैटरल्स जो हम करते हैं उनमें थ्रू करियर ट्रेनिंग क्या मिलता है लोगों को. हमारे जो क्लाइमेट नेगोशिएटर्स हैं, ठीक है, 2-3 लोग बहुत अच्छा क्लाइमेट जानते हैं, बाकी के लोग कहाँ? एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से आएगा बंदा, दूसरा बंदा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड सैनिटेशन से, उसको एनवायरमेंट का क्या पता भाई? तो ये भी होते रहता है. और ये बहुत अच्छा होता है अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हो, पर अगर आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, और इसीलिए वो आपको दे वांट टू लल यू इनटू अ सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी. अब इसको हिंदी में कैसे बोलूंगा मेरे को पता नहीं है, पर वो बोलते हैं ना आपको, अरे आप तो सब लोग बोलते हैं आप सुपर पावर बनने वाले हो, मैं तो बोलता हूं आप ऑलरेडी बन गए. सब ताली मारो. क्या सब ताली मारो? हाँ देखो, सी दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग यू, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, दे आर ललिंग यू. आप समझ रहे हो कि भाई मैं इतना विद्वान हूं, मैं खुद नहीं जानता था, पर ये अमेरिकन मेरे को बोल रहे हैं. तो सब ये 5 स्टार जाने वाले, बिजनेस क्लास जाने वाले, जानते हैं क्या करते हैं. एंड दिस इज हाउ यू गेट बॉग्ड डाउन. दे मेक द प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, दे बॉग यू डाउन इन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. आपको पता है एक स्मॉल आर्म्स का नेगोशिएशन ट्रीटी हो रहा था 4-5 साल पहले यूएन में, उसमें से 7,000 डिस्कशंस हुए जेनीवा में. हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑफिस है, आपको पता है, 7,000 नहीं 750 डिस्कशंस हुए उसमें पता है आप हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कितने मीटिंग्स अटेंड की उसमें से? यस, 3 मीटिंग्स वेर अटेंडेड. तो आपका इनपुट उसमें क्या होगा? 0. और उस टाइम जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी उधर, उन्होंने न्यूज़पेपर में बहुत बढ़ चढ़ के आया, ये बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक ये करेगा, वो करेगा. मैंने जाके यूएन के वेबसाइट पे देखा कि ये स्पीच दिया गया था या नहीं. इट वाज नॉट लिस्टेड इन द स्पीचेस गिवन. और सब जो चटोरी न्यूज़पेपर कार पे सब उन्होंने पब्लिश कर दिया, देखो हमारी यूएन रिप्रेजेंटेटिव झांसी की महारानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो छोटी वाली रानी थी, कुछ नहीं था उधर यूएन पे. समझ रहे हो ना? न्यूज़पेपर भी बहुत झूठ बोलते हैं, टीवी भी बहुत झूठ बोलते हैं. सो दिस इज नाउ बिकमिंग chronic. The level of compromise and incompetence and the lack of through career training is chronic. Don't fall for this. I don't know who said this about who, but his compliments are more dangerous than his insults. Beware of his compliments. Thank you. Sushant, coming back on that one very important issue. जब हम लोग यहाँ थे तो power cuts बहुत होती थी. So you see, all these counters were kind of against Ankit Shah vehemently, right? But also, so far what we are listening, we know these arguments, but they are legit. They might turn out to be true in the end. Okay, let's not be complacent. But since we don't really have debates as of now between the right wingers, okay, we urgently need debates between Hindutva people, okay, because many fruitful conclusions are being delayed. वो कुशल मेहरा और जेसाई दीपक के बीच में डिबेट नहीं हो पाया अल्टीमेटली. अभिजीत आयर मित्रा जेसाई दीपक का डिबेट नहीं हुआ. ये अंकित शाह और AIM या सुशांत सरीन के बीच में डिबेट कभी नहीं होगा शायद. तो इमीडिएटली हमको काउंटर नहीं मिल रहा है. मगर इन सब का काउंटर के व्हाट इफ पीपल लाइक सुशांत सरीन एंड अभिजीत आयर मित्रा आर इन फैक्ट ट्रू, देन व्हाट? देन वी आर वेरी स्क्रूड. तो
he kind of gave a very legit counter argument in the Satyology episode, which we will watch a few minutes later, which is why I kind of shifted a little towards Ankit Shah since watching that podcast, because he was saying that if you are really saying that the unipolar global order is over, then how can you oppose the other things I'm saying? Okay, so wait for that. That's very fruitful and educational discussion that's going to unfold in the Satyology episode. और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत सफर होता था, थर्सडे कट इन पूना वेयर आई यूज्ड टू लिव। अब जो है एनर्जी सिक्योरिटी इशू फिर आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है, यूक्रेन हो, इजराइल का, हमास का हो। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए भारत क्या कर रहा है और उसका क्या स्टेप होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास सनलाइट, हमारे पास फ्यूल के अलावा फ्यूल शेल ऑयल के अलावा बाकी सब कुछ। व्हाट आर वी डूइंग टुवर्ड्स दैट? I think we, at least there are estimates that we have बहुत बड़ा quantity shale oil का भी है, but I think on alternative energy उसकी provenance जो है वो अभी भी काफी हद तक लिमिटेड है। That does not mean कि हमने उसमें प्रोग्रेस नहीं की। जिस तरीके के सोलर पावर के प्लांट्स लग रहे हैं, and those are huge, the enormous plants जो लगाए जा रहे हैं राजस्थान में, गुजरात में, रन में, और among some of the largest plants in the world are coming up. But even then, the question is, how do you transport the energy? Number one, how do you conserve the energy? Number two, and what is the kind of plant load factors you're going to get out of it? I think उस पर बहुत अभी भी विवाद है कि compared to the conventional energy sources, क्या ये उतने effective होंगे या नहीं होंगे? Number one. Number two, हमने अभी भी अपनी जो primary energy source है वो coal based है. It is still electricity generation में the bulk of our electricity is still being generated from coal. और अगर हम coal से shift out करते हैं, I think it will be an extremely expensive proposition for us. और जो energy tariffs हैं हमारे यहाँ पर वो uneconomical हो जाएंगे. So we have to think of a way, and I don't think this is true. You know, a lot of people are very dogmatic about electric vehicles, right? But hydrogen, nuclear, those are much more efficient, because electric vehicle charge दोगे कहाँ पे? वो charger कैसे काम करेगा? वो तो सेम सोर्सेज से ही आएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बीजेपी क्या या मोदी जी का जो एक अलग एक्साइटमेंट है कि हाँ अभी हम एनवायरनमेंट को ठीक कर देंगे, वो आई थिंक ये सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट को हैप्पी रखने के लिए है, बट द लॉन्गर गोल इज दैट लेस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल आफ्टर ऑल. आई थिंक दैट इज द गोल, नॉट आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज अ हिपी स्टूपिड ट्री हगर. as of now we have got the way out. सोलर के रेट जरूर कम हुए हैं, लेकिन वो कितने कम हुए नहीं हुए, दैट्स अनदर मैटर. बट योर एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर आप डिपेंड करेंगे ऑन places like the Middle East. अब पहले बात हो रही थी जियोपॉलिटिक्स की कि अमेरिका has lost interest in the Middle East. Geopolitics is not what America decides. Geopolitics is what I decide. For my geopolitics has to be different. My interest, मेरे जो इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ या किसी और देश के साथ कुछ हद तक अलाइन है, कई जगहों पे वो मिसअलाइन है. For me, Middle East is an extremely important place. For a variety of reasons, और एनर्जी सिक्योरिटी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन दूसरा रीजन ये है कनेक्टिविटी. और मैं ये नए आईमैक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुझे अपनी ट्रेड को यूरोप भेजना है फॉर एग्जांपल, या यूरोप से कुछ मंगवाना है, तो मेरे पास क्या जरिया मैं थ्रू द मिडिल ईस्ट, एक्सेप्ट अनलेस आप बोलते हो कि मैं केप ऑफ गुड होप ना, राइट, केप ऑफ गुड होप से मैं नीचे निकल के फिर वापस जाऊं. व्हाट इज माय इंटरेस्ट? सो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट. जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, मेरा इंटरेस्ट है. अमेरिका का नहीं है, लेकिन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर. लेकिन आई थिंक अमेरिका भी रियलाइज करता है कि उनका भी इंटरेस्ट है. उनका इंटरेस्ट See, Sushant Sareen is being an unfair debater here, because he is countering, so he is in a debate, he is not in a conversation anymore, he is basically countering Ankit Shah here. But why is he talking like a child now? अमेरिका को इस कॉन्टेक्स्ट में इग्नोर करके क्या होगा? कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसलिए है क्योंकि चीन को अगर एनर्जी सिक्योरिटी अपनी चाहिए, और चीन की भी डिपेंडेंस है ऑन द ऑयल एंड गैस ऑफ मिडिल ईस्ट, हाउ आर दे गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दैट? इफ द चाइनीज स्टार्ट डोमिनेटिंग द मिडिल ईस्ट, दे गेन अ मेजर एडवांटेज ओवर द यूएस. सो द यूएस willy-nilly will have to be invested in Middle East if it wants to counter China. अब ये उनको समझ आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, शायद समझ आना शुरू हो रहा है. लेकिन हमने ये देखा है कि अमेरिका की जो वोकरी की बात कर रहे थे अभिजीत, दैट्स रीच एपिडेमिक प्रोपोर्शन, वो हमारे यहाँ पर भी आ गई है काफी हद तक. मैं आई डोंट वांट टू बी बुक फॉर कंटेम्प्ट, बट आई हैव अ लॉट ऑफ इट. हाँ, but on wokeism, actually, Ankit Shah, Sushant Sareen, and Abhijeet and Mitra all agree actually that no matter what happens, no matter if the other geopolitical aspects predicted by Ankit Shah or Abhijeet and Mitra come true, wokeism in academia in India is definitely coming, and we have to be prepared. Even Ankit Shah is crystal clear on that. लेकिन हमारे यहाँ पर भी हर जगह पे नजर आ रहा है, द वोकरी इज ऑल ओवर द प्लेस. आप कोई चैनल उठा लीजिए, नेटफ्लिक्स की मूवी, आप आज की डेट में यू कैन नॉट गेट अ नेटफ्लिक्स सीरियल पास्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर स्वेरिंग बाय द एलजीबीटीक्यू एजेंडा. आप मुझे एक सीरियल बता दें जो आया है जिसमें आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, व्हाट समबडी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, इट्स नॉट इवन माय इंटरेस्ट एंड आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन एनीबॉडी. लेकिन आप किसी के गले के अंदर क्यों ठोस रहे हैं उसको? व्हाई? बट दे आर ट्राइंग टू डू इट. बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो अपना एजेंडा आपके ऊपर थोपेंगे. आप जो एक्सेप्ट कर सकते हैं आप करेंगे, और जो आप नहीं कर सकते, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, यू आर फ्री टू रिजेक्ट इट, एज वी हैव बीन डूइंग. और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कई बार थोड़ा सा, आई नेवर थॉट कि यहां तक करेंगे ये लोग, बिकॉज हम लोग की एक वतीरा रहा है भारत में कि आवाजें तो हम बहुत बुलंद करते हैं, व्हेन पुश कम्स टू शव हम ढेर हो जाते हैं. लेकिन ऑन द रशिया यूक्रेन थिंग आई हैव सीन दैट वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज आवर बेनिफिट लाइक एवरीबॉडी एल्स मैक्सिमाइजेस देयर बेनिफिट. तो जब उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप तेल कम करिए, तो हमने बोला सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. एंड
It was a global good that we did. कि हम रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे थे. It was a global good. We held global energy security by importing oil from Russia. So I think we need to be very clear about how our interests are placed and how we are going to protect them. I'm sorry, I disagree with people, including on this panel, जो हमको बोलते हैं कि भाई आप अमेरिका और यूरोप की तरफ मत देखें. For the foreseeable future, and by the foreseeable future I mean the next 20-25 years, I have a lot more to gain from America and Europe than I have to gain from anybody else. Okay, this is the exact point that Ankit Shah will counter in the Satyology podcast 2 weeks later. Okay. Two very good comments have come. Vaibhav is saying, but Dada, are we accepting AIM's comments just because AIM is saying it, or would I have accepted even if leftists were saying it? You're absolutely right. If a leftist said it, I would tell him to go fuck himself. I'm listening to it only because AIM is saying, and these things have been said by Arnav Goswami as well. And as a libertarian as well, I agree with these things, that are the gains really proportionate to the amount of money we have spent. Okay, और ये gains हुआ है कि नहीं वो तो हमको पता चलेगा 10 साल बाद 20 साल बाद. लेफ्टिस्ट का बात क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि उसका कोई लेजिटिमेसी है नहीं, उसका इंटेग्रिटी नहीं है, वो गांडू है, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आता है. और दूसरा बात है कि उसका जो प्रेमिस है कि 10 साल 20 साल बाद मैं जो बोलूँगा कि हाँ ठीक है 2023 का G20 अच्छा हुआ था, वो जिस प्रेमिस से उसको देखेगा कि अच्छा 20 साल बाद सच में काम हुआ, वो प्रेमिस से ही मैं एग्री नहीं करता हूँ. तो 20 साल 30 साल बाद मैं शायद एक चीज़ देख के बोलूँगा कि अच्छा हाँ सचमुच अच्छा काम हुआ था 2023 में, वो देख के ही बोलेगा कि नहीं इसका तो ये हुआ, इसका मतलब ये खड़ा भी हुआ था. सो देयर इज नो पॉइंट लाइक टेकिंग अ लेफ्टिस्ट सीरियसली इन दिस कॉन्टेक्स्ट. Oh, okay. The other great comment made by RSB here is that wokeism is here already. Actually, very true. I did not think of it that way. What's there left for wokeism to come? Because everyone who is not in academia, kids, 16 to 25-year-old kids, girls, boys, all of them, even if they are not in academia, they're absolutely bitten by the wokeism virus because of Instagram. Academia में wokeism पूरी तरह से आ गया है, तो और बाकी क्या रह गया है? वो एक प्रॉब्लम है ही. हमारे यहाँ पर सडनली लोगों को बड़ी उत्साह हो जाता है. अरे डी-डॉलराइजेशन हो गया, हम कल रात में भी बात कर रहे थे. डी-डॉलराइजेशन हो जाती है. व्हाट इज द नेक्स्ट रिजर्व करेंसी? प्लीज टेल मी. See, he is being unnecessarily disrespectful. Ankit Shah did not open his mouth here, but he's going to counter all this in the Satyology podcast. I have a lot more to gain from America and Europe than I have to gain from anybody else. क्या मैं ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर सडनली लोगों को बड़ी उत्साह हो जाता है. अरे डी-डॉलराइजेशन हो गया, हम कल रात में भी बात कर रहे थे. डी-डॉलराइजेशन हो जाती है. व्हाट इज द नेक्स्ट रिजर्व करेंसी? प्लीज टेल मी. एंड यू वांट दैट एज द नेक्स्ट रिजर्व करेंसी? Do you want it as the next reserve currency? तो फिर आप इतने एक्साइट क्यों हो जाते हैं डी-डॉलराइजेशन के ऊपर? आप बोलते हैं इंडियन रुपी इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. व्हाट आर यू प्लीज सेलिंग? प्लीज टेल मी. आप क्या बेच रहे हैं दुनिया में कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनेगी? वी आर नॉट अ सुपर पावर, वी आर नॉट क्लोज टू बिकमिंग अ सुपर पावर. वी आर डूइंग वेल फॉर आवरसेल्व्स, लेकिन हमारे को कम से कम 25 30 40 साल लगेंगे बिफोर हम एक पहुंचे जहां पर हमारी अपनी एक हैसियत हो. अभी नहीं है. आप प्लीज डोंट फूल योरसेल्फ. और अभिजीत बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. ऑल दिस प्रेज ना, हमारी तारीफ करी, हम इतने घटिया लोग हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारी तारीफ करी. भाई आई हैव नॉट सीन अ वर्स थिंग देन दैट. It shows how petty, how inferiority struck you are. New York, Washington Post ने हमारे बारे में ये लिखा. He should have been more polite in his criticism when Ankit Shah is sitting right beside him. But those who know the Satyology podcast, you all know what the counter is to this argument, right? That we will need 25 years more for de-dollarization, etc. Okay, what are you selling? जिसके वजह से तुम्हारा de-dollarization होगा भी, और de-dollarization हो जाएगा तो रिजर्व करेंसी कौन बढ़ेगा? इन सब का काउंटर अंकित शाह देगा Satyology में, ठीक है? लिखा. I think we should be ashamed of ourselves when we seek validation from somebody else. और जब हमारी औकात होगी तो लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं होगी. You will realize it. ठीक है ना? Ankit Shah is smiling. अगर जैन मील आपको हवाई जहाज में मिलता है और यूरोपियन एयरलाइंस में मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता कि सडनली उनको जैन धर्म के बारे में एक बड़ा ज्ञान हुआ और उनको बड़ी रिस्पेक्ट है. वो इसलिए मिलता है कि यहाँ पर नोट है, ये नोट खर्च करते हैं और ये वही खाएंगे. They bloody well serve it to you. That is when you show your औकात. कोई जैन धर्म का nobody has any respect, they don't even know what it means, but they will serve you those meals. वो मेरे जैसे बंदे को भी दे देते हैं. मेरे को तो मांस खाना अच्छा लगता है. मुझे भी वो सफर करना पड़ता है कई बार. With all due respect to people who are vegetarians, but the point is, please be realistic about life. दुनिया में और गोरा सबसे अच्छा काम ये करता है. आपको इतना हवा में चढ़ाएगा और जब आप बिल्कुल वहां पर घूम रहे होंगे ना, धड़ाम से नीचे गिराएगा. तो प्लीज डोंट गेट टेकन इन बाय ऑल द प्रेज. अपनी दम देखिए, अपनी औकात देखिए, और दम नहीं है तो पंगा मत लेना. Can I just add one thing very quickly, just tail end? देखिए, जब अमेरिका ब्रिटेन का सबसे अच्छा दोस्त था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, डीकॉलोनाइजेशन के लिए प्रेशर सबसे ज्यादा ब्रिटेन पे किसने किया? वो रूस नहीं था, वो हिंदुस्तान नहीं था. आपने सुना होगा कि गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट किया. नहीं, नाजी जर्मनी कंट्रीब्यूटेड मोर टू इंडियन फ्रीडम देन योर मोहनदास करमचंद. ओके, बट कौन था जो पूरा दबाव ब्रिटेन पे डाल रहा था उस टाइम? अमेरिका. ठीक है ना? जब वो नाजी जर्मनी को लड़ रहे थे, तब भी उनमें दिमाग था कि कल ये जर्मन बंदे हमारे भाई बनेंगे और रूसी हमारे दुश्मन बनेंगे. और उसी टाइम वो उस टाइम भी उनको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ते समय भी, वर्ल्ड वॉर के पीक में भी. और जब रूस आपके एकदम निकटतम थे, आप दोनों एक ग्लोबल इविल को फाइट कर रहे हो, नाजिज्म, तब भी वो सोच रहे थे कि रूस हमारा अगला एनिमी बनेगा. चीन को बनाया किसने सुपर पावर? अमेरिका के मार्केट एक्सेस ने.
और फिर भी उनको पता था कि चीन को हम एक दिन गिराएंगे करके, ठीक है. दे अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ ग्रे. मेरा आपसे सबसे ज्यादा, आई मीन आई डोंट मीन यू पर्सनली, बट हिंदुस्तानियों से सबसे बड़ा इतना कंप्लेन है कि हमारे शास्त्रों में शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे लिखा जाता है, और आप लोगों से ज्यादा एब्राहमिक ब्लैक और व्हाइट मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार. He is saying all this to Ankit Shah. आप सब जितना जितना ये एब्राहमिक बोलते रहते हो, आपका फॉरेन पॉलिसी आपका सोच विचार सबसे ज्यादा एब्राहमिक है. डीकॉलोनाइज योर माइंड प्लीज. नहीं, मैं सरीन साहब से बिल्कुल सहमत में हूँ इस बात में कि हमें दूसरों के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो हमें नहीं मानने हैं. हमें क्या चाहिए वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. अगर हमने अपने आप को डिफाइन नहीं किया और हमने अपनी डिमांड क्रिएट नहीं की, जैसे जैन व्हील की डिमांड है, वो कोई आपसे मोहब्बत में नहीं करते कुछ. in geopolitics, puppet regime, telling you that you can't buy a history, be it scientific, between the two nations. यूएस चाइना के बीच में क्या इंडिया फंस रहा है या फंस जाएगा, या उसे अपने आप को बाहर निकालना चाहिए? I do not see those kind of signals, but I certainly see some congruence in terms of Russia, India, and China operating in terms of some kind of an understanding where this is very clear that a lot many of Western templates are supposed to be refused through this decade. So be it history, be it scientific discoveries, be it education format, be it the trading format, or be it even the diplomacy. Right. Because Ankit Shah's this point is extremely important, guys. If everything he is saying does come true, then a lot of tangents, a lot of premises, a lot of way we study things, a lot of way we get into academia, okay, the entire liberal arts academia in philosophy, sociology, economics, everything, a lot of that is absolutely going to become worthless. A whole lot of major books, major authors, major people whom we celebrate in these fields are going to become absolutely worthless. Their books are going to be thrown in the dustbin, okay? So that's why we need to keep updated with both these people. But also, if Ankit Shah is right, okay, then all I can say is I think, therefore, our most urgent duty is to read as much as Hindu primary source as possible. That's going to be an extremely, at least the most valuable asset in terms of what you can read and produce, both in terms of products, gyan, your self-development, personal development, for everything. Hindu primary source scriptures are going to be your biggest asset in the next 10-20 years if everything Ankit Shah is saying comes true. because you will never find the Russian or the Chinese side asking about exclusion of the West, in the sense that there is a sense of Abrahamic thought process in the diplomacy of groupism, where you will find the West telling you that you can't buy S-400, we'll do some sanctions. At least the discussion was there. So my understanding is that we refuse this Abrahamic groupism in geopolitics, where there are two separate groups and we are supposed to pick and choose and we can pick only one. We just refuse. Our strategic autonomy does not believe in this kind of Abrahamic groupism, converting the nations and bringing them to one particular group. And then there are regime change, group mob-based objectives to be achieved in geopolitics, puppet regime and that all kind of stuff. Right. That is the hero villain narrative. उसको उनको सब में hero villain narrative चाहिए. World politics में भी इसलिए hero villain ढूंढते रहते हैं. और अब वो लोग फिल्म बना रहे हैं with grey characters, shades of grey. और वो देखकर हमारे यहाँ के leftist filmmakers सोच रहे हैं, हाँ चलो हम भी थोड़ा hero villain से हटके थोड़ा shades of grey बनाते हैं. अरे भाई हमारा रामायण महाभारत grey से भरा हुआ है. Always the best stories come about when you can't even decide who is actually the villain here, who is the hero. Hero villain से क्या अच्छा फिल्म बनेगा. मैक्सिमम एक मोटिवेशनल वर्कआउट मोटिवेशन जैसा कोई अगर मूवी हो सिल्वेस्टर स्टैलोन और अर्नोल्ड वाला, वैसा हो सकता है. सारे टाइम वैसा ही कहानी पढ़ेंगे और मूवी देखेंगे क्या? My understanding is that we are moving to a multipolar world, which means there is absolutely no role for a single country reserve currency. So this confusion which people are getting is a Western propaganda that you need to have a single country reserve currency for international trade. It's a total confusion, right? In a multipolar world, the international trade will move to a multi-currency basket. Whether you name the index as BRICS or XYZ, whether you name it or you don't name it, the unipolar single country reserve currency international trade is shifting to a multi-currency basket. And it has already begun. And I see worrying signs from Western economies. You shouldn't be surprised the next year is going to be devastating for the Western banking systems. By 2025, you will have devastation in the IT sector in the West, complete devastation because of this de-dollarization process. By 2026, you will be surprised to know that Indian banks will be the strongest banks in the world, and that will be written everywhere, that you have the strongest banks in the world. And it has been, a kind of, different kind of terminology is being thrown so that people get confused. The first de-dollarization was by the euro currency, and in that the IT sector lost 78% valuations, but it was called .com crash. So nobody knew that. This is a fucking brilliant point, okay? And the point he made just prior to this, that you will realize after this financial reset that Indian banks are in the best hands today. And Sanjeev Sanyal keeps repeating this countless times, right? That we cleaned up the banks. Maybe he was involved in it, so he talks about it the most. So, and since I'm not after all an economics student, I can't explain the technicalities.
तो जो वो BA में इकोनॉमिक्स में होने से भी नहीं चलेगा. You have to be BSc and MSc to explain it technically to people कि exactly क्या किया जिससे banks ये quote unquote clean up हो गया. So, but this is exactly what Ankit Shah is also saying. that is de-dollarization. Okay. Similarly, they have this fantasies of throwing in words like open border policy. Open border policy कुछ नहीं होता है. या तो border है या तो border नहीं है. So some people get caught up into this kind of terminologies which are thrown around, which is why people are not able to see what is coming. Thank you. Vijay ji, last question to you before we switch over to a few minutes of 3 questions that have come from the audience. आपके क्या संदेश हैं समारोह को कि व्यक्तिगत रूप से इस जियोपॉलिटिकल चैलेंज को क्या ये देश की ही समस्या है या इंडिविजुअल की भी समस्या है? How does every individual, what is the take home? ये आज हमसे क्या सीख के जाएं कि ये कहें कि मैं ये कर सकता हूं? That's a very important question. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल बात है कि कलेक्टिवली वी ऑल इज अ नेशन. अलग तो हम नहीं मिलेंगे तो देश बनेगा. Sushant ji, questions are for you. Let's have a quick and crisp answers to that. Abhijeet, Iyer, Mitra ji, Aparna ji is asking, what is bigger threat, wokeism or jihad? It's something called intersectionality which combines both wokeism and jihad. You see, you need to go back to history again. अगर आप देखेंगे during the Russian Revolution, लेनिन ये सब उन दिन ट्रॉट्स्की स्टालिन से बड़े थे. लेनिन ट्रॉट्स्की सब लिखते थे, देखो हमारे सेंट्रल एशियन भाई जो हैं ये कितने ऑप्रेस्ड हैं, इनको हमको मदद करनी चाहिए, ये जार का जो ऑपरेशन है उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए करके. और जब वो पावर में आए सबसे पहले उन्होंने किसको मारा? सेंट्रल एशिया के मुल्ला लोगों को. जार से भी पहले उधर उन्होंने मारना शुरू किया. जब मैं उज्बेकिस्तान गया था बुखारा में, उसने देखा कि मैं कुर्ता पहन के आया हूं और वो मेरे को अंदर बुला के मदरसे के अंदर बुला के मेरे को वोडका और सॉल्टेड पोर्क खाते था. ये आपने देखा है. ये सोवियत यूनियन का सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस था कोट अनकोट इन सेंट्रल एशिया. और जब इस्लामिस्ट पावर में आते हैं, वो पहले कम्युनिस्ट, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, शाह के लोगों को मारने से पहले मशाद में जो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट का जो स्ट्रांग होल्ड था उसको पहले मिटाया गया. वोक्स भी ऐसे ही है, समझिए. जब वोक्स पावर में आएंगे जो बोलते हैं ये हमारे दोस्त हैं, पहले उन्हीं को मिटाएंगे. देयर एजेंडा इज एक्जैक्टली द सेम, देयर मेथोडोलॉजी इज एक्जैक्टली द सेम. इट इज अ रेनबो कोalition ऑफ ग्राइप. अगर आपका कोई ग्राइप नहीं है वो आपको ग्राइप बना के उनकी कोalition में लाएंगे. अगर आप विक्टिम नहीं है वो आपको कोई विक्टिम बना के किसी टाइप का नया विक्टिम वो ढूंढ के, आपको पता भी नहीं होगा. सुशांत सरीन जी गंजे थे और वो ही डजंट कंसीडर हिमसेल्फ अ विक्टिम, बट दे देखिए सब ने आपको विक्टिम, आपको फॉलिकल जेनोसाइड किया है आप पे, आपको गंजा बना के. आपने हॉलोकॉस्ट की बात सुनी, आपने हॉलोकॉस्ट की बात सुनी है, वो इस देश में गंजे लोगों के साथ हुआ, बना के वो आपके अलायंस में लाएंगे. तो वोक एंड जिहाद, दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. Thank you. Aparna, ask the second question to you, Sushant ji, and you have your moment. Sushant sir ji, should India be expecting a repeat of 26/11 or Hamas-like surprise attack in near future? All the time. I think you can only think that this will not happen at your own peril. In fact, everything which is happening around the world, we should be watching it very carefully, because I've always maintained this. All terrorist groups, सारे के सारे, वो सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत टेक्नोलॉजी अपनी आपस में एक्सचेंज करते हैं, टैक्टिक्स एक्सचेंज करते हैं. आइडियोलॉजीज काफी हद तक अलग अलग ग्रुप्स की अलग होती हैं, लेकिन एक जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसको वो एक्सचेंज करते हैं. आई गिव एन एग्जांपल. अफगानिस्तान में जब फर्स्ट अफगान वॉर हो रही थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, जिसको जिहाद का नाम दिया गया था, आई डोंट थिंक एक सिंगल सुसाइड अटैक था. नॉट वन. आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल वन. और उसके बाद ये सुसाइड अटैक्स की जो सारा का सारे प्रक्रिया है ये इराक में शुरू होती है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक. द टेक्नोलॉजी के हाउ डू ट्रेन सुसाइड बॉम्बर्स कम्स टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. और फिर इनकी मंडियां लगती थी सुसाइड बॉम्बर्स. यू कुड हायर अ सुसाइड बॉम्बर फॉर व्हाटएवर पर्पस यू वांटेड टू डू इट, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट एक्चुअली हैपेंड. दीस आर थिंग्स ये ट्रैवल करेंगे. Those technologies will be traveled. How do we know? And I think, if I'm not mistaken, somebody had sent me that. हमने ये देखा था जब हमास का अटैक हुआ था कि the Hamas has been training on these paragliders. But you know, somebody sent me this that in 2015-2016, the Lashkar-e-Taiba was training on paragliders. After 26/11, so Yusuf knows it better. But somebody sent me some footage from 2015. Do we think they're not thinking of these ways of breaking your system? Supposing something like this was to happen, do we have the capability of then saying कि जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है हम वही करेंगे पाकिस्तान के साथ? Because we do not admit, and I think the first thing which we have done in this country is to say कि Lashkar-e-Taiba एक non-state actor है. It's not a non-state actor. It is an auxiliary of the Pakistan army. And the first thing we do to ourselves is कि नहीं ये तो terrorist है, ये non-state actors हैं, इनमें पाकिस्तान की जो सरकार है, उनकी जो state है, उसका कोई रोल नहीं है. So I think these are lessons which we need to learn from what is happening around the world. वो सारी की सारी technology, अब very simple. Again, somebody can say, but there's nothing big in it. हमने अभी पंजाब में और कश्मीर में tunnels discover किए. Have you not discovered tunnels? Okay, it's not a very big extensive network, but still we have discovered tunnels to send in contraband and to send in weapons, infiltrate. We have discovered the use of drones. In fact, हमारे ऊपर जम्मू एयरपोर्ट पे एक ड्रोन से हमला हो चुका है. So don't think that this will not happen out here. What you have to think is what your countermeasures will be, what your reaction is going to be, and what and how you can preempt what could happen tomorrow. आपके पास तो iron dome भी नहीं है. What does it take for somebody to make those kind of rockets? What tomorrow? I think India has already announced an Iron Dome, right? That we are now going to make Iron Dome. And I'm just giving you a hypothetical case. कल को अगर कोई 1000 रॉकेट आपके ऊपर कहीं पे दाग देता है और आप बोलते हो कि जी, और वहां से बोलते हैं कि जी कोई जिहादी तंजीम है, कोई नई जिहादी तंजीम निकली है जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, जैसे पाकिस्तानीज आर लर्निंग देयर इज समथिंग कॉल्ड तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जिन्होंने कल का वो किया, किसी को नहीं पता वो कौन है. शायद पता भी है तो, बट nobody knows what it is. Supposing some तंजीम gets up, what are you going to do? और वो जम्मू में या किसी और एरिया में कोई 500 रॉकेट सडनली दाग के भाग जाते हैं, आप क्या करेंगे? कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है. आफ्टर ऑल हमास वाले भी तो वाटर पाइप से ही रॉकेट बना रहे हैं ना. और ये इंसिडेंटली मैं आपको ये भी बता दूं, वे बैक इन दी 1990s कराची में सडनली डिस्कवर करना शुरू किया कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो डिसअपीयर होने शुरू हो गए. And they discovered that they were making those rocket launchers. The MQM fellows were making rocket launchers with those poles. वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा उनका एक्सपेरिमेंट. वो आमतौर पर उनके हाथ में ही पड़ जाते थे. लेकिन but they tried.
धीरे धीरे करके वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली, अब टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम खुद नहीं बना सकते मशीन टूल तो बाहर से मंगवा के मैन्युफैक्चर करके बेच देंगे माल, तो वो भी ये कर सकते हैं ना, टेररिस्ट भी ये करते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज़ दीस आर पीपल हु डोंट वैल्यू देयर ओन लाइफ एंड दे वैल्यू द आफ्टर लाइफ। आपको ये जिंदगी प्यारी है, उनको जो बाद वाली है वो प्यारी है, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू। हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन एक सवाल है Okay. बहुत ही महत्वपूर्ण जो सरदाना जी से पूछा जा रहा है, निशांत कुमार पूछ रहे हैं। ठीक है, हाउ विल द क्लेमिंग ऑफ आउटर अब चलो अंकित शाह का लेटेस्ट सत्योलॉजी एपिसोड में। अरे कहाँ गया? इसमें भी I'll forward to the best parts, okay? I kind of remember. I've watched it fully twice already. 360 2x, हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत predictions, but he will make brilliant counters here. तो पर्सनली तो मैं नहीं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता, बट कुछ मैचेस में देखता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी मैचेस में देख Okay, they discuss a bit of is there a potential for match fixing, etc. Let's get to the other topics. इनको भाई चलानी पड़ती है चैनल, तो रोज कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ता हाँ, यहाँ से सुनो। है। इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ ऐसा रोल पाया गया हो गैम्बलिंग का और वो सब, तो ये बात तो सही है। जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि सत्योलॉजी पे हमने इस पर डिस्कशन नहीं की बहुत सारी, क्योंकि आप भारत को ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत सारी डिस्कशन पेंडिंग रह चुकी है हमारी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था शी जिनपिंग वाला विजिट यूएस, और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चैनल्स में बहुत ही गलत उल्टा सुल्टा एनालिसिस हुआ है क्योंकि भारत में जो है एक्सपर्ट्स का मतलब होता है कि यू हैव टू बी एंटी चाइना, देन यू आर एन एक्सपर्ट, Okay. अदरवाइज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो और फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ Pause हुआ। हाँ, so sorry for pausing once because I need to ask something to this person called Cheap Thrills. Okay, Cheap Thrills. In which book did Will Durant discuss that? Is the name of the book that the Indian Way or something which you mentioned? Because I have recently bought a book by Will Durant, but it's in Bengali. Okay, it's the second edition. Part 2 of his book called The Story of Philosophy, which we will discuss from my upcoming Bengali channel as well. So did he mention those things? This is probably about Western philosophers only. So just tell me the exact name of the book, okay? Thank you. कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं कि जिनको भाई चलानी पड़ती है चैनल, तो रोज कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। लेकिन दर्शकों के लिए तो फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि क्या, क्योंकि मीडिया की हेडलाइंस को कलेक्ट करके So he is already countering people like, I think, Adi Achint here, okay guys? Listen to what he says. I think he was trolling Adi Achint here. The channel called Dev Talks with Adi. अब ये वाली मैच में था या नहीं था, दैट वी डोंट नो, सो वी कांट से फॉर श्योर, पर रोल होता है, ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स को पनिशमेंट भी मिली है, तो इट इज प्रूवन कि कुछ ना कुछ पहले तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ ऐसा रोल पाया गया हो गैम्बलिंग का और वो सब, तो ये बात तो सही है। जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि सत्योलॉजी पे हमने इस पर डिस्कशन नहीं की बहुत सारी, क्योंकि आप भारत को ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत सारी डिस्कशन पेंडिंग रह चुकी है हमारी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था शी जिनपिंग वाला विजिट यूएस, और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चैनल्स में बहुत ही गलत उल्टा सुल्टा एनालिसिस हुआ है क्योंकि भारत में जो है एक्सपर्ट्स का मतलब होता है कि यू हैव टू बी एंटी चाइना, देन यू आर एन एक्सपर्ट, अदरवाइज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो और फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं कि जिनको भाई चलानी पड़ती है चैनल, तो रोज कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। लेकिन दर्शकों के लिए तो फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि क्या, क्योंकि मीडिया की हेडलाइंस को कलेक्ट करके उसको आप एनालिसिस नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, स्लाइड्स बना दी सारी मीडिया की हेडलाइंस उठा के और चटर पटर चैटिंग कर रहे हैं, देयर इज नो नथिंग काइंड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस किसको बोलते हैं कि अगर आप कॉन्क्रीट कंक्लूजन देते हो, जिसको आप फ्यूचर में वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही था, ठीक है, उसको एनालिसिस बोलते हैं। और वैसे भी पोस्ट इवेंट एनालिसिस को तो मैं एनालिसिस मानता इसलिए भी नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स का रोल ये होता है कि आप पब्लिक को या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको आप बता रहे हो कि 3 मंथ्स बाद ये होने वाला है, 6 मंथ्स बाद ऐसा कुछ होगा, 3 इयर्स बाद आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, 6 इयर्स के बाद इसका ये आउटकम आएगा। अगर आप ये बता पा रहे हो तो कुछ एक्शनेबल आइटम्स पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी उस पर कुछ कर सकती है, ठीक है। तो इस एक्सपर्ट्स का रोल ये होता है, एक्सपर्ट्स का ये रोल ये नहीं अंकित होता। शाह का उस दिन थोड़ा तबीयत खराब था, सबको धो डाला उस दिन, मूड खराब था इसलिए। तो someone was saying wait, I wanted to talk about something. Yeah, so here he will touch upon it a little bit. He has touched upon it many times in other podcasts as well, and he gets into it in a little more detail and more vehemently in the next podcast we are going to see with Neeraj Atri, which is that if the Ankit Shah wing of Hindutva becomes the mainstream, which I think is the mainstream, if it keeps being the mainstream and becomes mainstream in entire India, Satyology, etc., then birth-based casteism is out of the window forever and ever, okay? Because even though he's fully believing in every Sanatan principle, philosophy, Sanatan history, Sanatan culture, our past economic prowess, etc., but he is of the opinion that casteism or Varna cannot be birth-based at all. Okay, and even he claims that it was never, or whenever it was a distortion. He's crystal clear on that.
I'm not crystal clear on that, because I think it's a very, very gray and ambiguous area, because some people at some points in some parts of the country believed in both sides of the story. But the bigger question is, if birth-based casteism is outside the window completely, then how do we reconcile the system of Varna being a great thing, at the same time believe in transmigration, okay? Your spirit going into the next life, okay? That's going to be a tough conversation, and maybe a lot of people are pissed with Narendra Modi or people like Ankit Shah because they want to keep some aspects of the birth-based Varna valuable, or want to look at it as valuable as well. And then there's the issue of Varna not necessarily being Jivika in the first place. So there, I think Ankit Shah will face a lot of vehement opposition from a lot of our trads. कि इवेंट हो जाने के बाद सारी हेडलाइंस कलेक्ट कर ली, और स्पेशली जहाँ पे 90% मीडिया में पूरा फेक चल रहा है, क्योंकि नैरेटिव चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो वाली चल रही है, तो उस पर तो आप बेस करोगे तो आपका हर बार आपका एनालिसिस गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 90% फेक चल रहा है। तो पता नहीं कहाँ से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमास के साथ लिंक कर दिया। पहले तो ये एक्सपर्ट्स को यही नहीं पता, जो हम आई थिंक लास्ट ईयर से हम ये बात कर रहे थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, That's right. ये बन चुकी है शी जिनपिंग पार्टी, ठीक है। तो सीसीपी का टाइटल अभी भी भले यूज हो रहा है और वो बैनर यूज होता ही रहेगा जब तक शी जिनपिंग है, लेकिन देयर इज नो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज जब मैंने ट्विटर पे एक हैंडल को लिखते हुए देखा कि पाकिस्तान में बड़ा बदलाव सा आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स मारे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी अथॉरिटीज को पता नहीं है, कि कॉन्फिडेंस में नहीं है और ये हो रहा है, तो बड़ा चेंज है। और दूसरा नीचे उन्होंने लिखा चाइना के बारे में और बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे जो सीसीपी वाले हैं, ली के चौंग की जो अभी भी रिसेंट डेथ हुई है, फिर उसी टाइम फ्रेम में बहुत सारे मारे गए सीसीपी वाले। तो क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है, जो हमने लास्ट ईयर ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं, डॉलराइजेशन के ऊपर अलाइन हो चुके हैं, और जो पुराना अलायंस था यूके गवर्नमेंट, यूएस डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक ही अलायंस था जो डॉलराइजेशन के 40-50 इयर्स में रहा, रियल अलायंस। और उसको मोदी जी ने बालाकोट करके पाकिस्तान आर्मी वाला फैक्शन पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि कोई रिटेलिएशन नहीं आया। और दूसरा, जो शी जिनपिंग अलाइन हो गए डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के ऊपर, तो उन्होंने सीसीपी का खात्मा कर दिया इंटरनली विद इन चाइना। तो आपको, क्योंकि ये लोग जो है हमारे जैसे कि नहीं कर पाएंगे ह्यूमन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वाला, रीडिंग वाला चीजें या डेट्स को कनेक्ट करना, तो इनको शायद समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। आमिर खान ने अपनी लेटेस्ट मूवी, हम ये पिछले लास्ट ईयर ये सब बता चुके हैं, आमिर खान ने रिलीज नहीं की अपनी लास्ट मूवी, क्यों? क्योंकि डर है कि शी जिनपिंग पास कर देगा इन्फॉर्मेशन सीसीपी के बारे में, और सीसीपी के जो So Amir Khan, so for those of you who don't know, Amir Khan's movies used to earn like 1,000 crores, 1,500 crores or something in China forever, and a lot of right-wingers in India had claimed that it's probably some black money being turned into white or something like that, okay? So apparently he didn't release his last remake in China because his argument, Ankit Shah's argument, is that now since Xi Jinping does not want to do these specific just these particular shenanigans, therefore if at all Amir Khan's movie released there, he would have spilled information in Indian media about those dealings. And that is also kind of believable, that a lot of pro-China or CCP-funded people are getting exposed, which if we take into account Ankit Shah's views, they are probably being exposed because of information leaked by Xi Jinping himself, because he doesn't want to keep playing those games particularly, if Ankit Shah is right, okay? And one other important comment I wanted to comment on is that, yeah, Mama Shakuni is saying AIM said Karpatri Maharaj, Swami Karpatri Maharaj is casteist. Yes, so AIM and Ankit Shah agree on this apparently, okay? On Varna, there's no disagreement between Kushal Mehra, Abhijeet Iyer Mitra, Anand Ranganathan, Ankit Shah, okay? Their disagreement is different. But Neeraj Atri and Ankit Shah have a different disagreement, okay? Which is about how much do we, what is our reaction to Pattharbaz, okay? And then the trads will be pissed off with Ankit Shah again for the casteism issue. So Ankit Shah is basically opposed to all these three viewpoints and from different angles. पूरे पुराने सीसीपी के जो लिंकेजेस थे, जो कंट्री में साबोटाजेस करवाते थे, उन सबको एक के बाद एक शी जिनपिंग सारी कंट्रीज में एक्सपोज कर रहा है, ना सिर्फ भारत। जैसे ही उनका नेशनल कांग्रेस खत्म हुआ, उसके दूसरे ही दिन भारत ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल किया। तो ये सब चीजें जो हम लास्ट ईयर डिस्कस कर चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन पे अलाइनमेंट के बाद देयर इज नो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ये लोग अभी भी पुराना 40-50 साल वाला एनालिसिस अभी भी चला रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स, पता नहीं क्यों, और इसीलिए उनके सारे एनालिसिस ऐसे ही होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी उनको चाइनीज हैंड नजर आता है, जबकि वांग ने क्लियर बोल दिया, हमास पे कनेक्ट कर दिया उन्होंने, चाइना को पूरा कनेक्ट कर दिया है। और एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टील के पाइप्स पाए गए हैं, कुछ चाइनीज आर्म्स पाए गए हैं, और टनल्स बनाने में भी हेल्प की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बता दें कि हमास के पास बहुत सारे वेपन्स वेस्टर्न पाए गए हैं। अब बताओ मुझे किसने करवाया? तो ये जो बहुत ही बेवकूफी की बातें हैं ये सारी, क्योंकि ऐसी सप्लाईज तो हर एक कंट्री कोई ना कोई सप्लाईज तो करती ही रहेगी। तो दिस हैज नथिंग टू डू, वो तो बना रहे मास्टरमाइंड बना रहे हमास कॉन्फ्लिक्ट का चाइना को। तो चाइना खुद सरप्राइज हो रहा होगा कि भाई साहब हमसे ताइवान हो नहीं पा रहा और ये लोग कहां से कहां पहुंचा रहे हैं।
तो ये पूरा इतना कॉमेडी है, तो मैंने उनको सिर्फ सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन किया कि इजराइल गवर्नमेंट से कुछ आया है क्या कि चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है इजरायली गवर्नमेंट का, क्योंकि इजराइल सबसे पहले बोलेगा अगर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है तो, ठीक। और जहां तक मैंने सुना तो वांग यी ने यही बोला है कि एवरी कंट्री हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, तो मेरे हिसाब से तो वो इजराइल की फेवर में था वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पुराना अगर आप चलाते रहोगे और पूरा एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि शी जिनपिंग खुद उनके ऊपर पर्च कर रहा है। अंकित जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिकन स्पीकिंग पॉइंट सीधा इंडियन एनालिसिस में आ जाता है। दे डोंट एनालाइज एनीथिंग। एएफपी का न्यूज़ सबको मालूम है, एजेंसी न्यूज़ होता है, एंड इट इज जस्ट लाइक बीबीसी का वैल्यू है इसका, एंड इट स्ट्रेट अवे कम्स इन द कमेंट्स ऑफ आवर एनालिस्ट एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि डी-डॉलराइजेशन पे मेरे अलावा कोई मतलब वो टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करता नहीं। अब क्योंकि कोई नहीं कर रहा और एक्सेप्ट करना नहीं चाहते या जो भी है, इसकी वजह से फिर अब क्या हो गया है कि दे हैव टू टेक द अल्टरनेट रूट व्हिच इज एक्चुअली अ रॉन्ग एनालिसिस। अब क्योंकि आप डी-डॉलराइजेशन नहीं बोलोगे तो आप डीकपलिंग, डी-रिस्किंग और डी-ग्लोबलाइजेशन पर भी नहीं बोल सकते, तो फंस चुके हैं जो कोई भी रिजेक्ट कर रहे थे डी। Okay, interesting point made by Abhay Agarwal. I had no clue about this. Okay, so why was that China erased Israel from the map it released? What were they trying to show there, guys? Interesting. Anyone know anything about this factor? Please comment. डॉलराइजेशन वाला एनालिसिस, अब वो बाकी चीजों पर भी नहीं बोल सकते जो एक्चुअली सप्लीमेंट टर्मिनोलॉजी है डी डॉलराइजेशन के लिए। तो बाइडेन शी मीटिंग पे पूरा जो एनालिसिस चला सोशल मीडिया पे वो ये चला कि शी जिनपिंग अमेरिका के कदमों पे आ गया है। उनको कुछ समझ ही नहीं आई, उनको इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड कुछ देखे ही नहीं है वो कि जेनेट येलेन, ब्लिंकन और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसॉम ये तीनों पिछले 6 महीने से मिन्नतें कर रहे थे शी जिनपिंग को पर्सनल विजिट एंश्योर करवाने के लिए, और पूरा सैन फ्रांसिस्को साफ करवाना पड़ा जितने भी वो इलीगल्स वाला कचरा था। यू नो आई एम सो अमेज्ड कि यू आर कैप्चरिंग द अमेरिकन एकदम एक्यूरेटली, एंड एपेक्स समिट में उसको गिड़गिड़ा के लेकर आए हैं वो लोग। और इनको ये तक नहीं समझ, एक भी बार चाइना ने ये नहीं बोला वी आर सीकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, बोला ही नहीं है। और जितने भी आपके बिजनेस लीडर्स वहां पे इकट्ठा हुए थे वो ये जानने के लिए इकट्ठा हुए थे कि डीकपलिंग कितना हार्श होने वाला है, पैसे ढंग से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे चाइना से, वो ये देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। और शी जिनपिंग ने जिस प्रकार का स्पीच दिया है और समझाने की कोशिश की है कि वी डोंट वांट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हम G2 इकोनॉमी बन के रहेंगे। इतनी हंसी आती है अगर कोई ये सारी बातें सच भी मान ले, मतलब हंसने वाली बात कि कोई ये इसको सच मानेगा। दूसरा आपको ये समझना है कि वो अगर आप वीडियो देखते हैं आदित्य जी, शी जिनपिंग और बाइडेन चलते हुए गार्डन देख रहे हैं, क्योंकि बाइडेन को मैंडरिन आती नहीं, शी जिनपिंग इंग्लिश में बात करेंगे नहीं, ट्रांसलेटर कोई था नहीं है। ये काहे की विजिट थी आप खुद मतलब आप पता करो, आपको सुन के भी हंसी आएगी। अच्छा, विजिट से निकल के क्या आया है? 2-3 चीजें कॉन्क्रीट है। एक चीज जो शी जिनपिंग को चाहिए वो ये है, बेसिकली ये विजिट जो थी वो अमेरिका को सिग्नलिंग था कि आपको हार्श डीकपलिंग चाहिए या कोऑर्डिनेटेड चाहिए। कोऑर्डिनेटेड चाहिए तो मिलिट्री कॉन्टैक्ट जो है उसको वापस रीएस्टैब्लिश करो, तो वो हॉटलाइन सेट हो गई दोनों प्रेसिडेंट के बीच। दूसरा, शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि अभी तक आपने चाइना को गुलाम बना के फैक्ट्री बना के यूज किया है, अब मुझे पीपल टू पीपल टाइज चाहिए। मतलब लास्ट 40 इयर्स आपने कम्युनिस्ट कैरेक्टर इंटैक्ट रखा चाइनीज मेनलैंड का और पूरा फ्री ट्रेड ताइवान और हांगकांग के जरिए राउट करके ट्रांजैक्शन करवाए। अब शी जिनपिंग बोल रहा है ये नहीं चलेगा, मुझे पीपल टू पीपल टाइज चाहिए मेनलैंड चाइना के साथ। हाँ, तो पीपल टू पीपल टाइज तो बोसे के खुद बंद करके रख दिया था, सब कुछ उसका अलग होगा, उसका गूगल होगा, उसका यूट्यूब होगा, कोई बाहर का कुछ किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बट नाउ ही मेक्स एन इंटरेस्टिंग कमेंट व्हिच इज बीन repeatedly saying now that since China now wants people to people interaction, he's apparently going to demand or has demanded already that send students to China to study. So वो कैसे होगा? यूएसए में ऐसे ही बाइडेन बोल देगा कि चलो भाई लोग तुम थोड़ा चाइना में पढ़ के आओ, तो वैसा तो नहीं होगा। तो चाइना को अब एस्पिरेशनल मॉडल बनाना पड़ेगा एज अ प्लेस ऑफ ग्रेट एजुकेशन इन यूएसए। वो कैसे होगा? अब पूरा का पूरा यूएसए तो एंटी चाइना बन के बैठा है। सो इफ दैट इज रियली अ डिमांड मेड बाय शी जिनपिंग, इट्स गोइंग टू पुट अमेरिका इन एन इवन टफर स्पॉट। And Ankit Shah's claim is that Xi Jinping is saying that make us have human interactions with us, or people to people interactions with us, or else the decoupling is, we are going to fuck your decoupling basically. Okay, so therefore USA is in a very tough spot, because how can they convince their students to now to go to China to study? 50,000 अमेरिकी बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे चाइना के अंदर, दिस इज हिज डिमांड। ठीक है। दूसरा, शी जिनपिंग बोल रहा है कि आपके जो एक्सपोर्ट के कंट्रोल्स डाल दिए हैं आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो सारे हटाओ अगर आपको कोऑर्डिनेटेड डीग्लोबलाइजेशन चाहिए तो। ठीक, तो ये कंडीशंस है शी जिनपिंग की। तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल करेगा यूएसए भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और उसी के चलते मुझे लग रहा है कि जो बुलाया गया है जेनेट येलेन को वापस बुलाया गया चाइना के अंदर, और ऑस्टिन लॉयड भी वापस जाएंगे चाइना, तो ये दोनों को बताया जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं, आप फुलफिल कर रहे नहीं कर रहे। और जो शी जिनपिंग ने बोला कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर हॉट वॉर और कोल्ड वॉर, बेसिकली शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि आप ताइवान वाला नेगोशिएट करवाएं, और अगर नेगोशिएट नहीं होता है तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है और इकोनॉमिक डीकपलिंग बहुत ज्यादा हैफेजार्ड होगा। मतलब आपके जो भी इलॉन मस्क से लेके जितने भी वहां प्रेजेंट थे, जितना पैसा वहां पे फंसा पड़ा है, फिर वो आप भूल जाओ। ठीक है। हाँ, I mean, there's so many things you all know, right, that people like Elon Musk, Mark Zuckerberg maybe no, but
other retail investors or normal investors who have invested some money in China, I don't know if Indians can invest directly in the Chinese stock market, but Americans who have invested in the Chinese stock market are very screwed. Do you know that actually you can't legally invest in the Chinese stock market? Whatever company shares you think you are buying in the Chinese stock market, all that is via a shell company in the Caribbean, okay? I think in West Indies or somewhere. So if one day China really decides to fuck with everyone and say that नहीं कोई हमारा तो कोई investment नहीं है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है हमारे पास, तो legally there's no recourse, okay? They will just shut down that shell company and keep all the money. So they will have to toe the line whatever Xi Jinping demands. I don't see how USA is going to get around this. At least said on this channel, और सब जगह लोग उसी को लेके there are many astrologers quoting you and वो सब छोड़ दिया उन्होंने, they are quoting you and telling that. अच्छा, इसी पे एक चीज कंटिन्यू करते हैं कि एक वीडियो आया था in the American press, उसमें they are showing all these business heads listening attentively to Xi, and all these people are BlackRock, Vanguard, everybody's there and everybody's silent, not like Prime Minister Modi के साथ सब लोग मिलकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, कोई गले मिला रहा है, कोई like it's a very friendly atmosphere there. देखिए आदित्य जी, विजिट तो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, okay, RSB what you are saying that is might be a little overrated, but even सिर्फ कैलिफोर्निया का स्टूडेंट चाइना भेज के तो होगा नहीं, मगर नीनार का पॉइंट सीम्स लाइक मोर फिजिबल, दैट माइट वर्क. की तय ही नहीं होती जब तक आपके पास प्लान नहीं है ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट करने के लिए. जब तक इन्वेस्टमेंट का फिगर उनकी नोट पैड पे नहीं जाएगा, तब तक आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ पर्सनल मीटिंग तो आप भूल ही जाओ भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ. हाँ, ये तो हमारे कौमी भाइयों को समझाना है. सी, व्हेनेवर वी हैव अ डिस्कशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, पीपल थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अमेरिका इज द बेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूएसए एटसेट्रा. अरे भाई, सोशलिज्म से बेहतर है अमेरिका में जो भी है. कैपिटलिज्म इज स्टिल बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. दैट डज नॉट मीन दैट कैपिटलिज्म डज नॉट लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन. सो वी कैन हैव अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन about that. But what is our problem today? What is the main problem facing me, at least as a Bengali in West Bengal with commie family members and commie friends? There I have to be crystal clear that fuck communism and socialism first, uske baad baki conversation hoga. So understand the nuance in that. तो शी जिनपिंग की ये विजिट थी ना, चाइना ने बोला कि मुझे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमेरिका से चाहिए. So when communists say that or leftists say that ये मोदी तो सिर्फ घूम रहा है, वो घूम के जो सबके साथ गले मिल रहा है, सब इन्वेस्टर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, वो सूट बूट की सरकार बनाने के लिए, उसके लिए पहले से ही इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अनाउंस प्लान एटलीस्ट मोदी के पास पहुंच गया है कि इतना हम पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे. जैसे क्योंकि देखो मोदी का तो टाइम नहीं है, वो वहाँ जाएगा सिर्फ 2-3 अच्छा स्पीच देके वापस चलेगा इमीडिएटली. तो प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही उतना ही बिजी होता है. मगर हर कॉन्सर्ट में भी जैसे मीट एंड ग्रीट पासेस होते हैं कि अगर तुम्हारा कॉन्सर्ट का टिकट है 2000 रुपये, वो बैंड के साथ मीट करना है बैक स्टेज आफ्टर द शो, तो 10-15 हज़ार का टिकट खरीदना पड़ेगा. तो वो मोदी के साथ वो मीट एंड ग्रीट पास जैसा है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ओके, और एटलीस्ट आई प्लान टू, देन वी कैन नेगोशिएट दैट कितना टैक्स ब्रेक आप देंगे या नहीं देंगे. तो उसके बाद ही मोदी के साथ ये इतना गले वले मिलना होता है. वो तो कॉमिक्स को समझ में नहीं आता है. ना किसी अमेरिकन बिजनेसमैन ने अनाउंस किया कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं या मैं ये प्रोजेक्ट लगाता हूं. तो बहुत क्लियर है कि ये मीटिंग थी इस बात पे कि कैसे डी-डॉलराइजेशन करना है, घटिया वाला करना है या अच्छा वाला करना है. घटिया वाला करना है तो आप मेरी शर्तें ना माने तो फिर मैं मेरे हिसाब से करता हूं. ये धमकी थी ये वाली मीटिंग जो. और वैसे ही जैसे ही बाइडेन ने डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया, आपने देख लिया ब्लिंकन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, पूरी हवाइयां उड़ गई ब्लिंकन के चेहरे की. क्योंकि आप उसको यू कैन नॉट राइल हिम अप पर्सनली, नो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक लग चुका है. दोनों इकोनॉमी साथ में ऊपर चढ़ी थी और दोनों इकोनॉमी साथ में नीचे उतरनी है ये फाइनेंशियल रीसेट में. तो आपको समझना होगा कि शी जिनपिंग के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके में चलने में ही आपका ईजियर होगा ये डीग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस. और वो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड तो आप भूल जाओ, वो नहीं होने वाला है. दैट कैन नॉट सस्टेन. और ना कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है आज, ना भारत की, ना यूएस की, ना चाइना की, ना रशिया की. So here, this is where the counter against Sushant Sareen starts at least. Okay, he's saying that Sushant Sareen's premise was that if de-dollarization does happen, who is going to replace it? He's saying there's going to be no replacement, which the person Vaibhav Yadav was pointing out here. 4 में से एक भी ग्लोबल पावर की इकोनॉमी का स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि आप यूनिपोलर सिंगल करेंसी वर्ल्ड को चला पाए. किसी की कैपेसिटी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट. ठीक, तो आप सबको कॉम्प्रोमाइज करके मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा. और अभी मैंने जो एक ट्वीट किया, डच सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर ने बोला है कि कभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए अगर सडन इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो वो एक ही एज है, व्हिच इज गोल्ड. बराबर, ये लास्ट ईयर से हम ये बोल रहे हैं, राइट. बहुत क्लियर है. सिटी बैंक के लेऑफ्स आज अनाउंस होने, कुछ ट्विटर हैंडल्स पे भी मुझे पूछ रहे थे कि सर कब अनाउंस होंगे लेऑफ्स. अनाउंस यहां पे भी पूछ लिया लोगों ने क्वेश्चन सिटी बैंक के ऊपर. जी, तो हमने बताई था जयपुर डायलॉग्स के समिट में, मैंने मंच पर से बताया था कि पूरा वेस्टर्न बैंकिंग का नेक्स्ट ईयर कबाड़ा होना है, क्लियर बता दिया था. और हमारे वेस्टर्न विशेषज्ञों ने मना भी किया था. Okay, now they are going to get into more, I think, specifically Sushant Sareen, Abhijeet and Mitra. But before that, let me point out that कहाँ गया? अरे sorry, भूल गया. अपोज भी किया वहाँ पे. Yeah, so what I'm thinking is that if everything Ankit Shah is saying is true,
I think I can't now keep on mentioning this statement that if everything Ankit Shah is saying is true, we have to come up with a smaller term. Okay, let's just call them Ankit Shahi. Okay, if you are an Ankit Shahi, and if the world goes according to Ankit Shahi principles, okay, then Trump and Ramaswamy will have to make a lot of changes to their campaign or their vision as well. Remember, Vivek Ramaswamy is pro de-dollarization, maybe for some other reasons, or maybe he will sell it as a different reason, which is that he has so far said that he's against de-dollarization because it makes dollarization, dollar being so powerful, makes American products unbuyable, basically unaffordable in the entire world, which we know that no one in any field buys almost any American product unless they are the leaders in that product. Okay, maybe Iyer Rahman can buy an American made synthesizer. हमारे लेवल पे कोई भोसड़ी का अमेरिकन चीज कोई कुछ नहीं खरीदता है. गिटार विटार छोड़ दो, अमेरिकन गिटार स्टार्ट at 1,80,000 2 लाख like that. Okay, तो अमेरिका कहाँ जाएगा? अमेरिका का राइट विंग बोल रहा है कि हमको एम्प्लॉयमेंट दो, जॉब्स जॉब्स जॉब्स, ठीक है, रीस्टार्ट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन अमेरिका. तो अमेरिकन क्राफ्ट्समैनशिप इज सो ग्रेट, वी नीड टू गेट बैक टू दैट. तुम्हारा गांडू, तुम्हारा $15 पर आवर का चार्ज का कौन देगा? और तुम उस सैलरी से काम करोगे तो वो खरीदेगा कौन? तो विवेक रामास्वामी इज राइट अप टिल हियर, बट लेट्स सी व्हाट ट्रम्प डज इफ ही डज विन. बट इफ देयर deep state so-called is really in line with Ankit Shah's idea that yes, it's inevitable, let's just adjust according to that, then there's no way they are going to let Trump win once again. Okay, they are going to do some shenanigans. Already there's a virus coming around from China again, for which they will probably close down and do rigging again. But it's going to be interesting to see that maybe Vivek Ramaswamy and Trump will be left holding the ball. Okay, that when the music stops, that everything is going to change. They are going to keep hoping for a rejuvenation of American society, which is not absolutely going to happen. Manufacturing can't come back to America at all unless they completely get rid of minimum wage laws, or there's a gigantic depreciation in their society in terms of quality of life. Okay, because if you, let's say we do pay American laborers $1 $2 per hour. Okay, तो उससे वो खरीदेगा क्या, खाएगा क्या? तो बाकी सबको सब कुछ का प्राइसेस कम करवाना पड़ेगा. तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गया यूएसए का गड्ढे में. और टू काउंटर दैट, मे बी दैट इज वाई द अमेरिकन लेफ्ट विंग एस्टैब्लिशमेंट डीप स्टेट इज सो मच इन फेवर ऑफ नो बॉर्डर्स. ओके, कभी कभी टेक्सास में लास्ट कुछ महीनों से ऐसे ही 1-2 दिन के लिए बॉर्डर सिर्फ खोल दे रहा है. ओके, एक इन्वेजन के तरह सदर्न बॉर्डर से यूएसए में लोग घुस रहे हैं, क्योंकि इन इलीगल्स के साथ ही अमेरिकन मैन्युफैक्चर का कुछ थोड़ा बहुत कमबैक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को $15 पर आवर नहीं देना पड़ेगा. ओके, दैट इज प्रोबेबली द रीजन. Again, that is why I'm kind of shifting towards the Ankit Shahi principle, that yeah, then everything he is saying is true because it makes sense in that way. And it might be a bias that, yeah, I'm now looking for patterns to confirm my bias in favor of Ankit Shah. That might be the case. We'll find out 20 years later. So far, if anyone has any counter, let me know that the borders are opening. They are the ones who are going to work at $1 $2 per hour. Americans are not. Legal Americans can't work below $15 $10 per hour. Standard of life कहाँ जाएगा? और नहीं तो उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा भाई? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि द वे यू एनालाइज थिंग्स, आप डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट अब करते आप हैं. पंजाबी को इकोनॉमिक्स पूछोगे तो क्या होगा? तो भंगा करेगा. जब गुज्जू स्टेज पे बैठा है. आउच. ओके, जिसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. तो अपने RSB, तो या दैट इज ग्रेट, दैट इज अ गुड पॉइंट टू ब्रिंग अप, दैट वो वायरस की वजह से अब हमको भी घर में बैठना पड़ेगा और कुछ घपला होगा इलेक्शन में. मगर इलेक्शन में CCP या शी जिनपिंग किसको चाहता है इंडिया में, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अंकित शाह का व्यू होगा कि इवन शी जिनपिंग वंस मोदी इन पावर, बिकॉज इफ maybe Xi Jinping might not want, but at least USA wants Modi in power because so much of their money has already been invested here, which he will say in this podcast itself, that now America does not want a regime change in India even, because with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi in power, all these companies' investments which have happened in India, that's all going to go to hell. अपने तो लास्ट ईयर से बात कर रहे हैं कि बैंकिंग और आईटी सेक्टर दोनों, उसके बाद कंसल्टिंग सेक्टर वेस्ट में, और उसके बाद जो पूरा एजुकेशन सेक्टर पर क्वेश्चन लगेगा वो. तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि इस प्रकार का क्राइसिस आ रहा है. और जो मुझे समझ में आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए इतने सारे चैलेंजेस है, क्योंकि सिटी बैंक जो है ये आपके 2 बिग बैंक्स की कैटेगरी में आती है. बिल्कुल. अगर सिटी बैंक 2,40,000 एम्प्लॉइज हैं
और उसमें से जो प्राइमरी अभी इन्फॉर्मेशन है 10,000 का ले ऑफ होगा, दिस इज प्राइमरी फर्स्ट राउंड। तो आप ये सोचो कि अगर बड़ी बैंक बोल रही है कि मैं खुद के एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहा हूं, तो ये छोटी बैंक्स को कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे टेक ओवर करेंगे जब ये खुद अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो इतना खराब आ रहा है क्योंकि जो पूरा रिजर्व करेंसी का बबल कमर्शियल रियल एस्टेट में इकट्ठा हो रखा था वेस्ट में, वो पूरा क्रैश आ रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट का। और क्योंकि और आप जानते हैं कि एक तो पूरी जनरेशन है जो क्रेडिट कार्ड पे जीती है, क्रेडिट कार्ड पे आपको पता ही होगा क्या परसेंटेज रेट है इंटरेस्ट का। बिल्कुल 21%। तो ये जो सपने दिखा रहे थे कि रेट कट्स आएंगे, और हम बात कर रहे थे कि ये लोग मामू बना रहे हैं, रेट कट्स तो आप भूल जाओ। तो अच्छा अगर ट्रम्प आता है या विवेक रामास्वामी आता है, कोई में से एक आता है। See, even the most respected American YouTubers in finance, in politics, they are so fucking illiterate when it comes to geopolitics that first of all we have already seen that even American right wingers are absolutely clueless on the Israel-Palestine issue, that it's not a nation state issue, it's a religious issue. Secondly, all the share market or finance channels on YouTube, they keep saying that I think my prediction is that this time rate cuts will happen. Okay, they still keep hoping for that. कैन दे रिवर्स दिस ट्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। देखिए मेरी समझ में जो मैंने ट्रम्प का रेजिम देखा है, 4 साल में पूरा हायरिंग और फायरिंग चला, क्योंकि जिस को अपॉइंट किया फिर उनको पता चला कि ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला वही डीप स्टेट का बंदा है। जैसे जैसे एक पकड़ा जाता है वैसे वैसे वो फायरिंग करते गए। तो पूरा ट्रम्प का टर्म जो था 4 साल हायरिंग और फायरिंग, हायरिंग और फायरिंग, सब यस सर बोले, लेकिन किसी ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन इलेक्ट होता है। पर मैं स्पीचेस पर से इतना बता सकता हूँ कि विवेक जी के सारे आंसर्स टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं, मतलब हर तरह से वो परफेक्ट लगते हैं जितने भी आंसर्स वो देते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पर भी कभी डाउट होता है कि इतना सही कोई कैसे हो सकता है। तो Okay, now guys, even Ankit Shah is saying what a lot of American right wingers have said, that I don't trust this guy, he's a brown Obama, and he how can someone say all perfect things all the time? Okay, they can if they are that well read, and if you, I think somewhere I was reading that even Vivek Ramaswamy's IQ tests have come out from his college days. He is a top-notch guy, okay? And think of our rishis who used to meditate all the time and come upon these ideas. What do you think their IQ was? So it's not really impossible. So I'm not comparing Vivek Ramaswamy with our rishis, but with that IQ, he has read a lot for all his life. He has been a topper forever. In every school, college he has studied, in university, okay. Even he was a tennis star as a kid. तो is it really unbelievable that it's impossible? हमने सिर्फ गांडुओं को सामने देख के हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नीचे चला गया है, तो हम क्या करें? विवेक रामास्वामी is what every Hindu intellectual should be and could have been. I'm not sure, पर ये बात तो क्लियर है कि अपॉइंट कोई भी होता है, इलेक्ट कोई भी होता है, चलना तो वहीं से है, प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज के हिसाब से ही चलना है। नहीं, पॉवर्टी का एक सिंबल होता है कि लोग चर्च की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, गॉड 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 गॉड। तो पहले सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ भगवान तो परमात्मा हर समय वो करते हैं, वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे द मोमेंट यू सी पीपल टर्निंग टुवर्ड्स गॉड इन एवरीथिंग, इसका मतलब चर्च तो हमेशा पॉवर्टी लेकर आया है पूरे विश्व में। जहाँ भी चर्च पहुंचा वहाँ पॉवर्टी आई है। सो दे आर मतलब एक थियोक्रेटिक स्टेट का भी बात हो रही है अमेरिका का ट्रांसफॉर्मेशन। दिस आल्सो शोज गरीबी आने वाली है, बिकॉज जहाँ भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है वो गरीबी रही है। सो डू यू थिंक दैट इज आल्सो एन इन्फ्लुएंस? क्योंकि विवेक रामास्वामी जितने भी ये लोग बात कर रहे हैं, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट गॉड, चर्च, यही सब बात हो रही है, क्रिश्चियन वैल्यूज, और बेचारा वही एक्सप्लेन करता रहता है, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, वो करता रहता है। सो डू यू थिंक दिस आल्सो साइन ऑफ व्हाट दे ऑल एक्सेप्ट राइट नाउ? देखिए आप जानते हैं कि एनआरआईज का एक बिल्कुल जैसे भारत में कन्वर्ट्स का होता है कि रियल अरबिक। Okay, this is not that relevant, that's why I'm fast forwarding, not because he's hating Vivek Ramaswamy. Let's get into the next topic. बिल्कुल साफ दिखता है, बिकॉज एंड अच्छा इसमें जो अरबिक कंट्रीज इनवाइट ही नहीं करते उन लोग अपने देशों में। हिजरी माने इस्लामिक लैंड से नॉन इस्लामिक। हाँ, प्रोटेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, अरबिक कंट्रीज इनवाइट ही नहीं करते उन लोग अपने देशों में। वो तो लेने से मना कर दिए। लेने से मना कर दिए। ये तो क्लियर है ना कि इस्लामिक कैलेंडर है जो है वो हिजरी से स्टार्ट होता है। हिजरी माने इस्लामिक लैंड से नॉन इस्लामिक लैंड में जाना, उसी से उनका कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो कोई भी इस्लामिक कंट्री कभी भी मुस्लिम्स को एकोमोडेट नहीं करेगी, और मुस्लिम्स भी कभी नहीं जाएंगे किसी इस्लामिक कंट्री में, वो वही जाएंगे नॉन इस्लामिक कंट्री में, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है जो उनके बिलीफ सिस्टम में है इज टेक ओवर ऑफ लैंड। ठीक है, आप जानते हो कि पूरे कयामत से पहले ऑल दैट थिंग हैज टू हैपन। तो बहुत क्लियर है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो बोट्स उनकी पलट जाती है, मर जाते हैं, लेकिन वो कभी इस्लामिक लैंड में नहीं जाएंगे। ये सारे रेफ्यूजीज या जो भी है वो हमेशा नॉन इस्लामिक कंट्रीज में ही जाएंगे। इनफैक्ट भारत का भी जब पार्टीशन हुआ था तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से 90% ने वोट किया लेकिन पार्टीशन के लिए, लेकिन फिर गए नहीं। और आप क्यों? बिकॉज़ वो जान रहे थे कि this is what Jay Sai Deepak has pointed out in his books, that we get hearing these, we keep hearing these arguments that they were the patriotic people who did not go even though they voted for Muslim League. What the fuck? Voting for Muslim League meant that you were in favor of partition. After that you didn't go. There were other reasons, not patriotism. फिर नॉन इस्लामिक लैंड हो जाएगा अगर यहाँ से निकल लिए। तो बहुत क्लियर है कि प्लान ये था कि 5 भाई है, तो उसमें से 5 भाई जो है, 5 में से 3 यहाँ रहेंगे और 5 की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और 2 पाकिस्तान में जाएंगे और वहाँ 2 हिंदुओं की प्रॉपर्टी वहाँ जाके भी खाली करवाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और बांग्लादेश का एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट जो है
That is almost verbatim the Waqf Board Act that we have today in India. तो इसी प्रकार का पार्टीशन हुआ था. तो दिस इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ टेक ओवर कमांडमेंट्स कन्वर्जन एंड ऑल दैट थिंग्स. एक समय में आके आई थिंक अभी आजकल नेशनलिज्म की बहुत बात होती है अमेरिका में, और नेशनलिज्म तो कैसे आएगा क्योंकि सबके दो पासपोर्ट हैं. जितने भी सेटलर अमेरिकन सबके दो पासपोर्ट हैं, एक इटालियन, एक अमेरिकन, एक फ्रेंच, एक अमेरिकन. ओनली इंडिया में इंडियंस के पास दो पासपोर्ट नहीं है. इंडियंस के पास एक ही पासपोर्ट होता है, दूसरा उसी कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया तो हाँ, ये ना नेशनलिज्म को लेके एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि नेशनलिज्म का मतलब होता है हाँ मेरा देश अच्छा है, स्पोर्ट्स के वक्त देश का नाम लेकर थोड़ा चिल्ला लूंगा तो नेशनलिज्म हो गया. नहीं भाई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है टेकिंग टफ चॉइसेस, नॉट बीइंग अ लिबरल वोक नट जॉब ऑल द टाइम. यू कांट बी बोथ एट द सेम टाइम. So and the reason that people really don't keep America first, and now Trump, Vivek, and some actual white nationalists keep bringing up this term of America first, is because most Americans are not nationalists in the literal term, because they are not even fully American citizens. All of them have double passports. That's the same problem being faced with Pakistan as well. सो दिस नेशनलिज्म आने वाला नहीं है बिकॉज़ दे इग्नोर द रियल नेशनलिस्टिक पीपल, नेटिव अमेरिकंस. उनको तो इग्नोर किया हुआ है. अच्छा, अगर हम दुनिया में जब इन लास्ट 2 वीक्स लॉट हैज चेंज जैसे हम लास्ट टाइम जो बात किया था, तो अभी जो ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो डस्टबिन में चला गया, व्हिच यू प्रेडिक्टेड आल्सो, हमारे शो पर है, डस्टबिन में चला गया. एंड देन आपने ये भी सही प्रेडिक्ट किया था, इजराइल ये जो वॉर चल रहा है दैट इज जस्ट अ फ्रंट फॉर समथिंग एल्स. एक नया रिपोर्ट भी आया है कि इजरायली सोल्जर्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन सम ऑफ दोस थिंग्स. ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट था. वी वर इन्वॉल्वड इन फैसिलिटेटिंग दीस थिंग्स. और तीसरा एक और रिपोर्ट आया है कि ऑल दीस कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज जो कॉलोनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए, they are trying to open a new front with any other country. How true is that? China, जैसे इंडिया को चाइना से भिड़वाना. वेल देखो, भारत इज आउट ऑफ क्वेश्चन किसी के टारगेट पे हो, क्योंकि कंजम्पशन के लिए अभी एक ही मार्केट बचा है जो खुद वर्क करके अर्न करके कंज्यूम कर सकता है. तो भारत इज आउट ऑफ क्वेश्चन, और ऐसा कोई ग्रुप नहीं बन सकता इफेक्टिव ग्रुप जिसमें भारत सेंटर में ना हो. तो ये तो बात आप भूल ही जाओ कि भारत को बाहर रख के कोई ग्रुप बन सकता है विच विल बी सक्सेसफुल. ठीक है. दूसरा आपको ये समझना है कि 2-3 चीजें आपने जो उठाई, एक जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हर एक वेस्टर्न कंट्री में आपने देखी. ठीक है. तो आपको ये समझना है कि पिछले 40 साल में डीप स्टेट ने जिस प्रकार से सारी फंडिंग की थी डॉलराइजेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए, जिसमें पेट्रो डॉलर्स का बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया और यूएई से फंडिंग हुआ रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द मिडिल ईस्ट. तो आपको ये समझना है कि अब रिवर्सल प्रोसेस चल रहा है. तो जब आप रिवर्स जाते हो किसी भी पॉलिसी में, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका पुराना जो आपने सेट किया था वो अब आपको कन्फ्रंट करेगा. ठीक. तो ये जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट दिख रहे हैं वेस्ट में, ये वही चीज है कि जब आप सीढ़ी उतर रहे हो तो वो पुराने टूल किट सब आप ही को परेशान कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए बीबीसी और ये सबको अब दे आर हैविंग हार्ड टाइम फेसिंग द रियलिटी कि भाई अब तो इजराइल काउंटर कर रहा है वहां से, और यहाँ से क्योंकि आप पूरा लेफ्टिज्म और जिहाद वाला कॉन्सेप्ट चलाए थे 30-40 इयर्स. तो अब वही मेंबर, अब एक उसी गुट का एक मेंबर जो है वो इजराइल है, अब वो डीडॉलराइजेशन के प्रोसेस के चलते रेडिकलाइजेशन को साफ कर रहा है. तो अब आप कंफ्यूज हो के आप क्या करना है. तो बीबीसी के रिपोर्टर्स की हालत जो आप देखते हो टीवी पे तो उनको लगता है साला 30 इयर्स से ऐसे चल रहा था, अब ये क्या हो रहा है. तो यही हालत जावेद अख्तर से लेके यहाँ पे शैला रशीद से लेके जितने क्योंकि ये तो पेमेंट्स ले रहे थे ना, ये तो पेमेंट्स लेके कुछ बोल रहे थे 30-40 इयर्स से. तो अब अचानक से जो पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है तो इनके इंसेंटिव्स अब चेंज हो गए, अब इनको उल्टा बोलना पड़ रहा है जो लास्ट 30-40 इयर्स में जो बोला था. तो ये उसी पे बात भी हुई थी, हमने आई थिंक पिछले टॉक्स में भी बात किया था कि ये जो स्नेक्स इन द गंगा है, इनका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये लोग पे एज यू गो वाली चीज है, इनको इंसेंटिव दो और अपना काम कंप्लीट कराओ, इनको ट्रस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है तुमको. अच्छा, और दूसरा आई थिंक ये रेस भी हुआ था जयपुर डायलॉग समिट में जब सुशांत जी ने बात की. अरे सुशांत जी नाम बोल दिया है, ठीक है, अब सुनो. न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की. तो एक बात है कि when people think they are criticizing capitalism, okay, a lot of Indian right wingers with whom I have this problem, and a lot of people who think that when I'm talking in favor of free markets or capitalism, they think I'm therefore completely ignoring that doing wars in Middle East did benefit USA's economy, or they think I'm justifying that, this global dominance thing. I'm not talking about those things. You have no idea. Are you ignoring? You are probably ignoring then the how low level of a discourse we have in India on economics, because we need to reach that part, okay, to talk about whether अच्छा अगर हम ज़्यादा कैपिटलिस्ट बन गए तब क्या हमारे सोसाइटी में वोकिज्म आ जाएगा या हम ग्लोबल डोमिनेंस करेंगे. तो वो नहीं करना है, इसलिए फ्री मार्केट को अभी भगा दो. तो यहाँ पे ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता है. तो एट द मोमेंट वी नीड फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म एटसेट्रा, बिकॉज right now the country is filled with people who are saying that rich people are bad, being rich is bad, businesses are bad, businesses will have to bow down to freebies or all sorts of insane taxes or licenses etc. That's the level we are at. पहले ये ओवरकम करते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे कि नहीं भाई अमेरिका ने उसका प्रॉस्पेरिटी से जो काम किए या फिर जो काम के वजह से प्रॉस्पेरिटी आया वो सब में हम नहीं घुसने वाले हैं, जिसको एकेडमिक्स, हाई लेवल एकेडमिक्स call that actually capitalism. So that's why capitalism is actually a derogatory term for free markets or for talking about the bad parts about
a prosperous country which is done on Abrahamic principles. So I'm not talking about that. I'm talking about a free market and business entrepreneurship. उनको क्यों वैलिडेशन चाहिए वेस्ट से? तो ये सब ये जितने भी पुराने थॉट प्रोसेस Yeah. चल रहे हैं, So Sushant Sareen had told him that why are you looking for validation from West, and now Ankit Shah will say no, I'm not looking for validation from West. I'm talking about something completely different. This is the important point here. अच्छा, और दूसरा आई थिंक ये रेस भी हुआ था जयपुर डायलॉग समिट में, जब सुशांत जी ने बात की न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की कि भाई तुमको क्यों वैलिडेशन चाहिए वेस्ट से? तो ये सब ये जितने भी पुराने थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है ये नया व्यू कि हम भाई साहब हम वैलिडिटी नहीं देख रहे हैं, हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम एनडीटीवी को ओन करेंगे हमको रविश कुमार से वैलिडेशन नहीं चाहिए इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नया भारत है इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ना इनको। ये एनडीटीवी ओन करने से याद आया कि what do you think, why do you think Adani cancelled his investment, 5,000 crore investment in Bengal, guys, in a beach called Tajpur? He was going to build a seaport for what reason I forgot. What was the project? I exactly I don't remember. But that has been cancelled as of yesterday. So either it's because he's pissed off with Mitra, or if the project is really unviable, then Bengal is even more fucked, because that was the one major investment we were about to see in a long time. And Mamta is now calling for other people to join the tender. But if Adani has really done research and his scientists have discovered that no, it's not viable, there's no point doing it, or his economists have discovered, then other companies would only be stupid to join the venture. And that is why I'm saying that government should not do these things. A lot of people were saying that government should not even build ports. अरे भाई, ये unviable project government होता तो बना लेता, क्योंकि उनके गांडू लोग बड़े हैं, उनको साइड से कोई पैसा मिल जाता। अदानी है इसलिए अनवायबल है तो नहीं बनाया, ओके, क्योंकि उसको पैसा उड़ाना नहीं है। कोई एनालिसिस समझ नहीं आता, पड़ेगा ही नहीं उनको कुछ समझ, ठीक है? तो और फिर इनको ये भी नहीं समझ आया कि भाई साहब जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो फिर आप सिंगल कंट्री करेंसी की कैसे बात कर सकते हो? या तो आप दोगले हो, क्लियर बोल दो कि भाई हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। Right, guys, this is the most important counter of Sushant Sareen and AIM's views, guys. This is very important. Focus on this. तो और फिर इनको ये भी नहीं समझ आया कि भाई साहब जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो फिर आप सिंगल कंट्री करेंसी की कैसे बात कर सकते हो? या तो आप दोगले हो, क्लियर बोल दो कि भाई हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप बोलते हो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि डीडॉलराइजेशन नहीं हो रहा। Right. तो ये मतलब So just to be fair to AIM and Sushant Sareen, so when they do say multipolar world order, do they just mean it in terms of culture and soft power and a bit of diplomatic power, not real economics? But can all those things happen without economics? What do you think? I'm asking you guys to steelman AIM and Sushant Sareen's arguments here, because it would be unfair to assume that they are dogle. So if they are not dogle, why are they saying it? अरे नीनर, एक बार में 6 month का membership ले लिया क्या? अच्छा, thank you, thanks a lot, very much. I'm not being able to say it very as well and nicely as possible, but I'm very thankful to you. रहे हो तो फिर आप सिंगल कंट्री करेंसी की कैसे बात कर सकते हो? या तो आप दोगले हो, क्लियर बोल दो कि भाई हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप बोलते हो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि डीडॉलराइजेशन नहीं हो रहा। तो ये मतलब इट्स लाइक एक्सपोजिंग योरसेल्फ, नो, काइंड ऑफ थिंग। तो यही बात है कि जो चीजें इनके समझ ही नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट्स, कि भाई ये सब पूरा रिवर्स होने जा रहा है। ये ऐसे ही शैला रशीद या जावेद अख्तर ऐसे ही कोई बोल रहा है कि अल तकिया है, अल तकिया तो अल तकिया, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पे एज यू गो है, इंसेंटिव लो और हमारा काम करके दो है। तो वर्ल्ड की अगर टॉप 3 इकोनॉमी में आप आ रहे हो, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में आप आओगे, कल को आप न्यूयॉर्क टाइम्स में 5% 10% स्टेक, कौन सी बड़ी बात है? मैं अल जजीरा में भी 10% स्टेक लूंगा, मैं सैलरी दूंगा, मैं लिखवाता हूं सनातन विजडम पे, कौन रोकता है मुझे? मैं भारत हूं, है? तो इनको ये समझ नहीं आ रही है बात ये दिक्कत है, इनके समझ के बाहर है ये सब। और अंकित जी, सैकोलॉजी में हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, और उसमें वी सी दैट कि वी हैव नेवर फेस्ड एनी अपोजिशन फ्रॉम एनीवन। हम लोग ओपनली गीता में बात करते हैं, ओपनली रामायण में बात करते हैं, ओपनली हम लोग बात करते हैं अपने ऊपर, एंड वी हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम। एंड लेकिन जितने भी जो सेक्युलर लोग हैं, दूसरा एक नैरेटिव बड़ा अजीब सा चल रहा है आदित्य जी, बहुत गौर करने वाली बात है। मैं तो ये खाऊंगा, मेरे को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो नॉनवेज खाऊंगा ही खाऊंगा। अच्छा, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि भाई साहब पहले इनको समझाते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये मेरी राइट है, मुझे जो खाना है मैं खाऊं, ठीक है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं, दर्शकों को समझना जरूरी है। ये फेक एक्सपर्ट्स को आप पकड़ पकड़ के पूछो इनको, हैं, जो पूरे दिन चलाते रहते हैं कि इसने मेरे ऊपर ये बैन लगा दिया, ये हिंदुइज्म हो गया, मेरे को खाने नहीं दे रहा नॉनवेज, ये फालतू बकवास। इनको समझाते हैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो राइट वाली थियरी है ना कि ये मेरी राइट है, ये वेस्टर्न टेम्पलेट वाला विक्टिम मूड है, जिनकी डेमोक्रेसी बनी है गवर्नमेंट से पावर छीन के। तो ब्रिटिश सॉरी, मैं थोड़ा एक्चुअली कोल्ड कैच हो गया, तो जो कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट है जो राइट्स बेस्ड सोसाइटी जो है वो उस पे बनी है कि स्टेट ने मेरा एक्सप्लॉइटेशन किया है तो मुझे सारी राइट्स चाहिए। ये थॉट प्रोसेस वेस्टर्न टेम्पलेट है जहां पे वेस्टर्न सिटीजन्स गन्स भी रखते हैं और गन्स रखने का जस्टिफिकेशन भी यही देते हैं कि शायद हमको कभी स्टेट के खिलाफ काम आएगा गन्स। काम आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो इनके उल्लू एजेंट्स बैठे हैं जो पूरे दिन लगे रहते हैं, मेरी तो ये राइट है, मेरी तो ये खाने की राइट है, ये राइट वाली सोसाइटी है ही नहीं, ये ड्यूटी वाली सोसाइटी है सनातन वाली। अच्छा दूसरी बात आपकी राइट है तो सनातन ने कब बैन किया है कुछ खाने से? सनातन ने तो बोला, सनातन जो है धर्म इज अ उपदेश फिलोसॉफी, रिकमेंडेशन। कमांडमेंट वाली फिलोसॉफी तो हमारी है ही नहीं, आदेश फिलोसॉफी वो तो अब्राहमिक रिलीजियंस की है। ठीक है। तो सनातन फूड के ऊपर क्या बात करता है वो आप सुनो। सनातन बोलता है कि अगर आपका काम, आपका वर्क, आपका ऑक्यूपेशन अगर रिसर्च का है, अगर आपका ऑक्यूपेशन एनालिसिस का है, अगर आपका ऑक्यूपेशन नॉलेज सीकिंग का है और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का है, माने कि आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, रिसर्चर हो, लर्नर हो, अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से कुछ है तो आप सात्विक खाना खाइए। ये सनातन रेकमेंड कर रहा है, आदेश फिलोसॉफी कमांडमेंट वाली रिलीजन की थियरी नहीं है। वो बोल रहा है ऐसा करोगे तो आपका ऑक्यूपेशन का आउटपुट अच्छा आएगा। दिस इज व्हाट सनातन इज सेइंग। दूसरा सनातन क्या बोल रहा है? अगर आपका ऑक्यूपेशन हार्ड फिजिकल वर्क का है, फिजिकल लेबर, ठीक है, तो आप तामसिक खाना खाते हो। ठीक है, तामसिक खाना खाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सेंसेस हैं उसको उत्तेजित करता है और आपका ज्यादा आप वर्क कर पाओगे, राइट। तो फिजिकल वर्क वाले लोग तामसिक खाना खाएं, रिसर्चर है, प्रोफेसर है, टीचर है, एनालिस्ट है, वो सात्विक खाना खाए। क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में कभी डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से या सेंसरी अटैचमेंट की वजह से आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो आपके थॉट प्रोसेस से। ठीक है। और जो लोग मोनार्क है, जिनको स्टेट की रक्षा करनी है, वो कैसा खाना खाएंगे? राजसिक खाना खाएंगे। तो तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों कैटेगरी दी गई है, आपको रेकमेंड किया गया है कि आप ऐसा खाओगे तो आपका आउटपुट, वर्क आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है। सनातन में ये नहीं बोला है कि सबके ऊपर बैन लगा दो, आज से यही कमांडमेंट है। Yeah, except cows. So Amrita and Sushant is saying maybe Sushant Sareen and AIM's argument is that multiple world currency is too much of an inconvenience, which is probably correct, which I have been also thinking that अभी तक तो एक standardization का तो कुछ benefits है ना, side effects तो है ही बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि अंकित शाह का recommendations या predictions जब सही हो जाएंगे तो बड़े मज़े होने वाले हैं। थोड़ा बहुत सारा inconvenience शुरू में तो होगा ही, but also it might be done very easily with AI or software in a way that the conversion might be in a matter of seconds, so it not might be that much of a big deal, might be okay. So in that case AIM and Sushant might be right, and Cheap Thrills is saying that Ankit Shah is the greatest con artist on our side. Yes, and if that is the case, we are fucking screwed. And Cheap Thrills, could you elaborate a little more that why do you think Ankit Shah is a con artist? ये सनातन की थियरी है ही नहीं, तो ये समझना है आपको। तो वो जितने भी बेवकूफ जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाले पूरे दिन आर्ग्यू करते रहते हैं, मैं तो खाऊंगा। अच्छा दूसरी आर्ग्यूमेंट आती है, अच्छा उस स्टेट में ना आदित्य जी, उस स्टेट में ब्राह्मण्स भी नॉनवेज खाते हैं, ये ऐसी आर्ग्यूमेंट आती है। तो वापस वही बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इज अ टाइटल, इट इज नॉट अ क्लोज ग्रुप। तो अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है, विच इज नॉलेज सीकिंग, टीचिंग, रिसर्चिंग, एनालाइजिंग, अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है तो सनातन बोल रहा है कि सात्विक खाना खाओ। बर्थ से नहीं बोल रहा। बर्थ से ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में बर्थ होके फिर भी नॉनवेज खा रहा है कोई स्टेट में, हो सकता है उसको नहीं समझ में आ रहा सनातन का ये राजसिक, तामसिक और सात्विक खाना का क्यों रिकमेंडेशन दिया गया है। तो जितने भी वहां स्टेज पे कद्दू जैसे बैठे थे और बात कर रहे थे कि नहीं मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, भाई तुम्हारा अगर हार्ड फिजिकल लेबर है तो खा लो, कौन मना कर रहा है आपको तामसिक खाना? पर उनको देख के तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई हार्ड फिजिकल लेबर वाला वर्क कर रहे हैं। Now he's fat shaming people, okay? तो अगर आप एनालिस्ट हो और उसके बाद भी आपको तामसिक खाना खाना है तो फिर आपके हेल्थ पे उसका इंपैक्ट आएगा। ठीक, भगवद गीता में वेरी क्लियरली भगवान बताते हैं कि तामसिक खाना कौन सा होता है, राजसिक और सात्विक कौन सा होता है, और वे बताते हैं कर्म किस प्रकार से होते हैं। जो सतगुण के कर्म किस प्रकार, ब्रह्म कर्म जो बताते हैं, शम दम तप शौचम, और फिर क्षत्रिय के कर्म बताते हैं, वैश्य के कर्म बताते हैं, शूद्र के कर्म बताते हैं, और तो कर्म के आधार पे और जो गुण के हिसाब से। लेकिन आजकल तो लोग इसको बेकार की बातें मानते हैं। और फिर मेरे आपकी बात में बोल रहा हूँ, अगर सतगुण में नहीं होगा तो एनालाइज कैसे करोगे भाई? हाउ विल एनालाइज? एनालिस्ट का मतलब ब्राह्मण का कार्य हो गया ना, कहाँ पे तामसिक गुण से कहाँ से एनालाइज कर सकते हो? दैट इज व्हाट इट इज। तभी तो उनका कुछ भी एनालिसिस सही नहीं होता है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि खाना शुरू कर दे सात्विक खाना, शायद एनालिसिस सही होना शुरू हो जाए। आई एम सरप्राइज्ड कि भोजन किस प्रकार का है, बिहेवियर किस प्रकार का है, और फिर कार्य किस प्रकार के हैं, एंड देन यू वांट टू बिकम ब्राह्मण। सब लोग सुनना भी चाहिए। अब आपको कलयुग में ऑडियंस मिल भी जाएगा। तो ये बात समझ नहीं आई कि कमांडमेंट्स तो है ही नहीं सनातन में। बिल्कुल नहीं है। तो आपको किस लिए, किससे राइट मांग रहे हो? गवर्नमेंट ने भी कुछ बैन नहीं किया है, किस लिए रो रहे हैं? मुझे तो वही बात समझ नहीं आई। मैं तो ये खाऊंगा ही खाऊंगा, कौन रोक रहा है भाई आपको? एक्चुअली अभी जब लोग देखते हैं नाउ फ्रॉम द सतगुण के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एज इट इज ना। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं बांग्लादेश का रिसेंट, बांग्लादेश में जो चल रहा है, एंड लोगों ने एरिक गार्सेटी के ऊपर भी बहुत चीजें बोला था, आपने उस पर बहुत क्लैरिफिकेशन दिया है दूसरे इंटरव्यूज में, एंड और आपने पहले शो में हमारे इधर बोला था एरिक गार्सेटी के ऊपर कि भाई उसको समझा देंगे, हम प्यार से समझा देंगे। जयशंकर ने बोला था, वो समझ भी गया है, वो भी दिवाली मना रहा था कुर्ते पजामे में, वो चुप हो गया। ही इज वेरी स्मार्ट। Yeah, this is the argument that according to Ankit Shah at least, that
USA does not want regime change in India because their investments have already been made here. गलती करेगा, वो क्यों गलती करेगा और वो क्यों रेजिम चेंज करवाएगा जब उसकी कंपनीज के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग चुके हैं? वो क्यों पागल हो गया क्या? वो रेजिम चेंज करवाएगा? ये पता नहीं कहाँ से ये क्या एनालिसिस लेके आते हैं। एरिक गारसेटी आया है, रेजिम चेंज करेगा, फिर विक्टोरिया नुलैंड आ गई। अरे भाई साहब, उनकी कंपनीज के यहाँ इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुके हैं। यू थिंक दे वांट राहुल गांधी बैक? पागल हो गए हो क्या? पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी, आई एम टोटली क्लूलेस व्हाट दिस एनालिस्ट्स आर टॉकिंग। नहीं, और उनके पैसे लग चुके हैं भाई अमेरिकन कंपनीज के। यहाँ पे गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनना शुरू हो गया नीचे। यू थिंक दे वांट राहुल गांधी बैक? नहीं, मैं इस बार तो अंकित जी, यू नो दैट, मैं इंडिया में था, अभी 17 को वापस आया हूं मैं, और इंडिया में पूरे इंडिया घूमा मैं, हर जगह मुझे हर जगह सनातन धर्म ऊपर उठता दिखाई दिया, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा हो कि कोई हिंदू को, मुसलमान भी थे वहाँ बहुत जगह, लेकिन ऐसा नहीं था कि सनातन धर्म के लोग वीक है, हिंदू कोई वीक है। हाँ, हिंदू सेलिब्रेशंस भी अभी बंगाल में और थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि क्योंकि अभी बंगाली कॉमीज को प्रमाण करना है कि भाई तुम्हारा क्या मोनोपोली है क्या हिंदुइज्म पर या रिलीजियस कस्टम्स पर या पूजा पाठ पे? देखो मैं भी तो कितना डिवाउट हिंदू हूँ, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड फिर भी मैं तुम्हारे तरह फैशिस्ट नहीं हूँ। सो लाइक there is a famous roop of Ma Kali called Boroma in some parts of South Bengal, in some official regions she is worshipped, I think in Noihati regions, I guess. So all of a sudden for the last 2-3 years I'm seeing huge celebrations and respect for her, worship for her, filling up my timeline, Facebook page from people who I've never seen do these things, okay, from like musicians, rock drummers, etc. So now there's an extra urge to prove them. वो competitive Hinduism जो कि जैसा दीपक का पॉइंट था, वो अब नॉर्मल कॉमन मैन में हो गया है कि नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो वर्शिप करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो उससे चलो इनडायरेक्टली बहुत सारे अच्छे चीज़ें तो होंगे ही। दे आर ऑल राइजिंग। अब केरल में मैंने देखा, तमिलनाडु में मैंने देखा, और मेरे साथ आप भीड़ देखिए ना, जो मुझे मिलने के लिए आए तमिलनाडु में, और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मुझे लगा कोई किडनैप करके मुझे मारेगा, वहां पिटाई करेगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। Yeah, Rashti, I had never heard of Boroma like 2-3 years up until 2-3 years back. Now every time I open my Facebook, all I see is Boroma and Boroma. अच्छा, एक मुझे ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे मैं उनको चुप करा रहा था, भाई जय श्री राम मत बोलो क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन है, एंड इतना ज्यादा चिल्ला के मत बोलो, बट देन इट वाज टोटली डिफरेंट। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जियोपॉलिटिक्स में भारत में पैलेस्टाइन, प्रो अच्छा, पैलेस्टाइन, जी आपने वो आर्गुमेंट सुनी थी क्या कि इंडिया को 25 साल अभी लगेंगे डी-डॉलराइज करने में? बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को कुछ बेचना पड़ेगा। जरा कोई इन लोगों से जरा जाके पूछो कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को क्या बेचा है कि उसके पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस है। जरा पूछो इनको जाके। तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट भारत के लिए इनके दिमाग में कहां से आई? अच्छा, चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को बेचता है, फिर भी उसके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं है, 6% से ज्यादा युआन का रिजर्व का नहीं है। ये कहां से ये थियरी लेके आते हैं कि पूरे वर्ल्ड को आपको सेल करना पड़ेगा तो आपका रिजर्व, तो आपको कुछ करेंसी के अंदर कुछ शेयर मिलेगा? मुझे बताओ यूरोप ने सबको क्या बेचा? This is a very important and significant point, guys, while encountering specifically Sushant, Sareen and Abhijeet and Mitra, that de-dollarization के लिए तुमको कुछ बेचना है, 25 साल लगेगा, ये कहाँ से आया? इसका प्रेसिडेंट क्या है? के प्रेसिडेंट मतलब PRECEDENT के पहले ऐसे कहाँ हुआ कि अच्छा तुम बेचोगे तभी जाके तुम्हारा करेंसी रिजर्व करेंसी होगा? नहीं, वो तो फिजिकल माइट से हुआ था। और चाइना जो कि सच में बेच रहा था पूरे देश को, उसका कहाँ से कोई रिजर्व करेंसी में उसका भाव बढ़ा? ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेच दिया जो 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस एंजॉय कर रहा था अभी तक, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। इनफैक्ट अमेरिका का अगर आप लास्ट 50 इयर्स का डेटा निकालोगे तो खाली 4 ही साल अकाउंट सरप्लस रहा है, ओनली 4 इयर्स। प्रोफेसर कुसुम के को प्रणाम करो, हमको सुन रही है लाइव ट्रेन में बैठ के। अरे वाह कुसुम जी नमस्ते। अरे भाई साहब, ये क्या आर्गुमेंट लेके आते हैं? मतलब इनको तो भाई साहब, आप मतलब ना इकोनॉमिक्स का पता, इनको कुछ भी नहीं पता। बोल रहे पूरे वर्ल्ड को आपको कुछ बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तो आपको करेंसी में कुछ शेयर मिलेगा। बताओ, इनको ये भी नहीं पता कि पाउंड से डॉलर में कैसे शिफ्ट हुआ गोल्ड के एक्यूमुलेशन के साथ, वो एक्सपोर्ट्स के साथ कुछ जब लेना देना ही नहीं था। अच्छा, यूरोप को कैसे 20% रिजर्व करेंसी मिल गया? ऐसा कौन सा क्या सेल कर दिया उन्होंने पूरे वर्ल्ड को? चाइना बन के बैठा है सबकी वर्ल्ड की फैक्ट्री 30 साल से, मैन्युफैक्चरिंग जायंट, उनको कुछ शेयर नहीं मिला रिजर्व करेंसी में, 6% पे अटके 5-6% पे। तो ये पता नहीं भारत के लिए क्यों ऐसी स्पेशल फैसिलिटी लेके आते हैं कि आपको 25 साल और इंतजार नहीं, एक्चुअली अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, भारत किसी युद्ध करने वाला नहीं है भाई, अब 10 बार हम लोग बोल चुके हैं, युद्ध करने वाला नहीं समय है अभी, इसे भारत का युद्ध अलग टाइप का चल रहा है। और बट वन थिंग इज आल्सो गुड कि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस में बहुत आगे आ गया है डिफेंस में, एंड व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। और डिफेंस इंडस्ट्रीज में मैं कल सुन रहा था डेटा, 10,000 न्यू कंपनीज हैव कम अप इन द इकोसिस्टम। तो भारत इज गोइंग टू बिकम अ न्यू जनरल डायनामिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो 2+2 स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ गया, जॉइंट स्टेटमेंट था इंडिया यूएस का, दैट भारत विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल डिफेंस हब, लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि वो कंपनीज यहां पे शिफ्ट कर रही थी। देखो समझ लो कि पूरा वेस्ट में वेल्थ वाइप आउट होने। Being a global defense hub is extremely important. I'm sure you all know, but see, like places like Malaysia, Indonesia, which are significant Islamic countries, they never face any Islamic problems
or even protests or even Muslim non-Muslim violence, because people who are running from Islamic terrorism and a lot of Islamic terrorists themselves both have a home in these countries. Okay, so in the same way, if we sell arms to everyone, we are going to have great relationships with everyone, if Ankit Shah's views are correct. होने वाला है, उनके बचने का एक ही तरीका है, जितना जल्दी ये कंपनीज भारत की इकोनॉमी में अपने आप को अकोमोडेट करवा ले, उतना ज्यादा चांसेस है सर्वाइवल का। तो वो चाहे या ना चाहे यही होने वाला है। भारत इज गोइंग टू बी द ग्लोबल डिफेंस हब। यहीं पे जॉइंट प्रोडक्शन होगा, यहीं पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग ट्रांसफर होगा और यहीं से सारे आर्म्स एक्सपोर्ट होंगे वर्ल्ड वाइड। तो स्ट्राइकर जो व्हीकल है, स्ट्राइकर यही होना है। और जो स्ट्राइकर व्हीकल पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो दैट इज टू सप्लाई फॉर अदर कंट्रीज, उसको मेंटेनेंस के लिए बात हो रही है। और मेंटेनेंस और रिपेयर की भी यहाँ पे सबसे बड़ी साइट्स ओपन होगी। और जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कितना स्ट्रेटेजिक होता है मेंटेनेंस और रिपेयर्स, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज को वो प्रोडक्ट्स जाते हैं वो सारे स्ट्रेटेजिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर क्रिटिकल सप्लाईज एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिफेंस का। अच्छा, एक म्यांमार के ऊपर बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि म्यांमार का ब्रेकअप होने वाला है एंड म्यांमार विल, ये भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, व्हिच आई फील कि वो मतलब वो तो नेचुरली जो नॉर्थ म्यांमार तो इंडिया के Not relevant, so I'm skipping because now we will start the Neeraj Atri podcast very soon. यूएस डीप स्टेट ये अरेस्ट में है। तो एक बात क्लियर है वहां पे कि एक टसल चल रहा है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस कितना होगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कितना होगा, और एक भारत का भी एक इनडायरेक्ट रोल है वहां पे। तो आप ये म्यांमार का बात हो रहा है, चाइनीज के बिल्कुल खिलाफ है। यूएस एड मेनी ऑफ देम। ये नेपाल का और भूटान का बात हो रहा है, इसको देयर छोड़ो। इज नो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में इनके प्राइम मिनिस्टर हर 1.5 साल में चेंज होते रहेंगे, नेपाल हो जाएगा। तो उनका इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक गोल्स एम हो जाएंगे दिल्ली की डायरेक्शन में। नेपाल, शेख हसीना गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, बांग्लादेश, जो यूपीआई है, रुपे कार्ड है, उसकी तरफ विद इन बांग्लादेश। और तो सीए एक्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है विद इन बांग्लादेश, और रोहिंग्यास कुछ वापस जा सकते हैं, ये सब सॉर्ट आउट हो सकता है। एक्चुअली फॉर दोज हु आर आस्किंग पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन से ईमेल पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हियर फॉर यू। तो आप लोग वहां पे डायरेक्टली उनको बात करिए। लास्ट 5 मिनट्स आदित्य जी, देन हैव टू गो। हां, तो वन क्वेश्चन मैं सभी क्वेश्चन अरे देता हूं। चीप थ्रिल्स भाई, क्या बुक का नाम बोल दिया। I read a little bit of it because back then my reading habit had not come up fully, had resumed fully, because it's written in pretty tough English. But I started reading it because he is Sanjeev Sanyal's favorite economist, Frederick Hayek, and that book I started reading just because of Sanjeev Sanyal only. I'll read it again someday. That's a famous book. आप लोग यहाँ पे पूछते रहिए। ये सीए एनआरसी जब का जो बात करते हैं, देन समबडी सेड कि आयुष शुक्ला जी का क्वेश्चन है कब आएगा, और एक्चुअली ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आंसर एक्चुअली आप दे चुके हैं पिछले शो में यहाँ पर। तो मैंने ये पीछे भी आंसर इसका दे दिया था। सीए एक्ट अगर आप ओपन करके पढ़ोगे तो सीए एक्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो जितना भी मोदी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो गलत चल रहा है, पहली बात। दूसरा, आप जो समझ रहे हैं सीए का यूजेज, जो सिटीजनशिप देना ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, उसका प्रोसेस मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन वो इसका गोल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि सीए के अंदर कहीं पे, एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो सीए का जो गोल मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो 2030 के आसपास पता चलेगा कि वो क्या है। तो तब तक के लिए हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन द फैक्ट इज कि आप जो समझ रहे हैं उसके लिए सीए नहीं है, उसका प्राइमरी क्या है एक्चुअल गोल क्या है सीए का? गोल कुछ और है। ठीक, और उसका मैंने सिग्नलिंग भी आपको दे दिया कि आप सीए पकड़ के उठा के वो एक्ट पढ़ लो, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द 3 कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे इसके बाद कि लाइक द अदानी के ऊपर एक न्यूज़ आई था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया है अदानी के ऊपर। तो लोग जो बोल रहे थे अदानी के ऊपर जो रिपोर्ट हुआ है, बट नाउ $50 बिलियन हैव बीन इन्वेस्टेड, जो कि हाइफा पे अदर पोर्ट्स पे। सो डू यू थिंक दैट न्यूज़ इज करेक्ट, और क्या उसे लाइक इट आल्सो शोज कि अभी डीप स्टेट आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मूव टू इंडिया नाउ, और ये तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था ना, आई थिंक कहीं पे मिल जाएगा डेट स्टैम्प के साथ कि जो डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस पे अलाइन है, उन सबकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट में से आनी शुरू हो जाएगी और वो अदानी जी के साथ में मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो तो Abhay Agarwal and I were having a discussion in our Instagram that I think ICC banning transgender people from playing cricket is also a sort of an Ankit Shah prediction indirectly, that all the forces against radicalism, wokeism, or in favor of de-dollarization equaling to necessarily de-radicalization, if all that is falling into place, then in the same way ICC also now has the power to ban transgenderism because it's just the right thing to do. But previously cricketers would have to kneel for Black Lives Matter because BlackRock, Vanguard were such big players. But now, because I think the not sole maybe, at least to a large extent, the credit goes to Vivek fucking Ramaswamy for absolutely destroying BlackRock in all 3 of his books, BlackRock, Vanguard, State Street, and creating this consensus and a general awareness among a large mass. Okay, Patrick Bet-David, Rajiv Malhotra, Sanjeev Sanyal, everyone is talking about BlackRock, State Street and Vanguard. And when I was reading the book, I thought, what the fuck? If anything he is saying, even 1% wrong, even that is so malicious
that they will sue Vivek Ramaswamy 6 feet under the ground. But no one has sued Vivek Ramaswamy. No one has touched Vivek Ramaswamy. Okay, that shows that how right Vivek Ramaswamy was, and maybe that is why BlackRock is actually changing their positions a little. Okay, they are not being that crazily ESG a little. Now they're changing their views a little, and maybe that is why ICC has had this permission from all their industries and financiers to openly say that no, we will not allow transgenderism in cricket, even though they have towed the Western wokeism line to a large extent. बैट्समैन नहीं बोल सकते, अरे भाई बैट्समैन और बैट्सवुमन बोलेंगे, इसमें भोसड़ी का क्या हो गया, वुमन का मिसोजिनी हो गया, बैटर बोलना है. और फिर kneeling down for Black Lives Matter. Where the fuck did this come from? Did Jay Shah think about it or ICC think about it? No, it was all because of BlackRock State Street Vanguard. हो चुका श्रीलंका के प्रोजेक्ट में, यूएस गवर्नमेंट खुद पैसे लगा रही है अदानी वाले प्रोजेक्ट पे. That's right. That prediction is proved. Okay. तो ये तो बहुत क्लियर है. Amit Anshuja, here's a recommendation from me. Read लो मैं बुक का नाम ही भूल गया. It's called Bird of Freedom या Birds of Freedom, a guide to radical capitalism. It's written by Milton Friedman's son, who is on Facebook and who actually replies to you on Messenger as well. I have spoken to him personally. He's an elderly person himself. His name is something David D. Friedman, yeah, David E. Friedman. Okay, and also read that book. It's available somewhere, and also check out his speech at Oxford Union. As I told you, सबके सब अलाइंड है. मैंने जब हमास वाला स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसी दिन बता दिया था कि कोई भी नेतन्याहू को रोकने नहीं वाला. Nobody will stop. ठीक है. तो पुरानी एनालिसिस आप भूल जाओ. ये पूरा डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन, डी मिशनलाइजेशन वाली थीम पे ही चलेगा. Right. ये पूरा डिकेड. पुरानी एनालिसिस आप रख दो साइड पे, क्योंकि सबके सब अलाइंड है. जब चाइना ने बोल दिया, वांग ही ने, कि एवरी नेशन हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, इजराइल के फेवर में बोल दिया ऑफिशियली. ठीक है. जब अरब कंट्रीज में इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी, उसमें 7 कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को. नाउ व्हाट डू यू, क्या प्रूफ चाहिए आपको? मैं तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि यही होने वाला है. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरीबॉडी इज अलाइंड. सबका इकोनॉमिक सर्वाइवल डी डॉलराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन पे डिपेंड हो चुका है. कोई इस थीम से भटक नहीं सकता, कोई भी कंट्री. इनफैक्ट ईरान तक ने बोल दिया है, किनारा कर लिया है ये हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट से. पूरा हमको कोई लेना देना नहीं है, हम कोई हेल्प भी नहीं करेंगे, हम हमसे दूर रहो. क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनकी बारी होगी इसके बाद. ठीक है, तो वो फंसना नहीं चाहते सामने से. ईरान भी मना कर रहा है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं एचटी का. इतने सारे लोग देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकम अ मेंबर ऑफ द चैनल. आप लोग सब देख रहे हैं, सो दैट वी कंटिन्यू. सैथोलॉजी का तो हमारा काम आगे चलता ही रहता है, बट यू कैन जॉइन आवर जर्नी आल्सो. ये एचटी का क्वेश्चन है. यू हैव विल बी इकोनॉमिकली ग्रोइंग ज्योग्राफीज, बट इन इंडिया व्हिच स्पेसिफिक रीजंस विल सी इकोनॉमिक ग्रोथ सून? देखिए, इंडिया में जो मैं बताता हूँ टियर 2 और टियर 3 सिटीज. ओके, ये आज के डिस्कशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो अभी नीरज आत्री वाला शुरू करते हैं. ओके, नाउ द मेजर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन the Maulana Modi wing and Modi is doing everything, but it will all come in a little slower pace than you wanted. That's the argument from Ankit Shah. Now let's check that out. Ankit Shah, Neeraj, Atri. हाँ, ये वाला सिर्फ 22,000 व्यू हुआ है. किसी को पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली कितना कंट्रोवर्शियल है. Because there are very strong views on both sides. Because if you say that, yeah, it will happen, it will take some time. No, you will be called a BJP agent. On the other hand, they will say that you are a Chinese agent or Congress agent for criticizing BJP so vehemently. So strong emotions on both sides. So everyone needs to check this podcast out immediately. And to his face, sitting in front of his face, Ankit Shah knowingly makes the points which he knows that Neeraj Atri disagrees with completely. So that shows huge maturity on the parts of both Neeraj Atri and Ankit Shah for having such a civilized discussion, even though they have such insanely strong opinions against one another, against one another's views. लगा तो मैंने यूज करना शुरू कर दिया. और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, और पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं. नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका. नमस्कार नीरज जी. अंकित जी, इट इज ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू विद मी. और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये डिस्कशन हो, आई मीन दे आर वेटिंग फॉर इट. सो सबको कांग्रेचुलेशन, बिकॉज़ दे वांट अस टू टॉक ऑन सम टॉपिक्स. इट इज मटेरियलाइजिंग. फाइनली. या अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो व्हेन वी टॉक ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तो ये एक ऐसा इशू लगता है, एक ऐसा टॉपिक लगता है जिसमें रिलीजन, थियोलॉजी या तो कोई रोल प्ले नहीं करते, और अगर प्ले करते हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे प्ले करते हैं. जनरली ऐसा माना जाता है. क्योंकि मुझे याद है कि 10-12 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी किसी की, व्हिच वाज अबाउट द सिचुएशन ऑफ कश्मीर. तो उसमें वो भाई मौलाना मोदी वर्सेस मास्टर स्ट्रोक मोदी, एग्जैक्टली. एंड चीप थ्रिल्स इज मेकिंग अ फेयर पॉइंट. सी, ही इज फेकिंग इट, और फेंकता है. सो
पॉसिबली, तो ये तो टाइम बताएगा, मगर एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स तो है, मोरलेस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीएचडी है, तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी सब बड़े मतलब बहुत नॉलेजेबल है, ऐसा तो नहीं है, मगर इट्स नॉट लाइक ही हैज नो एजुकेशन, सो somewhat trustable, but at the end of the day you can write it off as personal opinions as well. बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि दिस इज जस्ट अ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड हैज नथिंग टू डू विद थियोलॉजी. तो आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है? दे वर सो कॉन्फिडेंट कि आई थॉट कि या तो आई एम समवेयर वेरी रॉन्ग या ये कुछ गलत कर रहे हैं. तो लेकिन फिर इसी का दूसरा एंड भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ थियोलॉजी ही है जो हर चीज को डिक्टेट करती है, कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो जियोपॉलिटिक्स कम है और या जियोग्राफी हैज लेस टू डू विद इट एंड थियोलॉजी इज मोर टू डू विद इट. आई थिंक दैट वुड लाई समवेयर इन बिटवीन, कहीं बीच में कहीं लाई करता है. लेकिन बिफोर वी गोइंग टू दैट, जो ये आपने कुछ प्रेडिक्शंस की और जो ठीक हुई, जो सच हुई, now some of them sounded preposterous. They were so audacious that they sounded preposterous, लेकिन अब सच हो गई है. तो वो क्या जादू वाली कौन सी छड़ी है, पहले वो बता दो जरा. नहीं नीरज जी, ऐसा कुछ नहीं है. I mean, people, some of them think they think that I have some connection with the government. Some of them think, I mean, these are notions. Some of them think that I'm an astrologer. तो ये सब चीजें खारिज कर चुका हूं. Some of my own viewers have commented in my post that Ankit Shah is an astrologer, or he follows astrology, and that's why he's making these predictions. कि सपोज आई हैड सम कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट, तो मैं एलएसी स्टैंड ऑफ क्यों होने देता? मतलब मैं 20 डेज पहले उसको प्रेडिक्ट कर चुका था, ठीक है. यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट मैंने एग्जैक्ट वीक एग्जैक्ट मंथ बताया था, तो मैं फिर इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों सफर होने देता? No, these are weak arguments, okay, and weak arguments make me the suspect of things. So if he was really a government agent and had government connections and that's why he was getting these informations, then this is exactly what he would say, that why wouldn't I say those things? Yes, so to in order to come off as a legit guy, you would not say those things. अरे भाई, ये कैसा argument हुआ? राइट. तो नथिंग लाइक दैट. द थिंग इज दैट कि बहुत ही कम एज में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रीडिंग था. इनफैक्ट मतलब 7th क्लास से पहले मैंने बहुत सारे नेशंस की हिस्ट्री पढ़ ली. और दूसरा जो है बॉडी लैंग्वेज का रीडिंग मैं कर पाता हूं कि अगर कोई लीडर कुछ बोल रहा है तो वो इंटेंट है या नहीं है, या क्या है रियल इंटेंट, दैट आई कैन मेक आउट. हाँ, तो नाउ the reason that he was being skeptical of Vivek Ramaswamy is the reason a lot of us are skeptical of Ankit Shah. तो अगर prodigy हो तो हो, क्या है, क्या होगा? prodigy है तो क्या करे? विवेक रामास्वामी prodigy ही है, ये भी prodigy ही है, if he turns out to be correct on everything in 20 years later. और तीसरा जो कैश फ्लो का इंटेंट मुझे समझ में आता है. सो बेस्ड ऑन दिस आई डू प्रेडिक्शंस. तो उसको अब एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं है कि आई डोंट हैव नो क्लू अबाउट इट. तो दिस इज व्हाई द प्रेडिक्शंस कम ट्रू, बिकॉज़ सी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज विल नेवर लाई. वो नहीं मतलब इट कम्स आउट. ओके, सो बिल्कुल कैश फ्लो इंटेंट भी आपको क्लियर समझ में आता है, राइट. तो वो भी दैट विल नेवर लाई, राइट. तो अगर आपको पता है कि जेपी मॉर्गन सबसे पहले गिफ्ट सिटी में आके सेट हुआ है, तो यू कैन मेक आउट व्हाट आर द ग्लोबल मूवमेंट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो ऐसी चीजें होती है. इस पर से यू कैन और फिर हेडलाइंस तो मैं सारी बता सकता हूं. इनफैक्ट लीगेसी मीडिया का आई मीन लास्ट 3 मंथ्स का मैं बोलूं तो आई वुड से 90% वाज फेक, टोटली फेक. सारी हेडलाइंस फेक. मतलब आप कहां से स्टार्ट करो, मतलब यूक्रेन वॉर से आप स्टार्ट करो तो फिर पुतिन के ऊपर कू हो गया, फिर शी जिनपिंग के ऊपर कू हो गया था एससीओ समिट के टाइम. क्या क्या चला है, मतलब पूरा फेक. फिर बीच में चला चाइना ने बैन कर दिया है गुड्स देना रशिया को, फिर बीच में चला एमबीजेड और एमबीएस के बीच कुछ हो गया है, फाइट चल रहा है और पता नहीं क्या क्या. तो ये पूरा का पूरा फेक. प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे ब्रिक्स, चाइना बोल रहा है इंडिया को ब्रिक्स से निकाल दो. ये आई मीन पूरा प्रोपेगेंडा. आई कैन क्लियरली सी थ्रू इट. बीच में आया था कि By the way, Cheap Thrills, if you can check out my one live stream I did on Mamata Banerjee's minority affairs budget, which I don't promote much for 2 reasons, because A, I don't want to get killed, and secondly because I'm not 100% sure on the maths, because I have just one chartered accountant friend, coincidentally an Agarwal, so she said that yeah, your math is right, and me and another close friend had did the entire math, because not one single news media house in the country or in the state actually went through the math, because they presented it in such a way that you would have to add up everything sitting down yourself, that what is the exact total minority affairs and madrasa education budget of the West Bengal government, which I did, and it came down to 5,166 crores, which is more than the center's minority affairs budget. So if you really have much knowledge of economics, do check out the budget PDF itself. You can find it on West Bengal board's West Bengal government's website, or you can check the video where you will see all the math being done. Just check it out and let me know, go through it if it's correct, and then that needs to be highlighted. एल्डर्स ने शी जिनपिंग को बोला है, रिप्रिमांड किया है, ठीक. सब कुछ मतलब पूरा फेक चल रहा है. अभी नया चल रहा है ये हमास वाला का मास्टरमाइंड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का है इस चाइना, ये नया चल रहा है फेक, अभी रिसेंट, बहुत रिसेंटली. आई कैन सी द हेडलाइन एंड टेल यू. ओके, तो अच्छा, एक और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं आप रॉ के एजेंट हैं? रॉ के एजेंट ऐसे अगर चैनल्स पे आके बोलने लगेंगे रॉ के एजेंट्स, तो काय के एजेंट्स हुए फिर? अगर बता दे तो. नहीं, बट ये बात है, आई मीन
I mean, अभी मुझे रिसेंटली जो अभी लास्ट मैंने जो आज सुपर ट्वीट डाला जो पाकिस्तान का एप्लीकेशन है ब्रिक्स के ऊपर, तो ये मैंने लिख दिया था अगस्त में कि भारत विल सपोर्ट। तो अब मुझे पूछ रहे हैं कि ये सच तो हो गया है, अब बताओ कि क्या लॉजिक है। हाँ। तो some of the things नीरज जी which I can see nobody can see and I do not if I feel that what I can see if I put it out that would damage national interest then I won't do it। जैसे कई बार मुझे पीओके का पूछते हैं कि कब होगा, तो even if I see it I'm not going to put it out so because see national interest is above everything। या तो अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकती, अभी क्या बात है। लाइकवाइज जो आज वाली हुई है कि यू सेड कि इंडिया विल प्रेफर और फेवर पाकिस्तान इनटू ब्रिक्स, है ना? इट वाज समथिंग ऑन दीस लाइंस, मतलब एक वर्डिंग शायद मुझे ध्यान नहीं है। तो अब ये फिर से कोई भी एक लेमन से आप बात करें यार, वो बोलेगा कैसा कर इंडिया क्यों पाकिस्तान को बीच में लाएगा, ब्रिक्स को क्यों लेके आएगा? तो जब ऐसा तो कहीं माइंड में नहीं आता है मैं क्या डालने वाला पब्लिक में। नहीं, because see I see these things through so but I don't give out the reason so because I some of the things where I feel के national interest को hurt होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बनती है which is very long term। जैसे आज सुबह मैंने ये पहले भी आई थिंक जयपुर डायलॉग्स पे भी इस पर चर्चा हुई थी सीए के ऊपर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स को, क्योंकि ये कॉमन थीम हो चुका है कंडेम करने का गवर्नमेंट को, तो जब ये इस पर टॉक्स हुआ था जयपुर डायलॉग्स पे, तो तभी मैंने बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव मुझे 2030 के आसपास निकलता दिखेगा इस एक्ट का। आप जो पर्पस समझ रहे हैं ये इसके लिए नहीं है, तो और आप जो पर्पस समझ रहे हैं उसके लिए आएगा जब मतलब वो भी बहुत वो पहले आ जाएगा, जो पर्पस नहीं है वो पहले आ जाएगा जो आपको लोगों को चाहिए, तो बट वो पर्पस नहीं है। और उसके लिए मैंने उसके अंदर हिंट भी दिया है कि सीए एक्ट अगर आप निकाल के पढ़ते हो तो कहीं पे भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है उसके अंदर, ठीक, हिंट दे रहा हूं मैं कि उसके लिए नहीं था, ठीक। तो क्योंकि हो रहा ये नीरज जी के हमारे बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्हें 2014 के बाद कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, तो कॉमन एनालिसिस उन्होंने ये निकाला कि कुछ हो ही नहीं रहा है दैट इज व्हाट इट इज। तो क्योंकि कुछ भी उस प्रकार का नहीं चल रहा है जो पिछले 40-50 साल में सबने देखा है, ठीक है। तो जो जयपुर डायलॉग्स पे भी जब ये सीए की चर्चा निकली थी और मैंने ये बताया कि उस एक्ट में नहीं लिखा है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, तो संजय जी बोले कि उनका तो सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है उनका, तो बोले हमारे तो ड्राफ्टिंग में ऐसा होता है कि लिखना पड़ता है कि व्हाट इज द इंटेंट। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर इंटेंट बता देंगे तो तब तो अगर महबूबा मुफ्ती को बताते आप कि 370 हम रिमूव करने वाले इसलिए गवर्नमेंट बना रहे हैं आपके साथ, तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद बात है ना कि अगर आप रिवील कर दोगे कि क्या हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिक्स में भी नहीं होता है, पॉलिटिक्स में भी नहीं होता है, बिकॉज़ जब तक आप उस मकाम तक नहीं पहुंच जाते जहां आपका गोल अचीव हो गया तब तक आप क्यों रिवील करोगे, दैट इज द थिंग। Fair enough. तो अगर आपने ये मूवमेंट भी देखा कि इंडिया से भारत शिफ्ट किया जो टर्मिनोलॉजी, तो आप देख रहे हैं कि कितना ग्रेजुअल हुआ। हाँ पहले भाई, 3-4 इंडिया से भारत का ट्रांजिशन वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच एंड सो फैबुलस दैट हम तो सोच रहे थे कि कितना भाई लॉ पास करवाना पड़ेगा, कितना हल्ला होगा, क्योंकि मगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर खुद बोल रहा है तो इंडिया दैट इज भारत, तो इट्स सेम एज भारत, जस्ट चेंज इट एवरीवेयर, डजंट इवन फकिंग मैटर। दैट वाज एक्चुअली अ मास्टर स्ट्रोक। 4 साल कुछ रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज हुए, कुछ छोटी-छोटी सिटीज के नाम चेंज हुए, और वो भी तीतर-बितर, ऐसा नहीं किसी एक स्टेट में हुआ, राइट। तो ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ नैरेटिव, और अभी भी आप देख रहे हो कि ऑफिशियली तो अभी भी भारत को ऐसे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेके आए, अभी भी यही चल रहा है कि स्लोली इट्स गोइंग टू गो इनटू द मासेस। तो धीरे-धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी, एंड देन व्हेन द टाइम कम्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ सेकंड, राइट। तो ये ऐसे होता है, क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि 1000 साल बाद आपको गवर्नमेंट मिली है, 1000 साल बाद, ठीक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले। दूसरा, जिस प्रकार की स्ट्रेंथ की कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेट है वो हमारा नहीं है, डेमोक्रेसी इलेक्शन का फॉर्मेट भी हमारा नहीं है। तो आपने जब शो के स्टार्टिंग में बताया कि जियोपॉलिटिक्स वर्ड में रिलीजन क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो ये जो डेमोक्रेसी और इलेक्शन का फॉर्मेट ही अब्राहमिक रिलीजन बेस्ड है, क्योंकि आइडिया ये I love this problems. I love this point so much that a few days back, Neeraj and I were discussing that basically democracy and the way we do election campaign, that framework, that template is itself Abrahamic, because it's just like missionary proselytization. तुमको गांव-गांव में घूम के तुमको बोलना पड़ेगा कि तुमको ये प्रॉब्लम नहीं पता है कि तुम्हारे पास है, मगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, एंड नाउ जॉइन मी, एंड वो उसके बाद तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा धर्म बन जाता है, ठीक है। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इफ यू आर एन एक्टिव पार्टी वर्कर, ओके, पार्टी वर्कर। That is absolutely missionary like transition into your local sect or the church or okay or seminary. So that is absolutely an Abrahamic template, but here also he makes a great point. I think he will make it further that यूएसए ने तो बाकी देशों को बोला कि डेमोक्रेसी इज़ अ ग्रेट थिंग। हम लोग तो जब बड़े हुए तो हमको पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सिस्टम हो भी सकता है। अच्छा, राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी, यही तो ऑप्शन है। मगर व्हेन बैराक ओबामा केम टू इंडिया ही सेड दैट ही हैड टू से सम गुड थिंग्स, तो वो फ्लफ डायलॉग बाजी के बीच में वो बोल रहा था कि सी इंडिया एंड यूएसए हैव सक्सीडेड बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी. So he was saying that it's such a great thing that India is a democracy. So that was the first time sort of a light bulb went off in my head that okay, so it's an option, democracy के अलावा कुछ होता भी है.
और अभी तो जाके पता चल रहा है कि अमेरिका तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ऑफिशियली, अमेरिका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो खुद एक्चुअली डेमोक्रेसी है ही नहीं कि लोग बोलेंगे तो हो जाएगा, और बाकी सबको डेमोक्रेसी सिखाते फिरा। तो ये टेम्पलेट ही चेंज होने वाला है। एंड आई वांट टू मेक वन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट आई एम नॉट 100% श्योर ऑन, बट इट I'm just I hope you all will debate it and we can come to some conclusion someday that monarchy versus democracy का जो डिबेट है, लिबरल डेमोक्रेसी का जो बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर, चेंज ऑफ पावर, जब पावर हस्तांतर होगा तब वायलेंस होगा कि नहीं, जो कि अगर राजा खराब हो गया भोसरी के तब तो गए तुम गड्ढे में, तो उस राजा को हटाने के लिए पूरा रेबेलियन करना पड़ेगा, कितनों लोगों को मरना पड़ेगा। ये सब जो वायलेंस है ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है, कोट एंड कोट नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया के डेमोक्रेसी में तो ये सब होता है। पॉलिटिशियंस को बेसिकली पूरा पॉपुलेशन राजा के तौर पे ही देखते हैं, वो हमारे साइकी से, हमारे थिंकिंग से राजा महाराजा का इथोस गया नहीं है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी इसीलिए चलता है कि अरे भाई उनके बेटे थे आप, क्या बात है। तो 2021 बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस या फिर ऑल द वायलेंसेस दैट हैज हैपेंड, सो द बिगेस्ट argument in favor of democracy does not even apply to India. So where do we stand on democracy versus monarchy or single party rule? था कि उनका मॉब बेस्ड ऑब्जेक्टिव का तो एक वेल फ्यूल्ड मशीनरी है, तो वो वोटिंग तो हो ही जाना है, ठीक है। Rashti, America is a constitutional monarchy because if people just elect or say or want something, that doesn't immediately mean that the government will do it or even legally has to do it. Only 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा तब जाके होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की नहीं, आई मेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, आई कंप्लीटली मेस दैट अप। तो उनको थोड़े साल बाद पता चला कि एक फेलो अब्राहमिक फेथ है जो ब्रीड लाइक एनीथिंग, ये उनको बाद में पता चला। इलेक्शन फॉर्मेट पहले हर जगह कॉलोनीज में उन्होंने डलवा दिया, फिर उनको पता लगा कुछ साल बाद कि देयर इज अ फेलो अब्राहमिक कम्युनिटी जिनका ब्रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली सनातन जो है इट इज एन ऑटो पायलट मोड ऑफ गवर्नेंस। इसको कोई लेना देना कभी नहीं था कि गवर्नेंस में कौन बैठा है, because it was an autopilot mode society. Guys, what he's saying here is word for word what has been said by the famous Bengali historian Nihar Ranjan Rai, who has written only on Bengali and Bengal's history, unfortunately. So non-Bengalis won't know his name, but his book Bangalir Itihash is the most famous book on Bengal's history. Okay, because it's not the history of who were the kings, etc., but as much as possible general life of Bengal. And in the ancient era, not in the medieval era, because in medieval era, R.C. Majumdar, Jadunath Sarkar, they are all experts. And Nihar Ranjan Rai had the blessings of Jadunath Sarkar himself in the foreword of that book. So Nihar Ranjan Rai has said this, that in those days, in the grassroots level, even Marxists worship people like Nihar Ranjan Rai. Okay, so on the grassroots level, on the ground level, no one gave a shit about who was the king. Okay. Because there was no connection, and a different king coming into power did not mean an obliteration of your culture, your population, or your religion, or your way of life. Because अच्छा, युद्ध के एक मैदान है, वहाँ पे मैदान में जाके किसी ने युद्ध कर लिया, एक राजा हार गया, एक राजा जीत गया, तो क्या हुआ? मैं मेरा जो काम था, if I was a bucket maker, I'm going to still make a bucket and go home. Okay, there was absolutely no relevance about who was the king, and that is exactly what Ankit Shah is saying. That's a very important point to make here and very relevant. Abrahamic community जिनका breeding speed बहुत ज्यादा है। So basically सनातन जो है it is an autopilot mode of governance. इसको कोई लेना देना कभी नहीं था कि गवर्नेंस में कौन बैठा है, because it was an autopilot mode society. धार्मिक ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी को किसी से फ्रीबीज नहीं चाहिए, वो अपने साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं धार्मिक सोसाइटी वाले, बिकॉज़ कर्म की फिलॉसफी है हमारी, ठीक। तो हम कभी वेपन्स इस्तेमाल प्रफुल्ल भारत is saying CA might be that it's an official declaration that no matter where you are, if you are Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, your home is हमारे लिए हमारा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, which Israel's official position is. That might be a goal of CA perhaps. नहीं करने वाले, तो ना हमें लॉ एंड ऑर्डर की इतनी कोई जरूरत थी, स्टेट का कोई रोल ही नहीं था इतना बड़ा, इट वाज एन ऑटोपायलट सोसाइटी। ना सोशलिस्ट फ्रीबीज के लिए हमें कुछ जरूरत था, बिकॉज़ मंदिर इकोसिस्टम वाज गिविंग द बेयर मिनिमम व्हिच इज प्रसाद। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो फूड सिक्योरिटी चाहिए वो तो मंदिर प्रीमाइसेस वाज गारंटिंग, द कम्युनिटी वाज गारंटिंग ऑन इट्स ओन, ठीक। सिवाय उसके जो अतिथि वाला कांसेप्ट था कि कोई तिथि बताए बिना आपके घर आएगा तो भी आप उसको खाना खिलाओगे, ये वो सिविलाइजेशन है जिसको स्टेट, ये तो हमने मनुस्मृति में पढ़ा है बार-बार। ओके, नीरज इज मेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट ही इज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अनदर व्यूअर ऑफ माय चैनल, दैट
if people even preferred aristocracy over monarchy. Aristocracy is non-cronism like we imagine it today. Not cronism. In the hands of good aristocrats it worked well, of course. Just like we need a good populace for democracy and good monarch for monarchy, yes. And so much lies have been sold by goddamn commie academics. Even women's suffrage, okay, women's voting rights, that is the biggest myth of all. Women did not want to vote because back then voting right meant that you'll have to serve in the army. Women were never called to volunteer or even forced to go to the army. So women were the biggest opponents of women's suffrage, okay. तो हमको बोला गया नहीं तो भाई ये मिसोजिनी था इसलिए उनका वोटिंग राइट नहीं था. कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं. क्योंकि तुम अगर बात करोगे, तुम ओपिनियन रखोगे कि कौन देश चलाएगा, तो तुमको तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ाना होगा. तुम सिर्फ family chaloge. Okay, my statement sounds like I'm demeaning people being housewives, but being specifically housewife does not directly contribute to the nation's economy or nation's politics. So why should you have a voice in nation's politics then? So if you want to have a voice in nation's politics, go be willing to die for the country. So that was the way of the world. So a lot of myths are going to be broken now, which is why I'm saying Hindu primary sources are going to be your biggest intellectual asset in the coming years, if Ankit Shahi principles are correct. It was an autopilot mode. इसीलिए जब आप देखते हैं कि क्यों हिंदूज क्लब नहीं हो पाते, पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो पाते, उसका रीजन ये है क्योंकि ये ऑटोपायलट सोसाइटी थी. एब्सोल्युटली राइट. मुझे पता नहीं आप हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स ज्यादा पढ़ते हैं या नहीं, तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि जो ये बाहर से आ रहे थे, जो ट्रैवलर्स थे, जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग या क्रॉनिकल्स कुछ भी लिखे हैं, वो इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहे थे जो आपने पॉइंट आउट किया ना. यू पुट इट इन बेटर वर्ड्स देन देम. वो ये कह रहे थे कि प्रॉस्परस लैंड है, वेरी हैप्पी लैंड बिफोर 7th सेंचुरी ऑफ कोर्स. तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपने एग्रीमेंट्स रजिस्टर नहीं करवाते हैं. किसी के साथ अगर कहीं कोई धोखा हो जाता है तो सोचता है कि मेरी गलती थी कि मैंने किसी लोग पे विश्वास कर लिया, तो लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा. जो हमें बता रहा है कि उस समय भी 7th सेंचुरी से पहले भी ये लोग जो आ रहे थे, इवन फ्रॉम चाइना और फ्रॉम ग्रीस से भी आ रहे थे, वहां पे इस तरह का सिस्टम प्रेवलेंट था जो आज हम अपने यहाँ पे देख रहे हैं, व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे. तो बिकॉज़ ये सारी राइट्स बेस्ड सोसाइटी, इनका बर्थ ही अभाव में हुआ है, इनका जन्म अभाव में हुआ है. एंड वी वर अ प्रॉस्परस रिसोर्सफुल कंट्री. दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसे इस्लाम जो है उसका पूरा जो ओरिजिन इज अ डेजर्ट रीजन, जहाँ पे प्लांट्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, वाटर नहीं है. तो आप क्या करोगे? तो आपको जितना बड़ा मॉब बनाओगे उतना ज्यादा आप जिजिया टैक्स ले पाओगे, प्रोटेक्शन मनी. वहां से जो भी काफिला गुजर रहा है उसको आपको लूटना है या तो प्रोटेक्शन मनी वो देंगे, दो में से एक. दिस वाज द ओनली इकोनॉमिक्स. तो उनको जितना बड़ा मॉब बने उतना ज्यादा दे वर एबल टू सर्वाइव, राइट. तो दे वर एबल टू सर्वाइव. तो उन्होंने पॉलीगैमी का प्रैक्टिस उनका. फिर आप देखते हैं वाटर नहीं है तो एक ही प्लेट में खाना खाना, राइट. फिर आप देखते हैं कि क्योंकि फाइटिंग होनी है, क्योंकि प्रोटेक्शन मनी नहीं देंगे तो अटैक होना है काफिले पे, तो दाढ़ी बढ़ाना स्वॉर्ड से अपना गला बचाने के लिए. फिर वो डेजर्ट वाले कपड़े लंबे सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए. फिर अपनी वुमेन को मार्क करके अलग रखना है और बाहर ना आए व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. तो ब्लैक पहना दिया कि भाई बाहर आएंगे तो सन हीट की वजह से दे विल फील अनकंफर्टेबल, तो अंदर ही रहे, दे विल बी सेफ. तो ये पूरा जो डिजाइन किया गया था, अनफॉर्चुनेटली इट वाज एन इकोनॉमिक रीजन टू डिजाइन दिस रूल्स फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल. जैसे डेजर्ट रीजन में कोई अपनी लड़की देगा नहीं तो बहनों से शादी करना इन्होंने शुरू किया, राइट. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ये है कि अर्थ अपना प्लैनेट जो है इट्स लाइक टिल्टेड. तो जहां पे सन का रेज आएगा वो पूरा बेल्ट जो है वो डेजर्ट हो जाता है, ठीक. तो उस डेजर्ट वाले एरिया में जो ये प्रैक्टिसेस बनी वो अनफॉर्चुनेटली कोडिफाई हो गई एज रिलीजन. और फिर आप जानते हैं, आप तो यू नो मोर देन मी, इन द कम्युनिटी जो 4-5% मॉस्क का या रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल करते हैं जिहाद के कॉल के लिए, कभी-कभी आर्म स्टोरेज के लिए, बच्चों को पॉइजन करने के लिए बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, कि भाई ब्लैंकेट सेपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है ना बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, राइट. तो ये पूरा सिस्टम जो था टेक ओवर और कन्वर्जन वाला, बिकॉज़ अभाव में वो सोसाइटी का जन्म हुआ है. ओके. अच्छा, अब Okay, Neeraj is saying, Dada, also don't forget that, yeah, this is what Vivek Ramaswamy brought up. Yes, people with land could vote. And yes, and that is what Ankit Shah is predicting for USA, that it will kind of go back to that. One family, one vote. And what Vivek's even dream is also great. That if you are below 25, you don't even have to vote. Your brain isn't even developed. You haven't contributed anything to the economy. Which is why I think Patrick Bet-David's solution is even better. That even if you are 15 years old, and you are running some small business, etc., even then you can vote, but not unless you are paying taxes. Okay. Okay, it's Praful Raut, not Praful Bharat. Oh, acha. I can't read Hindi. I just guess as much as I can. I can only guess and read Hindi. So you are Marathi. Nice. Never mind, JSD said it in a different context. Every system unfortunately requires good people in power, and it's not only on how good is the system. No. It can be on autopilot a little. We will get into that some other day. 2-3 दिन पहले योगी जी ने काम किया बड़ा अच्छा, हलाल पे बैन लगा दिया. तो अब do you see this as a kind of aberration, or you see a larger design in this? In terms of continuity? Yeah. See,
एक बात आपको समझना पड़ेगा कि द मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिटवीन, क्योंकि ये बहुत डिस्कशन चलता है जहां पे मैं देखता हूं कि कुछ नैरेटिव्स पेडल होते हैं, मोदी वर्सेस योगी, शाह वर्सेस योगी और ऐसा सब। तो ये सारी अफवाहें हैं, पहले तो दर्शक ये जान ले, क्योंकि Yeah, Vaibhav. Ankit Shah is saying exactly what Rajiv Malhotra has said, and that's not even a controversial opinion. That's a consensus in academic circles. Everyone knows it. Even I had heard of this argument, and basically even I agree with this. Even long before I was a right winger myself, that all of this is because unfortunately ये तो बेचारे वो desert से आए हैं, इसलिए ऐसा views है. तो now the argument debate between leftists and right wingers is that how much can they keep up with that without harming Hindus in India. कैसे आया है वो तो हमने समझ लिया, ठीक है, इसलिए ये सब व्यूज हुआ था, मगर अब इन व्यूज का क्या करें हम. जितना मेरा ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज का रीडिंग है उस पर से मैं बता रहा हूं कि अगर योगी जी ने कोई एक्शन लिया है तो दैट हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री. ठीक, दूसरा आपको ये समझना है कि this is also something the Maulana Modi wing disagrees with completely. They think that Yogi is on his own and he is taking decisions on his own and Modi is opposed to him. Okay, let's see. मोदी जी, शाह जी और योगी जी, इन तीन में फर्क माइनर है, और वो माइनर फर्क ये है कि कौन सी टाइमिंग पे बोलना है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री. ठीक है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो यू विल फाइंड योगी जी स्पीकिंग अप फ्रंट, यू विल फाइंड शाह स्पीकिंग अ लिटिल लेटर, and you will find Modi ji probably not speaking at all, or maybe after a year or 2 years. ठीक, तो टाइमिंग का बोलने का डिफरेंस है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ गुजरात में मैंने ये रूल देखा है, मोदी जी और शाह जी कैसे गवर्न करते थे गुजरात को, और आई थिंक द कांसेप्ट रिगार्डिंग के पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वापस अपने कल्चरल रूट्स में लाना है, और उस एम या उस गोल से बिल्कुल भी विपरीत डायरेक्शन कभी नहीं जाएगी, चाहे पॉलिसी की हो या लॉन्ग टर्म इंटेंट की हो. ठीक, जब वो बात करते हैं 2047 तक के गोल्स की, तो बहुत क्लियर है कि जियोपॉलिटिकल चेस भी उस प्रकार से बिछाई गई. चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई में जब आप पूरा ये डी-रेडिकलाइजेशन वाला एक कोऑपरेशन देखते हो जो उन्होंने सिलेक्ट किया कि Modi's 4D 5D chess. मंदिर, योग और आयुर्वेद से पूरे मिडिल ईस्ट को डी-रेडिकलाइज करेंगे. तो हर जगह आपको वो 2047 वाले विजन का इम्प्रिंट भारत के बाहर हर जगह आपको दिखेगा, क्योंकि भारत के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें रेडिकलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसका सोर्स भारत में नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बाहर है. ठीक, तो ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा. रेज अ क्वेश्चन करके कि इसमें ना एक वो जो जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप का बन जाता है कि 8-10 लोग बैठे हैं जो सारा प्लान करते हैं और बोर्ड के अब हमने ऐसा करना और अब हमने ऐसा करना. तो ऐसा है क्या? आई मीन मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप बता रहे हो? हाँ, ग्लोबल. देखिए, ग्लोबल लेवल पे आई डोंट थिंक कि सब साथ. See, whenever Ankit Shah says something that we know that Neeraj Atri is extremely opposed to, Neeraj Atri simply smiles. Okay, that is what a true Aryan is, guys, in the religious sense of the word. Neeraj Atri is a true Aryan. You can't be an Aryan or even Arya just because you are educated as fuck. Your language, your behavior, all of this has to be like Neeraj Atri. Okay, okay. Yogi ji versus Himanta Biswa Sharma. Yeah, so my point is that if at all it is a race between Yogi and Himanta Biswa Sharma and not Amit Shah, of course Himanta Biswa Sharma, because UP has to be controlled with as much precision as Yogi is handling it. I don't know who the fuck is going to replace Yogi ji, and it has to go up till $1 trillion first, and then even then after that we can think of letting Yogi ji go anywhere other than UP. Okay, I have changed my mind on this. I have absolutely no problem with him being too aggressive or him wearing a saffron clothes. No, I don't give a shit about those things. It would be even extra fun to have Yogi ji as prime minister just to piss off my leftist friends. So much, I mean, visual shock they will get every time that, oh my god, ये प्राइम मिनिस्टर है, हमने तो सोचा था ये सिर्फ वो पाखंडी बाबा पहनते हैं, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या हो गया हमारा. So it would be great to piss them off, but UP needs to be handled as soon as possible. में मिलके बैठ के प्लान कर रहे हैं, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज एवरीबडी इज इन कॉन्फिडेंस अबाउट व्हिच कंट्री इज टेकिंग व्हाट स्टेप एट द मोमेंट. मतलब अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, दर्शकों को भी समझ में आएगा. जब क्राउन प्रिंस जो यूएई के थे सबसे पहले भारत आए, तो यहाँ आके उन्होंने देखा कि इनटॉलरेंस वाला डिबेट चल रहा है, तो वापस जाने के दूसरे ही दिन उन्होंने टॉलरेंस मिनिस्ट्री अनाउंस की यूएई में. ठीक, फिर दूसरा एग्जांपल है जब कर्नाटका में guys, this is one of the most important parts of the debate. Okay, I'm talking to the Maulana Modi wing. Okay, listen to this. पहले भारत आए, मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप बता रहे हो? हाँ, ग्लोबल पॉइंट ऑफ ओरिजिन बाहर है. ठीक, तो ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा. रेज अ क्वेश्चन करके कि इसमें ना एक वो जो जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप का बन जाता है कि 8-10 लोग बैठे हैं जो सारा प्लान करते हैं और बोर्ड के अब हमने ऐसा करना और अब हमने ऐसा करना. तो ऐसा है. Yeah, so Neeraj Atri is basically in a polite way saying that क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा 5D चेस चल रहा है मोदी जी का, तो 5D चेस का जस्टिफिकेशन क्या है? That is what Ankit Shah will get into now. आई मीन मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप बता रहे हो? हाँ, ग्लोबल. देखिए, ग्लोबल लेवल पे आई डोंट थिंक कि सब साथ में मिलके बैठ के प्लान कर रहे हैं, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज एवरीबडी इज इन कॉन्फिडेंस अबाउट व्हिच कंट्री इज टेकिंग व्हाट स्टेप एट द मोमेंट.
मतलब अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, दर्शकों को भी समझ में आएगा। जब क्राउन प्रिंस जो यूएई के थे सबसे पहले भारत आए, तो यहाँ आके उन्होंने देखा कि इनटॉलरेंस वाला डिबेट चल रहा है, तो वापस जाने के दूसरे ही दिन उन्होंने टॉलरेंस मिनिस्ट्री अनाउंस की यूएई में। ठीक, फिर Okay, Vaibhav, interesting. I have not watched that podcast. If that is the case, then you see, Neeraj Atri is in line with the in-group, out-group debate. Okay, that if you are in the in-group and then you do Dharmaninda, your treatment or my reaction to it won't be the same as someone outside the fold doing Dharmaninda. Okay, Neeraj Atri is absolutely on point with ancient Hindu behavior. फिर दूसरा एग्जांपल है जब कर्नाटका में हिजाब बैन वाला स्कूल वाला कुछ पॉइंट रेज हुआ, तो उसके कुछ ही टाइम में सऊदी अरेबिया ने अबाया बैन किया एग्जाम हॉल्स में। ठीक, उसके बाद कुछ ही टाइम में उत्तर प्रदेश में रेज हुआ फ्राइडे हॉलीडे वाला पॉइंट, उसके तुरंत बाद यूएई ने अपना कैलेंडर चेंज किया वीकेंड वाला। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि हर एक कंट्री जो स्टेप ले रही है, बाकी सारी कंट्रीज कॉन्फिडेंस में है कि क्या स्टेप लिया जा रहा है। और इटली में भी अभी बुलडोजर चला है अभी लेटेस्ट। तो एवरीबॉडी इज इन। सो इटली, नेदरलैंड्स, ये सब तो फुली राइट विंग हो गए हैं. So Cheap Thrills is making an interesting comment that we can't trust Himanta Biswa Sharma because of his past, and yes, he has shady past in terms of being tangled up with all sorts of corruption. But I think if we extend the Ankit's argument that अलतकैया है तो है, पैसे दे के इनको काम करा सकते हैं तो कराएंगे, क्योंकि if at all there is some like threat that BJP is holding over Himanta Biswa Sharma's head, that be a good CM for us, make us win votes, okay, otherwise we will do this. So that is going to go on forever. So if he becomes the PM, so unless you are saying that because of those characteristics we can't have him as a PM because he will probably do those same things again, yeah, that is a more fair argument and I don't know how to talk about that. But think of Bengal, Shubhendu Adhikari, same history, he will be the PM, there's no other candidate. क्या करें इन लोगों के अलावा, ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, beggars can't be choosers after all. But he is in confidence about क्या steps हैं. Okay, तो अब फिर उसमें क्या होने वाला कि जैसे दो विजन्स हैं, एक जो मेरा आपका या मोदी जी का विजन है 2047 का, एक है जो P5 का विजन है 2047 का. तो दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, दोनों इक्वली सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दोनों साइमल्टेनियसली सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो which one is going to prevail? Prediction. Of course, the one that is linked to development and economics, which is, see, understand, jihad is enemy of economics. ये आपको समझना पड़ेगा. And the entire Middle East, which is लेकिन जिहाद तो कर रहे हो, रिलीजन ऑफ पीस है, पीस वाला है. नहीं, सी वो हमारा jurisdiction जब है ही नहीं, नीरज जी. Saudi Arabia is not our jurisdiction. What matters to us is कि जो blindly follow कर रहे हैं religious doctrine, एक बात आप समझे कि कल को आपने इंसेंटिव पेट्रो डॉलर्स का सप्लाई किया गाड़ी बढ़ाने के लिए, अब आप पेट्रो डॉलर सप्लाई करो क्लीन शेव करने के लिए. That is what I'm saying. हाँ, इंसेंटिव स्ट्रक्चर से ही दुनिया चलता है, आइडियोलॉजी से कुछ सेक्शंस चलेंगे, बट ये जो मास फंडिंग है रेडिकलाइजेशन का, इसमें पेट्रो डॉलर का तो हाथ है ही. अगर वो पेट्रो डॉलर कुछ अलग चीज़ें करने को बोले कि नाच बसंती कुछ और करो, तो तब वही होगा. So understand one thing, इनका जो ब्रेकअप है, मैं आपको, क्योंकि आप मैंने बहुत सारे डिस्कशन सुने हैं इसके ऊपर, जहाँ पे हर चीज लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, बट दर्शकों को जानना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन हुआ कैसे. Now guys, now the most controversial part, okay, all the Maulana Modi people are going to get trolled by Ankit Shah now. Okay, let's just before this main transition happens, let me just check some comments. Neeraj is making an interesting point that I don't trust this thing that Modi is thinking in terms of 2030 or whatever. It feels like an underestimation of foreign leaders. Fair argument, yeah. But unless, if really we believe in Ankit Shahi principles, then we would have to admit that since the foreign leaders are not really that weak, therefore they are also in line with the inevitability of a de-dollarized world, and therefore they are also collaborating with Modi, okay? That would be the Ankit Shah argument here. And in that case, Jaishankar as PM, like Ankit Shah says, is not bad. Yeah, that is true. Okay. मुझे थोड़ा चलेगा temple control, yeah. HSB is the best PM material. I like you and you taught me to steelman the opposing ideology. Yes, because none of them are our enemies. They don't want Hindus to go to hell, okay? We will have a different conversation about commies. Some of them actually want Hinduism to end. Like most commies want Hinduism to end. Sitaram Goel's first page in his book, How I Became a Hindu, he wanted to burn Manusmriti, Mahabharata, Ramayana to end casteism or this degraded society that we are in. These people are not like that. So whenever you are in confusion about any Hindutva people, that who is right here, whose opinion do I get behind or read up more on, just remember that none of them are our enemies, and
always Tyagaraja has the best solution in this case. Yendaro Mahanu Bhavalu, Andariki Vandanamulu. There are so many great people. I bow down to them, all of them. Okay. Unless we read up as much as Ankit Shah, AIM, etc., then we can have stronger views. Before that, we are in the learning phase. We are kids here. को वो समझ आएगा तो रिवर्सल का प्रोसेस कुछ समझ आएगा कि कैसे उनसे खुद से ही होना है। तो मिडिल ईस्ट में जो पूरी ज्योग्राफी इस्लामिक हुई उसमें जिस प्रकार का फॉर्मूला था, आई थिंक मैंने जेडी के मंच पे भी ये बात की कि 90 + 5 + 5, तो 5% टेररिस्ट जो है, जो पत्थर फेंकते हैं या बॉम्ब फोड़ते हैं या जो भी है, वो सबसे, मेरे हिसाब से वो सबसे ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, मेरे हिसाब से सबसे रिस्पेक्टेबल, क्योंकि वो उनको आप पूछोगे वो बोलते हैं कि मैंने इसके लिए किया। दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, दे आर क्लियरली सेइंग कि मेरा यही गोल है, मुझे फट जाने का है, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट जन्नत। ओके, नेक्स्ट 5% व्हिच इज क्लेरिक्स, जो इनको पॉइजन करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स को, और इनको बताते हैं कि बहुत ही क्रिमिनल बेनिफिट्स वाली आफ्टर लाइफ मिलेगी। No, Goddank, you are not getting Chip Chill's exact point. His point is not that Himanta Basha Sharma was a congressee, as far as I can guess. It's because he actually has had accusations of corruption behind him. Okay, like Shubhendu Adhikari. That is the case. At least at least what I think, because that would be a fair argument. He actually has had corruption allegations. That changed when he joined BJP. इस तरह से मर गए तो ठीक है, तो दैट इज द सेकंड 5%, which is unsuitable for family audiences. यस, तो वो 5% जो है, देख उसके साथ उनका एलीट है जो कवर फायर देता है, नहीं, दिस इज नॉट इस्लाम, दे वर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट रियल मुस्लिम, ये कवर फायर देते हैं। और फिर दूसरा जो 90% है, जिस प्रकार से पूरा मिडिल ईस्ट कैप्चर हुआ और इस्लामिक बना, मतलब मिडिल ईस्ट में जूइश पॉपुलेशन थी, क्रिश्चियन थी, सिख थी, पारसी थे, राइट, कि उनका वाइप आउट कैसे हुआ है। तो बाकी के 90% जब 5% टेररिस्ट बॉम्ब फोड़ते हैं या राइट्स करते हैं, उसके बाद वहां से जो पैनिक सेलिंग होता है प्रॉपर्टीज का, वो ये 90% एकदम चीप prices में कब्जा कर लेते हैं। Yeah, and that is why a lot of Hindus in strictly Hindu neighborhoods actively prevent other people or even don't give houses for rents to Muslims. That कि 10 साल बाद ये वो मुस्लिम इलाका बन जाएगा. Okay, I have friends in places, neighborhoods where I used to go. It was a normal Bengali neighborhood, Bengali Hindu neighborhood, of course, and now that place is officially called Musalman Para with exact these same policies. Okay. And Neeraj is making an important point here that BJP hasn't proven that his HSB, Himanta Basha Sharma, hasn't even proven Assam is economically prosperous though. Now, here is, again, I have something controversial to say, that in the long run, I think regional pride is always a bad thing. Regional pride is a cancer in Indian national unity, etc. I dislike regional pride very much, and because UP and Bihar has zero regional pride, either because they have been shamed to such an extent or because maybe they are just good people, if we do a comparison and a competition of sorts between the economic progress of UP and Assam even 20 years from today, UP will come out ahead, okay? Because for example, in Assam, I have relatives and they are saying that they are all of them are businessmen. They are small businessmen, so they are already very unhappy with Himanta Basha Sharma because he's saying that he has closed down a lot of carpet manufacturing industry or something, not manufacturing but carpet business. He has closed down because he's saying that we will not import carpets. Okay, we are proud Assamese people and we will make everything here. So even carpets will be made there. So a lot of people's businesses have been fucked because of the regional pride thing. So that's one example. This is how they made 50+ countries. तो जब आप लैंड जिहाद बोलते हो या लव जिहाद बोलते हो, डोंट टॉक इट सेपरेट, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझो, ये सीक्वेंस में हो रहा है। पहले अटैक हो रहा है, ठीक है, जो इनोसेंट है, जो टेररिस्ट भी इनोसेंट विक्टिम्स, जितने इनोसेंट मारे गए, बिल्कुल वैसे टेररिस्ट भी विक्टिम्स इसी चीज के, तो उनका इस्तेमाल करते हुए 90% ने, जो उनके दिमाग में, क्योंकि और कोई इकोनॉमिक्स था ही नहीं, जो मैंने बताया डेजर्ट में, कि तैयार वेल्थ को ही कब्जा करना है, दैट इज वेल्थ का डेफिनेशन ये है कि रेडी वेल्थ। दिस इज आल्सो सच अ लेफ्टिस्ट पॉइंट. ओके, जब कोई इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो जाएगा, जब कोई स्पोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब मादरचोद आके बोलेंगे कि यहाँ पे ना इस ग्रुप आइडेंटिटी का रिजर्वेशन थोड़ा कम लग रहा है भोसड़ी, कि इनको जरा रिजर्वेशन दे क्या. तो खुद का स्पोर्ट बनाओ, खुद का इंडस्ट्री बनाओ, वहाँ पे जिसको घुसाना है घुसाओ. ओके, फॉर एग्जाम्पल UFC इज रन बाई डेना वाइट. ही इज अ फार राइट रिपब्लिकन, प्रो फ्री मार्केट, प्रो फ्री स्पीच एक्सेट्रा. उसमें ब्लैक एथलीट्स ऐसे भी है जो कि पूरा टाइम सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर बोलते रहते हैं. उसका ओपोनेंट पूरा टाइम बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की माँ की जय, डोनाल्ड ट्रंप की जय, माँ की जय. तो सो दैट स्पोर्ट इन द हेवीवेट डिवीजन, they had one white, when I started following it mainly in 2020, the heavyweight division had a white champion. Okay, light heavyweight division was black, middleweight division was black champion, welterweight division was a black Muslim champion, lightweight was
the greatest MMA fighter of all time, the highest paid Muslim athlete of all time, Khabib Nurmagomedov. फेदरवेट में कौन था तब? याद नहीं है, ब्राजीलियन था. फिर फेदरवेट के नीचे तो क्या है? फ्लाईवेट में ब्राजीलियन था. वुमेन्स चैंपियन कौन है? ब्राजील का लेस्बियन औरत. और ये सब के सब चैंपियन बने हैं और यूएफसी में घुसे हैं विदाउट एनी फकिंग रिजर्वेशन. ओके, और कॉमिक्स को तो वेल्थ क्रिएशन पता नहीं है. वेल्थ क्रिएशन होता कैसे, इन्फ्लेशन कैसे होता है, ये भी पता नहीं है. इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ इनको पैसे दे दो तो इनका भला हो जाएगा. तो वेल्थ क्रिएशन जब पता नहीं होगा तभी जाके बोलेंगे कि अच्छा बेजोस ने जो $45 बिलियन बनाया है वो बाकियों के $45 बिलियन से आया है. और वेल्थ क्रिएशन पता नहीं होता है इसलिए ऐसे बोलते हैं. जो एग्जैक्ट पॉइंट अभी अंकित शाह बता रहा है. ठीक है, ये सुनो. इसी चीज के तो उनका इस्तेमाल करते हुए 90% ने Rashti, what's an example? Can you give me an example of of Biharis having regional pride? Is it just sometimes saying on Instagram that yes, Jai Bihar or something like that, or actively saying that first of all in the state machinery wise that we want things to be only hire Biharis etc. or hating Bengalis to some extent? In that case, the racism aspect of regional pride, which is always inevitable, that if you can't speak pure Bhojpuri, we don't want you here. Those sorts of things have never happened, according to me, in UP or Bihar, and not have I seen those behaviors from Biharis and UPites in Kolkata as well. But even though I have seen those behaviors from every other race in Kolkata, so it's not like Bihar is an outsider here. That's why they have never said it. They have never said it anywhere they have gone. And do they say it in Bihar or in UP as well to outsiders? That's my question. जो उनके दिमाग में, क्योंकि और कोई इकोनॉमिक्स था ही नहीं जो मैंने बताया डेजर्ट में, कि तैयार वेल्थ को ही कब्जा करना है. दैट इज वेल्थ. तैयार वेल्थ को कब्जा करना है. ओके, कुछ कोई बना ले, फिर उसको जाके तुम लूट लो. ये है कम्युनिज्म और सोशलिज्म. ओके, वेल्थ का डेफिनेशन ये है कि रेडी वेल्थ को कब्जा करना है. ठीक, तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये हुआ कि बाकी के 90% ने, क्योंकि हम पैनिक होकर चले गए जगह छोड़ के, तो वो प्रॉपर्टीज उन्होंने हथिया ली. ठीक, तो यहाँ पे 5% टेररिस्ट आर द मोस्ट इनोसेंट वंस. द नेक्स्ट 5% कल्पेबल जो ग्रूम कर रहे हैं और कवर फायर दे रहे हैं, और द लास्ट 90% इज द वन व्हिच इज टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट आफ्टर द इंसिडेंट. ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस, यही क्रोनोलॉजी में हो रहा है. तो आपको ये समझ, और फिर मेरी तो ये भी समझ है कि भारतीय मुस्लिम आज भी बहुत सारे मात्रा में अभी भी उनका मिडिल नेम और सरनेम उन्होंने रखा है. तो देयर आर ट्रेसेस के दे कैन गो बैक टू द एंसेस्ट्री. अगर करेक्ट इंसेंटिव और स्टेट पॉलिसीज का ट्वीक मिलता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. आई डोंट थिंक दे आर एज रेडिकल एज जो यूरोप में गए, जो मिडिल ईस्ट से गए हैं, जो बिल्कुल क्रूसेड वहां करेंगे. ठीक, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि पूरा क्रूसेड होना है यूरोप में, और उनको बालिका वधू करना पड़ेगा अगर यूरोपियन वैल्यूज बचानी है. तो क्योंकि ये बात मैं बार-बार सुनता हूं नीरज जी हमारे एक्सपर्ट से कि बड़े बोस्टिंग तरीके में बोलते हैं हम तो सनातन हैं, कभी कुछ जा ही नहीं सकता. तो इनको बताना पड़ेगा कि आप इनको बताना पड़ेगा कि ये फिजिकल डिस्प्लेसमेंट वाली स्ट्रेटजी चल रही है, उसमें बालिका वधू करके आप जिंदा हो. ठीक है, आप और मैं जीवित इसलिए है बालिका वधू की वजह से. ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा. दूसरा हमें ये समझना है कि ये जो पूरी रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें आप जानते हैं पार्टीशन और वो सारा हिस्ट्री तो आप जानते हैं कि 5 भाई है, उसमें से 3 यहाँ पे रहे, 5 की प्रॉपर्टी रख ली, और 2 पाकिस्तान में गए और वहां 2 हिंदू की प्रॉपर्टी वहां भी ले ली. ठीक है, ये तरीके से हुआ है पूरा, आप जानते हैं. तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं बहुत विरोध इस बात का देखता हूं कि गवर्नमेंट क्यों माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नाम पे फंडिंग देती है. तो मेरा ये मानना है कि 95 और 5 ये तीनों के लिए आप एक पॉलिसी नहीं रख सकते. तो डी रेडिकलाइजेशन के लिए फंडिंग लगने वाली है. अगर आपको लग रहा है कि मुफ्त में होने वाला है तो आप भूल जाओ. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं लगेगी, क्योंकि देखो आपको मॉडर्न एजुकेशन में पाथवे देना पड़ेगा, पर अगर क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हो कि एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा, नहीं, एक चीज से सॉल्व नहीं होना है, क्योंकि 95 एजुकेशन से तो सॉल्व नहीं होता, ये तो बंगाल में पता ही है. ओके, चीफ थ्रिल्स इज सेइंग दैट go and look at his relationship with Rakibul Islam. Well, past relationships with shady Muslims also is not very strong of a point, because Shama Prasad Mukherjee's father, Ashutosh Mukherjee, who was called Banglar Bagh, okay, Tiger of Bengal, his favorite student was the person who went on to become Shere Bangla in Bangladesh. He was a big Muslim League proponent later on, of course, and in his cabinet only, when that Shere Bangla guy became the premier of Bengal, that who was basically the chief minister or the head of the entire Bengal region, in his cabinet only Shama Prasad Mukherjee worked. और 5 तीनों के लिए अलग पॉलिसी लगेगी. ठीक है, तो पहले तो दिमाग में डाल लो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगनी है, भूल जाओ कि नहीं लगेगी. उसमें क्या क्वेश्चन होता है? ओके, आप पहले बोलिए, मैं बाद में बताता हूं. जी, तो यू वांट के पॉजिटिव इंटेंट के साथ एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग के ऊपर कुछ लीगल ड्राफ्ट आए,
और क्योंकि हमें हमारे गुरुकुल्स भी रिवाइव करने हैं मंदिर इकोसिस्टम में, और हम चाह रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो भी है, इनको भी एक मॉडर्न एजुकेशन में स्ट्रीमलाइन पाथवे दिया जाए, इनका करिकुलम सेंसिटाइज किया जाए, उस पर आप फिल्टर्स लगा दो, क्राइटेरिया लगा दो कि कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, भले ही वो इस्लाम पढ़ा रहे हो तो कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल ला सकते हैं, इस पर पूरा वर्क हो सकता है। आप मॉडर्न पाथवे दो, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करो। Yeah, this is one major point of disagreement between Maulana Modi and the other side, right? That should we at all even make them so prosperous? What's your opinion, guys? This is one very important point. And okay, Rashti is saying that they objectify Bengali women in their songs. भाई उसका पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री ही ऑब्जेक्टिफाइंग पे बैठा हुआ है, ओके? एंड ऑब्जेक्टिफाइंग इज इटसेल्फ अ वेरी लेफ्टिस्ट premise and lens which I don't really follow, because objectifying, is it necessarily bad? Can there be no tamasic entertainment at all? Okay, now why if a group's entertainment is only tamasic, then we can look into it, that why the fuck are they doing it, especially if that group identity or that group was not known to do just tamasic things only, okay, in historically. तो ऐसा क्या हो गया, तो उसमें से थोड़ा वो argument आ जाएगा. But their entire industry is based, even if objectification is bad, and we take into account that they do it all the time, then they are doing it all the time for their own women only. It doesn't even have to be specifically for Bengali women. स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जितने भी ये सारे कम्युनिटी वाले हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ज्यादा पॉवर्टी उसमें देखते हो वो कम्युनिटी में, तो अगर आप उनके विमेन को एम्पावर करोगे, घर से बाहर निकल के वो एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व होंगी, एंगेज होंगी, एक्टिव मार्केट इकोनॉमी में अपना रोल निभाएंगे, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, तो वो धीरे धीरे से वो इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो रिवर्स होना शुरू होगा। जैसे मैंने बताया 5% क्लेरिक्स के लिए भी वो पूरा अलग लगेगा पॉलिसी, हर एक चीज के लिए अलग लगेगा पॉलिसी, ठीक है? तो एक होता है। दूसरा आपको ये भी देखना है, अच्छा कुछ क्योंकि एक्स मुस्लिम मूवमेंट वाली भी मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो कुछ नीरज जी को जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं जो ये कम्युनिटी पूछती है। जैसे सपोज एक गांव है जहां 100-200 मुस्लिम परिवार है, वो अपने कल्चरल रूट्स में वापस आना चाह रहे हैं, तो कुछ जेन्युइन क्वेश्चन उनके भी हैं, जैसे क्या हमारे घर की बेटी आप लोगे? तो देखो दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। हमें सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, सोसाइटी का भी इसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन लगेगा, ठीक? दूसरा हमें ये समझना है कि क्योंकि Yeah, another point is coming up. So before that, I'll again answer. Aman Singh here is saying that is it because of the constant invasions culturally and militarily that they lost their regional pride? I don't think so, because more of that happened in Bengal, right? इतना हो गया कि बंगाल चला गया, मगर फिर भी Bengali pride हमेशा करते फिर रहे. I think that was mass impoverishment. Poverty was the sole reason here, because with poverty you can't be proud of anything around you, okay? Or not in the sense that at least you will find out outgroups everywhere. You don't have time for that at all, okay? तो Bengal never became poor like Bihar, because इतना generational wealth रह गया था Bengal में because of being a seafaring port, okay? तो और before independence, up until independence also it was doing pretty well, and those people they kept being prosperous to a large extent, Bengal's elite rich class, by joining government services or becoming great academics, etc. तो wealth never really left Bengal completely like Bihar, okay? Their economy has been decimated. Bengal का decimation नहीं हुआ, और जो prosperous थे वो तो बेंचों वैसे भी academic ही है, तो इसलिए Bengali pride हमेशा रह गया. तो invasion was not the direct factor. Invasion के वजह से impoverishment हुआ, उसके वजह से हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, मगर सिर्फ invasion में हार गए इसलिए regional pride गड्ढे में चला गया, ऐसा नहीं है. सऊदी अरेबिया और यूएई जो पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस पूरे गल्फ में वो लीड करेंगे, मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो मंदिर, योग और आयुर्वेद मिडिल ईस्ट में आप देखोगे, और बाय 2040 जो मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं बोलता हूं कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेदा, दैट इज सऊदी अरेबिया, ठीक? तो मेरी समझ में पूरा वो जो ट्रेड रूट है आईमैक वाला, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो उसी कॉरिडोर में आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो हमारे जो प्राचीन पेगन साइट्स हैं उनको रिसरेक्ट करने का बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है प्रोबेबिलिटी, स्पेशली अयोध्या एज अ सेंट्रल नोड ऑफ द मंदिर इकोसिस्टम, जहां पे आप पहला आप देखोगे कि मिथिला, अयोध्या और लंका कॉरिडोर बन सकता है बिल्कुल वैसे। 70 इयर्स के बाद आज पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक जैन देरासर में जाके आए हैं गुरुजी, और पाकिस्तान भी सिख और हिंदू साइट्स को रिवाइव, भले मैं जानता हूं कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, बिकॉज़ दैट इज द इंसेंटिव दे हैव एट द मोमेंट, बट उसका इकोनॉमिक रोल था भी, तो वो कोई नकार नहीं सकता कि मंदिर इकोसिस्टम का एक इकोनॉमिक रोल बहुत बड़ा है ही। तो ऐसे ही तो नहीं तालिबान बोल रहा है कि बामियान बुद्धा के नीचे हम काउंटर लगा रहे हैं, वही तालिबान जिन्होंने उड़ाया था उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उसको। हाँ, ऐसा तो है, और तालिबान मिनिस्ट्री में तो आज हिंदू सिख रिप्रेजेंटेटिव्स भी है अफगानिस्तान से ही, तो ये तो है, ये फैक्ट है, ये क्या करे। ओके, मामा शकुनी सिंह अंकित शाह वर्सेस जेएसडी, हाँ ये होता तो अच्छा होता। तो गॉडडैंक इज saying an interesting point, the strong law and order and industrialization are both needed, only industrialization never works. You see, the question is actually opposite.
विदाउट लॉ एंड ऑर्डर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होगा. वो तो बंगाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसके बाद ये प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही लॉ एंड ऑर्डर मोरल स्ट्रांग है. उसके बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी इफ़ यू आर सेइंग दैट अनलेस इट्स योगीज सॉर्ट ऑफ model, other than that it's impossible to de-radicalize people. That is also not the case, because after all, see what's Bengal's problem is that people have so much free time. The mass layoffs of so many decades of socialism, that is the reason there are so many political gundas who are willing to lay down their lives for CPIM, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी एटसेट्रा. तो ये पॉलिटिकल गुंडा क्लास तैयार ही हुआ है बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, हु वोंट बी पॉलिटिकल गुंडाज व्हेन दे हैव अ जॉब इन स्विगी. राइट्स हैव डिक्रीज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. ओके, अभी इजराइल पैलेस्टाइन के लिए कोई बड़ा राइट हुआ नहीं, ठीक है, वो हो सकता था 2-3 साल पहले तक भी, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम है. तो आप स्विगी पे आपके बॉस को फ़ोन करके कैसे बोलेंगे कि मुझे आज राइट करने जाना है, और राइट में अगर मुंह दिख गया न्यूज़पेपर में या फेसबुक में, तब तो नौकरी गया हमेशा हमेशा के लिए. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम टू अबाउट 80%. तो पूरा जो ये डी डॉलराइजेशन के साथ इसकी वजह से लिंक्ड है, क्योंकि 71 से पहले ब्लैक बुल का भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार से नहीं था जो आज हम देख रहे हैं. तो फियाट डॉलर का और पेट्रो डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल था. 1973 के बाद आपने देखा कि बहुत सारी सिटीज की हाईवेज की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज उसी पेट्रो डॉलर के इन्फ्यूजन के चलते. ठीक, तो आपको समझना है कि डी डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल में डी रेडिकलाइजेशन और डी कोलोनाइजेशन चलेगा, और इसको टाइम लगेगा. यू हैव टू हैव पेशेंस. और जो मैंने बताया कि 1000 साल बाद आप गवर्नमेंट में आए हो, तो व्हाट मैटर्स इज यू कंटिन्यू टू स्टे इन पावर. If you continue to stay in power, that is the first condition. फिर तो आपने कुछ चेंजेस लाने हैं. अच्छा, अब मैं एक दूसरा ऑपोजिट व्यू जो मैं देखता हूँ, क्योंकि 2014 के बाद बहुत सारा अवेयरनेस आया है इसके बारे में, तो जो ऑपोजिट व्यू मैं देखता हूँ, जहाँ पे कुछ नॉइसेस हमने सुने काजल हिंदुस्तानी से लेके चाहे नुपुर शर्मा हो. Yeah, now you guys, the Maulana Modi wing. Now listen to this. His main argument is that awareness has just come after 2020, to be fair. Okay, let's be fair. Before 2020 there was no awareness about Hindutva. BJP did not come to power because of Hindutva. Even today it is so. All the street power people whom I am criticizing anyway, because with argument that you are not going to join street power yourself, you are not going to send your sons to street power. Okay, you are just expecting some poor people to go die in riots or to sit in jail with 100 FIRs in your name. But he is saying an even more important point, that अवेयरनेस तो अभी आया है और उतने नंबर्स में है भी नहीं. ओके, एक्चुअली अगर स्ट्रीट पावर का बात है, अगर स्ट्रीट पावर पे बात आ जाए तो वैसे भी हारना ही है हिंदुत्व को. जहाँ पे अब अभी ये बात चलती है कि नो वी हैव टू फिजिकली अटैक, फिजिकली काउंटर, ये वो डिफेंस तो हमें करना चाहिए एक्सेट्रा. तो पहले तो जो भ्रम है लोगों का वो निकल जाए. आप 20% हो और वो 80% है. आप 80 नहीं हो, वो 20 नहीं है, उल्टा है. दे आर 80%, यू आर 20%. कैसे? क्योंकि उनके 15 बच्चे हैं, उसमें से वो 14 बच्चे बेच सकते हैं, आपके 2 बच्चे हैं. यू आर 20%, दे आर 80%. पहले ये बात समझ लो, जिनको नहीं समझ में आ रही. तो ये जो क्लैश करने की जो बातें कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं. ठीक है. दूसरा आपको ये समझना है कि अगर आपने क्लैश करना ही था तो 1960s में कर लेते. अगर आपको इतना ही ये है कि कर लेते हैं फाइट, तो 1960s वाज द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम. तीसरा आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं चलती. गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होती, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं होती. गवर्नमेंट होती है मासेस के लिए. अब मासेस की जो रूटीन लाइफ है 9 to 5 वाली, और पूरी इकोनॉमी को बिगाड़ के, उसको डिस्टर्ब करके, यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ ड्रास्टिक पॉलिसी चेंजेस. क्योंकि मैं कुछ वॉइसेस सुनता हूं जो बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, कल से ये डिक्लेयर कर दो. तो ये बहुत ही बचकाना हरकतें हैं. बिकॉज़ that is one argument I have also had, that even if I want really libertarian policies, like change, eliminate income tax, etc., and bring in more free market, even I don't want that to happen overnight, guys. It's going to fuck people's lives, because your entire habit, daily life schedule has to change in order for the society to be more capitalist. तो ये सब अगर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ही ग्रेजुअल मैं चाह रहा हूँ, तो और जो कि और भी डेंजरस चीज़ें हैं, या फिर इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस एटसेट्रा, तो या फिर कीपिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन चेक, तो ये सब तो और भी स्लोली और ग्रेजुअली ही करना पड़ेगा. 90% of our masses, they need to go with their routine for their sustenance, survival and economic existence. तो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके आप ये सब नहीं कर सकते, पहली बात. दूसरा, जो पाथ मैं देख रहा हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ जो जियोपॉलिटिकल मैंने बताया कि जिस कोऑर्डिनेशन में चेंजेस चल रहे हैं. सऊदी अरेबिया का विजन 2030 है, विजन 2030 इकोनॉमिक, और यूएई का विजन 2032 बोलते हैं, 2032 उन्होंने लाइन अप किया है हमारे इलेक्शन के साथ. सो 2032 बोलते हैं यूएई. और जो उस विजन के हिसाब से मुझे जो समझ में आया कि बहुत सारा मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा डाइल्यूट हो जाएगा. तो आपको जो अल्टीमेटली तब तक आपको यूरोप में क्रूजेड्स देखने को मिलेंगे, राइट?
So yeah, cheap thrills. These are the points very interestingly, very specifically for you, basically. Unless we are taking into account that he's absolutely lying and has absolutely no fucking clue what the fuck he's talking about. But if Europe does head towards crusades like retaliation for these migrants, so which might not be that much of a stretch, because they also have white nationalists who are going to change people's minds that yes, see, we really do face these problems, don't we? So why not retaliate and attack them on the streets? So if Europe goes into full rioting mode, then all of these are going to come true there, and then Saudi Arabia, UAE is not going to help them anyway. जो मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि जिस स्पेस में हम जा रहे हैं वो सही है, और इसमें जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, आपने देखा ही है कि योगी जी करेंगे तो उसके बाद मध्य प्रदेश में रेप्लिकेट होता है, फिर हिमंता बिस्वा भी रेप्लिकेट करते हैं कुछ चीजें, तो ग्रेजुअली स्टेट वाइज ये होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी सेंटर बेस्ड एक्शन, ये आपको समझना पड़ेगा. दूसरा कि अगर स्टेट वाइज हो रहा है तो सेंटर कॉन्फिडेंस में लेके हो रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग ऑन स्टैंड अलोन बेसिस. आई कैन गिव गारंटी ऑन दिस, द होम मिनिस्ट्री इज अवेयर व्हाट इज हैपनिंग. Okay, this argument we can just agree or not agree with. We have no facts ourselves that whatever Yogi ji has done, he has done with full green signal from Narendra Modi. तो ये जो हलाल वाला मूव है, पहले लाउड स्पीकर पे हुआ, फिर इलीगल प्रॉपर्टीज पे हुआ, आपने देखा, फिर राइटर्स के ऊपर कंपनसेशन पे हुआ कि जितना डैमेज किया यू हैव टू पे बैक. तो ये सारे एक के बाद एक स्टेप्स आप देखोगे, और जो नया क्रिमिनल लॉ का जो रिप्लेसमेंट आया है उसके अंदर अच्छे खासे प्रोविजन है. प्रॉपर्टी कुर्क करने को भी कंफर्म उसके अंदर किया गया है. मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है जहाँ पे आर्म्स का स्टोरेज है, या ऐसी स्पीच पाई जा रही है, कंटेंट पाया जा रहा है विच इज एंटी नेशनल, तो प्रॉपर्टी कुर्क करने तक के राइट्स है उसके अंदर. कितना एनफोर्स होता है, कितना हमारी पुलिस और जुडिशियरी इस पर कर पाती है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. बट द सिग्नल्स आर देयर दैट इट हैज बिगिन. Okay. Now, So if Narendra Modi is giving a green signal on all of Yogi Adityanath's policies, then what we have to understand is that maybe he is thinking that let's have these policies first experimented in UP, where there is already a huge Muslim population, and if Yogi Adityanath can ride this storm, maybe other states will as well. So like when these policies have at the end of the day been applied, when it comes to halal or loudspeaker, ultimately no real riots happened. Okay, earlier in our childhood days, there used to be a riot for every fucking thing every day, even until let's say 2015-16. So maybe if someday Mamata Banerjee is convinced by BJP, which a lot of people say that they have a collaboration between them as well, so if she too does these things someday to win votes, maybe they'll have a backup data to see that whether there will be people to do riots on the streets. Okay, if all of them are employed in Swiggy etc., who's going to do the rioting? जब हम एक चीज होती है एम्पिरिकल एविडेंस होता है कि हम एम्पिरिकली देख रहे हैं कि आपने कुछ चीजें बोली कि हमें डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए फंड्स लगते ही हैं, लेकिन अभी जो फंड्स लग रहे हैं किसी तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोदी जी, जिसे उन्होंने शब्द नया बनाया है तृप्तिकरण वाला, उसमें जा रहे हैं. तो उससे कुछ लोग ये होता है कि यार कुछ कौन बोल रहा है तृप्तिकरण शब्द? मोदी जी बोलते हैं ना कि हमें तृप्तिकरण करना है, और फिर वो बोलते हैं कि हमने मुस्लिम्स के लिए इतनी स्कीम चला दी है. मोदी जी बोलते हैं तृप्तिकरण, मोदी जी बोल रहे हैं तृप्तिकरण हुआ था, वो ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं पहले तुष्टिकरण होता था, अब हमने तुष्टिकरण नहीं करना. लेकिन मतलब एम्पिरिकली व्हाट हैपेंस इज, या व्हाट इज विजिबल इज कि मोदी जी इस्लाम की भी खूब प्रेज कर देते हैं. वो टैक्टिकली ठीक लगता है, बात कुछ करते हैं क्योंकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है. लेकिन जो आप देख रहे हैं दैट इज यू हैव सम अदर काइंड ऑफ, और अगर सिंपल भाषा में बोलूं, यू हैव अ गिफ्ट टू लुक एट थिंग्स व्हिच जनरली लोग नहीं देख पाते हैं. तो लोग तो एम्पिरिकल एविडेंस देख के बात करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है, बल्कि मोदी जी उल्टा काम कर रहे हैं. तो इसमें यहाँ पर एक वो आ जाता है, अविश्वास बन जाता है कि मोदी जी कुछ नहीं करे. जो आपने बोला ना कि लोग होते हैं कुछ नहीं करे, तो वो एनालिस्ट को समझ नहीं आ रहा. द प्रॉब्लम इज कि एनालिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि क्या प्लान है, और प्लान तो बताएंगे नहीं, बिकॉज़ दैट डजंट हैपन इन पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये एनालिस्ट का खुद का अंडरस्टैंडिंग है कि हमें नहीं समझ आ रहा है तो कुछ नहीं हो रहा. Yeah, that might be the case. Okay, Abhay is countering on Vaibhav, but actually both of you are true that yes, Israel has entire West behind him, but that is also because the Jews of hereditarily Jews are the ones who are creating that influence and telling the West to get behind Jews. I think it's an incorrect view. ये हो सकता है कि आपके सेटिस्फैक्शन में वो पेस ऑफ रिफॉर्म्स की स्पीड नहीं है, ये हो सकता है. दिस इज समवॉट अग्रीएबल. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ये बोल रहा है कि तुष्टिकरण हो रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. जैसे मैंने बताया कि 90 के लिए अलग स्ट्रैटेजी लगेगी, 5 के लिए अलग लगेगी, और लास्ट 5 के लिए अलग लगेगी. तो अगर वुमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन में पैसे जाने हैं तो वो जाने हैं, जाएंगे. अगर कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी बता दी गई या ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो इनफैक्ट एक तो मैं भी बता सकता हूँ, जैसे कोई मुस्लिम पेरेंट्स, मतलब मुस्लिम पेरेंट्स के आप ओल्ड एज होम इतने नहीं पाएंगे जितने हमारे हैं. राइट, ये तो करेक्ट है भाई, ये तो फैक्ट है. ये इसका क्या करे? लाइक व्हेन खबीब नूरमागोमेदोव
comes up as an idol for so many people, including non-Muslims. There are things to admire about him: family values, humility, not thinking about so much money, etc. He is a fucking millionaire. Okay, he was offered to return to fighting with like 20-30 million dollars. He did not return just because his mom said that your father has recently passed away. Don't get into this fighting stuff because your father was your coach all your life. Don't do it. He quit MMA just because of his mother. And now where does he live? He not in LA or Dubai, etc. He may have a house in Dubai. He still lives in that mountainside Chota Basti in Dagestan. Okay, so this particular fact, what he's saying, is also true, that Muslims don't send their parents to old age homes. And few I think last year during some love jihad, that woman who got cut up in the refrigerator during all the love jihad debate that was happening in all places. Even in Bengal, there was a woman, a young girl, I think hardly 19 or 20 years old. She had gone viral for a reason. And actually a far left commie but devout Muslim, kaise hota hai ye pata nahi hai, but she was also countering her vehemently, saying that this is Ashraf fetishism. But her point was that why shouldn't Hindu women fall in love with Muslim girls? They take care of their women so much. They are so masculine. They work out. They take care of their family, etc. They work hard. So that is a weird stereotype. But ये stereotype बन गया है तो भाई इसको तो बदलाना पड़ेगा खुद के काम से. तो अच्छी क्वालिटी तो हर जगह आपको मिल जाएगी, बट दैट नॉट टू टेक अदरवाइज. दूसरा आपको अच्छी क्वालिटी तो हर जगह मिल जाएगी. ये समझना है कि सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट का जो पूरा ये पेस रहेगा रिफॉर्म्स का, दे वांट इट फास्टर. ठीक है. और क्योंकि एक क्लरिक वर्ग पूरा है सऊदी अरेबिया में जो एस्टैब्लिश्ड है, व्हिच आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस. ओके, तो भारत का एक रोल जो मैं देखता हूं इसके अंदर, इजराइल का अलग प्रकार से रोल है. भारत का जो रोल जो मुझे दिखाई देता है इसमें, व्हिच इज के सऊदी अरेबिया के जो मॉडरेट क्लरिक्स होंगे, हम तो मानते ही नहीं वो मॉडरेट, आप नहीं मानोगे मॉडरेट कॉन्सेप्ट कुछ होता है. Okay, so this was a direct counter to Neeraj Atri's entire basically narrative, but now listen to what Neeraj Atri says. This is very interesting. He in fact agrees with Ankit Shah. Okay, मेरे पास संसार भर के ऐसे क्लरिक्स के भी मैसेजेस आते हैं who are disaffected. हम लोग कहते हैं हम फंसे हुए हैं, और they know that this is a very big charade, and अब वो क्योंकि मदरसे से पढ़ के वहां चले गए, उनके पास और कुछ करने को है नहीं, तो they are stuck over there. तो ऐसे नहीं कि वहां से लोग, I know very large number of such people. जी मुझे जो भारत का रोल जो दिखाई देता है इज गोइंग टू बी के मिडिल ईस्ट के जो मॉडरेट क्लरिक्स माने जाते हैं वहां पे, उनको प्रॉप अप करने में और उनको सपोर्ट करने में भारत का एक व्यू दिखाई देगा. तो बहुत सारी आप विजिट्स अगर उनकी वहां से यहाँ देखते हो, आई थिंक कुछ महीने पहले ही एक क्लरिक्स आए थे बड़े, और सऊदी अरेबिया से, और उनकी मीटिंग भी शायद एनएसए डोवल जी से हुई थी दिल्ली में. तो और वो पूरा डाला भी गया था न्यूज में, इट वाज पब्लिक मीटिंग. तो मुझे लगता है कि मॉडरेट क्लरिक्स को, क्योंकि उनको सपोर्ट लगेगा. दूसरा आपको ये समझना है कि भारत वो वाला सपोर्ट नहीं दे सकता सऊदी अरेबिया को जो इजराइल दे सकता है. तो जब ये हमास और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट क्लीन होगा, ये पूरा मेस फ्रॉम विद इन इजराइल, उसके बाद जो सबसे बड़ा है, जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने हैं, उसमें एक इंटेलिजेंस का रोल, दूसरा एक सिक्योरिटी का रोल होगा, और दूसरा स्टेट पॉलिसी और इंसेंटिव्स का रोल होगा. तो जो एक्चुअली वैभव, वो डिप्रेशन से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम है कि नहीं, ये जानने के लिए लेफ्टिस्ट सोर्सेज मत पढ़ो, ये एकदम मुस्लिम सोर्सेज से ही जानो, नहीं तो एकदम गलत कंक्लूजन्स में पहुंचोगे. ओके, बिकॉज लाइक I went to Science City last December, so I felt like I was in Pakistan or Bangladesh. I have never seen so many Muslims in my life at one place. Okay, Science City area in Kolkata has become completely Muslim. So everywhere, behind me, front of me, beside me, everyone was Muslim. And how do I know they are Muslim? Because they are wearing properly Muslim dresses only. Okay, they are not secular Muslims or anything, or irreligious Muslims. They are absolutely devout Muslims. But there I'm seeing everyone in hijabs, little kids to old people, and everyone is coming out, was wearing beautiful, colorful, with design wale hijabs. All of them are happy. They are kicking selfies with their brothers. Father is clicking their selfies, their pictures. They are playing up and down on different amusement things, etc. in Science City. Okay, so don't randomly assume that all of them feel oppressed, or all of them have a problem with this with this arrangement. Okay. Otherwise we will just come to wrong conclusions. And at the end of the day, Ankit Shah actually agrees that reforms का speed थोड़ा बढ़ सकता है. इसमें actually Ankit Shah and the Maulana Modi wing does not really have a disagreement. But my point is that radical के बिना moderate को भाव कोई नहीं देगा. तो इसलिए if at all these people are so-called radicals who are saying that it's Maulana Modi, even then we need them. नहीं तो moderates का कोई value नहीं रहेगा. तो and more importantly,
पुश तो हमेशा करना ही चाहिए. I will never say that you all should stop saying these things. You all should keep on saying this. So people need to be on their toes. People's awareness needs to keep on increasing. So keep on saying this. We will also keep on saying what we are saying. स्टेट पॉलिसी और इंसेंटिव्स वाला जो रोल है उसमें भारत इनपुट्स और आउटपुट्स का आदान प्रदान हो सकता है. सिक्योरिटी वाले में भारत कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसमें इजराइल ही कर सकता है, और इंटेल इनपुट्स में भी इजराइल ही कर सकता है. तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि नियॉम वाला जो एमबीएस का विजन है उस साइड, आई थिंक दैट इज ही इज प्लानिंग समथिंग ऑफ अ ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट. और बहुत बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया होगा जब ये वंस द हमास क्लीन अप कंप्लीट्स. तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग अराउंड 2030 विद इन सऊदी अरेबिया. यू विल सी मैसिव चेंजेस, मैसिव इन द सेंस अगर आपको वो 2 होली साइट्स पे लिखकर भी मिल जाएगा. ठीक है, which is happening. तो बिकॉज बहुत क्लियर है क्योंकि ये आई थिंक 10-15 साल की ग्रूमिंग लगी है एमबीएस को. तो वो एमबीजेड के अंकल एमबीजेड के वहां विजिट करते थे ड्यूरिंग वेकेशंस. ये मेरा बॉडी लैंग्वेज रीडिंग है कि 10-15 इयर्स का ग्रूमिंग हुआ है कि इफ यू वांट हाई टेक इकोनॉमी, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ रेडिकलाइजेशन. आई थिंक द किंग वाजंट अवेयर, बट सन एमबीएस का पूरा अंकल एमबीजेड ने ग्रूमिंग किया है 10-15 साल. ओके, तो ये है अंदर की बात. दिस इज माय बॉडी लैंग्वेज रीडिंग. आई हैव नो प्रूफ, आई एम जस्ट सेइंग. ओके, कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी. Yes, if Ankit Shah is wrong, if Modi is wrong, there will be another partition and we are all fucked. The problem is that it all sounds a repetition of what Congress did and tried at the end of the day. That is the problem. At the end of the day, they were also non-aligned. At the end of the day, they also agreed that yes, there are good Muslims with whom we can live with. Only the radical Muslims need to be handled. We will send them out, or our law and order will be our hope. Okay, they were not so much in favor of industrialization. Maybe that is a key offsetting factor or a key difference between Congress and BJP. But let's see. If Ankit Shah is wrong, man, we are so fucked. Preetham Vincent Lobo. Hello Ankit, I work in lead desk role for US product IT company funded by Indians. With upcoming downtrend in US Europe IT sector for professionals working from India, do you think learning Russian language will be a good idea? ये relevant Yes, Preetham ji, it is going to be very good idea. So I think US में अगर आप शिकागो, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में पूछोगे, relevant नहीं है. लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत सारे चीजें चल रही है कि डीडॉलराइजेशन होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं हुआ. लेकिन इस बार इसलिए होगा बिकॉज़ यूएस वांट्स इट. दिस इज आई एम द ओनली वन हु सेइंग इट. ठीक है, who are talking something in the similar lines. हाँ, Abhay is saying that Muslim society needs to be freed from its feudal elite and modernized. इसमें मौलाना मोदियों का जो आर्ग्यूमेंट है वो completely illegitimate नहीं है. वो लोग बोलेंगे कि मॉडर्नाइज होंगे भी तो क्या है, तो मॉडर्न वे से तुम्हारा मारेंगे. तब क्या होगा? उनको तुम पॉवर्टी से निकाल के एलिट बनाओगे या मिडिल क्लास बनाओगे, तो मिडिल क्लास वेल्थ लेकर तुम्हारा मारेंगे. तब क्या होगा? वो जियोपॉलिटिक्स नहीं बता पाएंगे मेरी तरह कि क्या कहां से क्या लिंक था, लेकिन ये बता पाएंगे कि ये क्रैश आने वाला है. ओके, केतन लिमाय है. पीपल जिनका मेन इनकम शेयर मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इससे रिलेटेड है. जस्ट एंड व्हेन आई से मारेंगे, आई डोंट मीन डेली राइट्स एटसेट्रा, बिकॉज़ राइट के लिए तो वो नौकरी वोकरी का सवाल है. बट in large principle in terms of political actions, policies etc, वहाँ पे further anti Hindu, deliberately anti Hindu चीज़ें अगर ये now elitified pattharbaz, if they are pattharbaz in their minds, if they keep pushing that even after becoming elite, even after becoming middle class, upper middle class, तब क्या होगा? तब कौन बचाएगा? Want to know about future for these kind of work. So Ketan ji, if you are asking will the stock market is going to continue, yes. If you are asking स्पेक्युलेटिव ट्रेड में कब तक फ्यूचर होगा या उसमें कुछ कटबैक आएगा, तो यस, स्पेक्युलेटिव ट्रेड के अंदर इवेंचुअली नए रेगुलेशंस आ सकते हैं, बट नॉट 5-6 इयर्स एज ऑफ नाउ, बट ग्रेजुअली उसके अंदर कटबैक आएगा स्पेक्युलेटिव ट्रेड में. क्योंकि आपको एक बात समझनी है कि ये पूरी जो फियाट करेंसी की मॉडल बिठाई गई थी वो इसी के ऊपर बिठाई गई थी कि रियल प्रोडक्ट के ऊपर डेरिवेटिव्स मार्केट में घूम रहे हैं. 1 kg वीट रियल में है और 1000 kg पेट में को बदमाशी करके इस तरह से खेल हुआ है. तो एनीवेज जुरिसडिक्शन नहीं है. We can't question him, right? Yeah, this is again Ankit Shah's one of the core beliefs that it's not up to us whether it's going to reform or not. If Saudi Arabia does those changes because they want to be friends with India, that will be what Islam turns in the end is. Okay, यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भी नहीं सुनेंगे वो, तो क्यों सुने आपका? Why should he listen to you? Let us wait and watch. ये तो यही कह सकते हैं. इन्हीं का एक और तो उसमें भी काउंटर आर्गुमेंट मौलाना मोदी साइड का ये हो सकता है कि maybe they will reject Saudi Arabia. They will say no, we are the real Muslims and we know what is right. मिडिल ईस्ट सिर्फ समय अनुकूल बदलाव ला रहा, ये सब दिखावा है.
देखिए 15-20 साल का क्रूड ऑयल का स्टॉक बचा है, उसके बाद उन्होंने देखा ही है पाकिस्तान कैसे कटोरे लेके रोज दरवाजा खटखटाता है, तो आई डोंट थिंक वो वापस ऊंट पे जाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक सो। वो जो 5% आपने बोले थे वो जाना चाहेंगे, जो ऑनेस्ट है, बाकी नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, इन्हीं का एक बात, 1960s में संघ ने ही जागृत व इस्लाम खत्म नहीं कराया। तब सोशल देखिए मीडिया मुझे 1960s का तो मुझे पता नहीं है, बट तब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस ही कहाँ था भाई, किसको लेकर ये काउंटर होता था 1960 में। इतना मैंने देखा है 2014 के बाद ही बहुत ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस मैं देख रहा हूँ। 14 से पहले तो शायद, क्योंकि इसका कारण भी ये रहा कि बहुत सारी मोदी जी का जो फर्क आया है मोदी जी के रूल में, वो ये है कि 2014 से पहले, क्योंकि हम तो बच्चे थे, तो जो चीजें हमको मतलब हीरो जैसी लगती थी, उन सबके कपड़े उतार दिए मोदी जी ने, मतलब बॉलीवुड से लेके प्रोफेसर से लेके ये थोड़ा ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली मोदी जी ने किया है नहीं किया है, तो नरेंद्र मोदी पावर में आए, उसके वजह से एक इकोसिस्टम सॉर्ट ऑफ बन गया, सोशल मीडिया भी आ गया, संजय दीक्षित ने, नीरज अत्री ने, ये सब इन लोगों ने किया है, उनके वजह से हुआ है ये। तो नरेंद्र मोदी ने घर घर जाके नहीं बोला है कि देखो भाई बॉलीवुड में क्या हो रहा है, से लेके सबके कपड़े उतर चुके हैं, तो सभी के, आई मीन वी यूज्ड टू एडमायर दोस काइंड ऑफ पीपल, और अब मतलब 14 के बाद पता लगा तो सारे के सारे बिना कपड़े तो आई थिंक उसकी वजह से ये रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, जो अवेयरनेस आई है, वरना नहीं थी। ज्योतिर्मय दास है जी, आपकी बातें सुन के ACYPL वाले क्या सोचेंगे? तो ये ACYPL वाले आर द पीपल हु आर सेइंग दैट मोदी वाज ट्रेन्ड बाय CIA। ACYPL क्या है? I don't know what is ACL. ACYPL पता है? I don't know. let me check. American Council of Young Political Leaders. अच्छा, I don't know, I have no clue. Okay, let's pass the question. Next please. Okay, ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। Okay, हो गया। This was a great discussion, guys. Very fruitful, very important, and Noel says हाँ एक मिनट रुको, तो let me just read some comments for a while, and we'll discuss this further for about 5 minutes more, and then we'll go offline. This was fantastic. So yes, many Indian clerics also put Saudi Arabia under the bus. They even protested in India for policy changes of MBS. हाँ, यही अगर हुआ और यही अगर मेन स्ट्रीम रहेगा, मेन स्ट्रीम व्यू रह गया मुस्लिम कम्युनिटी में, तब कौन बचाएगा भाई तुमको? तब तो वी नीड टू अवेकन द क्षत्रिय स्पिरिट बोल के घर में बैठे रहोगे विद एन अनफिट बॉडी, और बोलोगे कि नहीं गन राइट्स नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास गन आ जाएगा। बड़े भाई उनके पास ऑलरेडी गन्स है, नहीं भी है तो मंगवा लेंगे जिस दिन राइट करना होगा। तलवार तो वैसे भी है, तुम्हारे पास क्या है? तो मामा शकुनी इज ऑल्सो मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वहाँ पे ये सब हो रहे हैं कि मॉस्क वॉस्क भी बन रहे हैं, तो अब उस मॉस्क में क्या सिखाया जा रहा है? ये मौलाना मोदी का जो कंसर्न है वो चीज़ें सिखा जा रहे हैं, या फिर अभी अलग चीज़ें सिखा जा रहे हैं कि जैसा वो मेरा वाला कुरान है भाई मुफ्ती मोहम्मद टाकी उस्मानी के, इट्स अ नाइस थिंग, देयर इज गॉड, यू मस्ट लव वन अनदर, मेक सैक्रिफाइसेस एटसेट्रा फॉर योरसेल्फ। तो ये सब चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें हैं अंदर। MBS is the and I will say it now, if there is to be any kind of revolution for Hindutva, it will come from Punjab. No, I think it will come from Bengal. Come from Punjab, just wait and watch. We Punjabi are from the land of Mahabharata, Acharya Chanakya. We might surprise you. देखते हैं। मेरे पास माँ है या अमिताभ बच्चन का पोस्टर हम दिखा देंगे जब उस दिन जहाज डूबेगा। It will be funny. Lol, Saudi Arabia changes, but India goes opposite. Good night, Shangramjit. HBS said while cutting government fund of madrasa. अच्छा, हिमंत विश्व शर्मा, ये हाँ ये सरकार का काम है क्या? Yeah, see, all these are libertarian principles as well. Absolutely, I'm in favor of all that, of defunding things. Sorry, Chief Tilt, I did not see that you are female. Okay. Okay then, not many significant things to discuss anymore. This was a very fruitful conversation. Thank you for joining the live stream, guys. Let's see और क्या है. You are wrong. Hindutva revolution will come from Tamil Nadu. जहाँ पे कोई हिंदुत्व का नाम नहीं है वहाँ पे ही सब बोल रहे हैं कि ये यहाँ होगा वहाँ होगा. नहीं, I think Bengal, bro. Bengalis are extremists. Have some hope on them. रीड माई कमेंट. अभय का कमेंट कहाँ है? अच्छा, यही प्रॉब्लम फिर से कि कुछ कमेंट गायब हो जाते हैं. अभय का ये एक कमेंट आया है कि सिर्फ कम्प्लीटली बोला है. उसके पहले क्या बोला था जिसमें कम्प्लीटली ऐड किया? मुस्लिम सोसाइटी नीड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम इट्स फ्यूडल एलीट एंड मॉडर्नाइज्ड. या आई सेड दैट मॉडर्नाइज होगा तो मिडिल क्लास होके मारेगा. आर यू टॉकिंग अबाउट सम अदर कमेंट? अभय
There is a churn happening in Punjab. It is make and break for us. And one thing about Punjabis is we fight and fight viciously. Yes, that is word for word true for Bengalis. It's just that Bollywood did not portray us as a fighting people. That's why you all think that Bengalis are very physically afraid, etc. Bengalis are physically lazy, but when it comes to street violence and fighting, Bengalis are doing it all the time. They are dying for Trinamool and CPM. Instead, they'll die for Hindus. Okay, if that change happens, there's no difference between Punjabis and Hindus in that case. Punjabis might be fitter and their food might be healthier, but when it comes to street violence, Bengalis and Punjabis are absolutely equal. Yeah, Shala Rashid will lead that Hindutva movement. Okay, let's see what other comments. Neeraj is saying, look at how passionate Tamils are. We have so many Hindutva following Tamils. If the majority turns towards Hindutva, it will go hardcore more than even UP. Yeah, see, historically, revolutions, वो intellectual backup plus मारपीट का backup सब तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल से ही आया है. वो कैरेक्टरिस्टिक ही है. वो जब अगला दिन आएगा जहाज डूबने वाला, तब यही से ही फिर से ही आएगा. It will be a collaboration only. And the people who believe in Hindutva are not going to do the Dravidi and Bengali pride bullshit. So it's going to be a fun thing. But we hope that fun thing fucking doesn't never come, okay? Let Ankit Shahi principles prevail. Abhay said, Congress mollycoddle the Ashraf elite. Yeah, of course. अरे तेरा comment कहाँ है? Tamil Nadu will be the Hindutva bastion of the South. Abhay, where's your previous comment? That comment, Congress mollycoddle Ashraf elite. How far back is that? Can't find it. All I can see is that last comment about Muslim society needs to be freed from its feudal elite and modernized. Uske pehle hai masculine Hindu men are seen as misogynist and patriarchal. Hindu girls, Muslims being conservative society helps them too. Abhay, no, can't find it. Write it again, okay, Abhay. Find it and copy paste it again. Some comments just disappear randomly. Congress mollycoddled. Read my comment. He worked for unified Bharatvarsha. Magad and Gowda have overlapped since forever. Yeah, of course. Tamil Nadu will be Hindutva bastion. Raita wing might be the UP in the future. Trads in West Bengal. Yeah, उतना prosperity आ जाएगा इसलिए वहाँ पे सब वोक्स बैठे रहेंगे बोसरी के. For starters, आज विनय को अनब्लॉक करता हूँ फिर कैसा. Okay, just before completely there's no comment. It's not visible to me. Let me refresh the chat. Live chat. Wait, I'm refreshing, okay. Chandrachura Shiva Shankara Parvati. Above completely Abhay का comment तो Muslim society no comment not visible नहीं आ रहा है यहाँ पे. कुछ गाली वाली लिख दिया क्या? Okay, just let's write the comment in the main comment section only, okay, after the live stream is over. I don't believe that woman at all. We need community martial arts practice maybe. अरे community martial arts तो बनाने में कौन रोक रहा है? खुद जाओ, 2-3 दोस्त ढूंढो, हो गया community martial arts. See, ये भी तो एक बड़ा चीज़ है that you should learn or appreciate about Muslims, that the people who Muslims who are not secular, they are ready to die for their cause in the streets. People who are maybe secular or at least are pretending to be secular, they all of them, at least in Kolkata even, mostly in all major cities, because of Khabib has set such an important example that all of them are learning martial arts. Every Muslim guy who is below 30 years of age, all of them are learning Brazilian Jiu-Jitsu or MMA. तो कौन भोसड़ी के हिंदू लड़कों को बंद रोक रहा है मार्शल आर्ट्स सीखने से? वो कलड़ीपत्तू वी नीड क्षत्रिय स्पिरिट ये बोल के खत्म हो जाएगा. कम्युनिटी का ज़रूरत तो वैसे भी कम्युनिटी तो हो जाएगा, तुम 4-5 दोस्त वहाँ पे जाके मिल जाएगा, और या फिर 2-3 दिन तुम खुद जाओगे, तुम्हारे फिजिक में चेंजेस आएगा, 2-3 लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे भाई ऐसा फिजिक बना लिया, तुम उनको भी लेके चले जाओगे, हो गया कम्युनिटी बेस्ड मार्शल आर्ट्स. दादा अपने गाने नहीं डालते हैं चैनल पे? नहीं, मेरा तो पर्सनल गाने कहाँ से कब टाइम कहाँ है उतना. कोई अगर बहुत फ्री टाइम चल रहा है कि अच्छा उतना बुक भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चैनल का भी काम नहीं हो रहा है, या फिर कोई गाना दिमाग में घूम रहा है, तब कोई गाना वहाँ से डालता हूँ. नहीं तो मेरा तो वैसे अलग लोगों के लिए अरेंजमेंट्स का काम चलता ही रहता है, एड वैड वगैरह.
like I was saying that the song I arranged or co-arranged with the composers who were basically my school friends. So that is the biggest Bengali Durga Puja hit this Durga Puja. It has just crossed 5.2 million views yesterday in 1 month. It's called Ailo Uma Barite. I played the guitar in that and arranged it. Well, that I already do. I have a kickboxing practice session 2 times a week with my friends. I teach them for free. हाँ तो यही तो है community. और ये community और थोड़ा बढ़ा लो. पूरा जिस दिन तुम्हारे घर पे riot होगा, ये सब लोग तो आ जाएंगे ना. Okay then. Music arrangement শেখাবে. Oh, yeah, we will discuss that later on. Bhanje, JSD on top, on Op India said BJP playing with fire, we need Kshatriya of old mold. Yes, we need. We need का अगला sentence क्या है? Okay then. Good night, guys. I've said it 5 times now. Thank you for joining the live stream. Yeah, here to learn, Ailo Uma was me. It was basically my entire school friend circle, okay? So the composers are Moinak and Mollard. Moinak is my school junior, Mollarda is my school senior, and he was a Star Voice of India finalist when it used to happen in Star Plus. Then he's a Zee Bangla Saregamapa in the duet version. He's a champion. I think he was a runner-up in the solo version as well. So both of them have composed it. Then Moinak arranged it to a little extent. Then he sent it to me. Then I arranged it. Then after that, Moinak also did again some important touch-ups. The dhak has been played by Mollarda himself, and it was mixed by our school batchmate Biman only. He's a very famous session drummer and live drummer as well, and he mixes really well as well. He mixed the song. So it's entirely my school band hangout. Yeah.